later, and those who have just missed can do it later. So hopefully you will be able to see my screen now. जी सर नजर आ रही है। Yes sir, नजर आ रही है। ठीक है, तो it is requested kindly whenever you want to ask a question, उस वक्त अगर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, I would be very thankful. Otherwise mute the mics, क्योंकि फिर बैकग्राउंड में अगर कोई बातचीत हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, तो that creates a disturbance. Thank you very much. So yesterday we started with the same code, and the code was, if we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it? Since we are doing another step in the research cycle, so I'm going to start it with the same code. So, and again with the same message, by doing research, it is our opportunity to contribute to the body of knowledge, and we should do that. And the today's topic is data collection, tools and techniques. My name is Muhammad Asif Rafiq, and I'm working in UT Lahore in the Department of Metallurgical and Material Engineering Department. My email ID is asifrafiq@ut.edu.pk. So you can simply send me an email if you have any question, you have any query, or you want to ask or say something. So again, I'm going to start with the basic question, what is research? तो कल हमने कुछ definitions भी research की थी, research को slightly detail के साथ किया था. The definition which at the end I have chosen was, research is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information. और ये जो information है, we call that information is data. So अब इस definition में से हम करने लगे हैं data collection, tools and techniques, and why we are collecting that data, why we are doing analysis of that data, and why we want to interpret that information or data is in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned. इसके साथ कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड भी कल रिसर्च की हमने डिस्कस की थी कि रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी करते हैं. So number of examples are there, and you are probably now quite familiar with those examples. And there was a distinct difference between everyday research and scientific research. और वो difference जो है, that was in the definition. Other definitions which I have already told was, research is a formalized curiosity. Research is poking and praying with a purpose. और वो purpose क्या है? To increase our understanding about something of which we are already not familiar with. So with this introduction, उसके साथ हमने next चीज जो discuss की थी कि research is an integral part of our practice. कि research is undertaken within most professions, और हमने इसको simplify किया था कि हम किसी भी profession का नाम ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको generalize कर लिया था कि any professional who might be interested in finding answers to the question, normally they do the research. और with the purpose है कि हर आदमी के purpose different हो सकते हैं, और इसके साथ हमने claim किया था कि research is not only set of skills, research is way of thinking. और इस way of thinking का purpose क्या था? To contribute to the advancement of our practice and profession and business. और साथ ही हमने claim किया था कि how can we do that? The first step was examining critically the various aspects of our professional work. Second step था कि develop and test new theories that contribute to the advancement of our practice. And the third जो step था वो था कि develop and test new theories. तो हमने critically examine करना है, understand करना है, formulate करना है कुछ guiding principles को, and ultimate objective is कि contribute करे to the advancement of our practice. और ये होगा कैसे? How it will become possible? It's by doing it. It's by asking questions. It's basically habit of questioning जो हमें हमारे लिए नए इल्म के दरवाजे खोलता है. तो उसमें कुछ हमने एग्जांपल की थी, तो अब मैंने सारी एग्जांपल्स खत्म कर दी हैं. सिर्फ यहाँ पे
इस लास्ट एग्जांपल थी, कल भी मैंने इसके क्वेश्चन नहीं बताए थे कि इन दिस एज ऑफ कंज्यूमरिज्म वी कैन नॉट अफोर्ड to ignore the consumers of a service. Basically, we as a teacher are also a service provider. इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ रहने दिया. Consumers have the right to ask questions about the quality and effectiveness of the service, and the service provider have an obligation to answer their question. तो कुछ क्वेश्चन हमने इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम खुद से लिमिट कर सकते थे. तो कुछ क्वेश्चन जो कि फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं कि हाउ इफेक्टिव इज द सर्विस दैट आई एम रिसीविंग. इफ वी आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, बेसिकली इट हेल्प अस टू इंप्रूव आवर प्रोफेशन. एम आई गेटिंग वैल्यू फॉर द मनी? अगर वैल्यू फॉर द मनी है तो पीपल विल कीप ऑन चूजिंग दैट स्पेसिफिक सर्विस. नहीं है तो they stop using that service or they will switch to another service provider. Then how well trained are the service provider? तो सर्विस में एक सबसे अच्छी खूबी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का बोलना, इखलाक, उसके करेक्टर्स एंड हाउ गुड और बैड सर्विस में ये चीज भी ऐड हो जाती है. तो मोस्ट प्रोफेशंस इन द ह्यूमन सर्विस इंडस्ट्री, उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे. एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर we should be ready, we should be well prepared to answer them. And how can we do that? Research is one of the ways to help you answer such questions objectively. इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमने की थी, that was research cycle. So we will, अब हम क्विकली, कल तो हमने इस पे डिटेल किया था थोड़ा सा, आज हम इसको जरा क्विकली करेंगे क्योंकि हमें पता है कि there are 7 steps in the research cycle. And the first step is a researcher begins with a problem and unanswered question, and we are very well aware of, हमें already पता है कि ये question जो है या problem जो है unanswered question ये कहाँ से आएगा. It can come from the literature, from the books, from the articles, from our day-to-day life. तो जो चीज जिसका आंसर नहीं है, that is actually a problem and we are supposed to find the question of that problem. और उसका तरीकाकार क्या है, ये उसके लिए एक फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक मेथड है. तो हम फर्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिसर्च प्रॉब्लम, कोई रिसर्च क्वेश्चन आ गया, देन वी नीड टू मूव टू द सेकंड स्टेप. एंड द सेकंड स्टेप इज द रिसर्चर क्लियरली एंड स्पेसिफिकली आर्टिकुलेट द गोल ऑफ रिसर्च एंडेवर. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ultimate goal of the research must be set forth in a grammatically complete sentence. तो आमतौर पे कहा यह जाता है कि अगर आप अपनी रिसर्च को 3 सेंटेंस में कंप्लीट ना कर सकें तो इसका मतलब है कि आप अपनी रिसर्च को कम्युनिकेट नहीं कर सकते. लेकिन उससे भी पहले आपने अपने रिसर्च गोल को बताना है इन अ सेंटेंस. और वो सेंटेंस क्या हो सकता है? व्हाट प्रॉब्लम आई इंटेंड टू सॉल्व. तो अगर आपने अपना रिसर्च गोल डिफाइन कर लिया, देन वी विल मूव टू द थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च साइकिल, दैट इज टू डिवाइड द प्रिंसिपल प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स. ये हमारी रूटीन लाइफ में भी है. हम ऑलरेडी जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी ये पार्ट है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर वंस एंड वी ट्राई टू सॉल्व दो स्मॉलर प्रॉब्लम्स वन बाय वन. और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या होता है कि we normally able to solve the bigger problem. अगर हमने ये थर्ड स्टेप क्लियर किया, then we will move to the fourth step, and that fourth step of this research cycle is the researcher identifies hypotheses and assumptions that underlie the research effort. Basically जो hypothesis है, it is a logical supposition, a reasonable guess, and educated conjectures. और बेसिकली ये जो हाइपोथेसिस है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ अ फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन. ये हमें बेसिकली एक डायरेक्शन शो करवाता है कि इन विच डायरेक्शन वी वांट टू मूव. अगर हमने हाइपोथेसिस और अजम्पशन कर ली, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ स्पेसिफिक प्लान फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड इट्स सब प्रॉब्लम. कल हमने रिसर्च डिजाइनिंग और प्लानिंग की थी, रिसर्च डिजाइन की, एंड वी ऑलरेडी नो कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्लान. शुड बी एबल टू एड्रेस आवर क्वेश्चंस.
it should be within our skill and interest, and more importantly it should be doable. और फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिर हमने डिटेल करनी है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर. अगर हमने डिटेल को भी कर लिया तो ये फीचर हमारे रिसर्च प्लान के हैं जो कि हमें बेनिफिट देंगे कि व्हाट वी वांट टू डू, हाउ वी वांट टू डू. तो अगर हमने स्पेसिफिकली रिसर्च प्लान भी बना लिया इन स्टेप नंबर 5, then we will move to the step number 6, and the step number 6 is the researcher collects, organizes and analyzes data related to problem and its sub problem. So this is what our main topics today, data collection tools and techniques. ये हम मेनली आज ये करेंगे कि डाटा जो है इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है. इट कैन बी इन द क्वालिटेटिव फॉर्म और इट कैन बी इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म. तो लेकिन हमें उस डाटे को कलेक्ट करने के लिए प्लान करना है, फिर उस डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है. और जब हम इस स्टेप से गुजरेंगे वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 7. द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द डाटा एज दे रिलेट टू द प्रॉब्लम एंड इट्स सब प्रॉब्लम. और उसके बाद ये रिसर्च साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. वी विल मूव बैक टू स्टेप नंबर 1 अगेन. कल हमने इस पे थोड़ी सी डिबेट की थी कि ये रिसर्च साइकिल है. हम एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं और एज अ रिजल्ट वी हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. हम कोई चीज सक्सेसफुली कर भी लें, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट सक्सेस पॉइंट एंड मूव टुवर्ड्स द सॉल्वेशन ऑफ अनदर क्वेश्चन. तो ये इसलिए एक साइक्लिक प्रोसेस है कि इट्स अनएंडिंग आइटम. हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 10 क्वेश्चन नए स्टार्ट करते हैं, विच मींस कि रिसर्च बिगेट्स मोर रिसर्च. और दूसरा ये था कि दिस रिसर्च इज साइक्लिक एंड आइटरेटिव इन नेचर. कि हमने फिक्स नहीं है कि अगर हम स्टेप नंबर 7 पे आ गए हैं वी कैन नॉट गो बैक टू द स्टेप नंबर 3 और वी कैन नॉट मूव बैक टू द स्टेप नंबर 5. तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है. वी कैन कीप ऑन मूविंग फोर्थ एंड बैक. तो ये साइक्लिक और आइटरेटिव प्रोसेस है, ये इसके फीचर्स से. So today our main topic is data collection tools and techniques, and I am going to start it again with a quote from William Blake. The true method of knowledge is experiment. So इसके साथ हम मूव करेंगे और स्टार्ट करेंगे with what is data collection. Data collection जो है basically it's a methodical process of gathering and analyzing specific information. तो यहाँ पे फिर हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, व्हाई वी वांट टू कलेक्ट द डाटा. और आंसर है टू ऑफर सॉल्यूशंस टू रेलेवेंट क्वेश्चन एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स. नॉर्मली जो डाटा कलेक्शन है दैट फोकसेस ऑन फाइंडिंग आउट ऑल देयर इज टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. तो हमारे इस डाटा कलेक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस है और उस पर्पस को हम आंसर कर सकते हैं कि व्हाई डाटा इज कलेक्टेड, बिकॉज वी वांट दैट डाटा टू बी फर्दर सब्जेक्टेड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. और ये जो टेस्टिंग है इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये हमारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, या उसको प्रूव करेगा या उसको डिसप्रूव करेगा. सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द अंडरलाइंग नीड फॉर डाटा कलेक्शन. The underlying need for the data collection is to capture quality evidence that seeks to answer all the questions that have been posed. तो अगर डाटा नहीं है, हमें डाटे की सपोर्ट नहीं है, we will not able to answer the question, or even we answer something तो हमारा आंसर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हमारे आंसर को सपोर्ट नहीं है डाटा की. Through data collection basically researchers or person in any other field can deduce quality information that is prerequisite for making informed decisions. To improve the quality of information, it is very important that data is collected so that you can draw inferences and make informed decisions on what is considered factual. हम सबको पता है कि we are living in data world. Data world में रहने का क्या मतलब है कि हमारे पास हमारे सराउंडिंग में इतना डाटा है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो इंफॉर्मेशन जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस नहीं करेंगे
तो उस इंफॉर्मेशन से हम बेनिफिट नहीं ले सकते. बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा वी कैन make or break direction of the research. We can switch different businesses. We can give direction to our business. So data collection is very important. और फिर हम वही डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड होता है. So normally the best data collection method is necessary for achieving our set objectives. For collectors of data, there is a range of outcome. जिसकी मिसाल दी मैंने कि हम बिजनेस स्विच कर सकते हैं, डायरेक्शन रिसर्च की कर सकते हैं और इसको एवरीडे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. फॉर विच द डाटा इज कलेक्टेड, बट द की पर्पस फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड इज टू पुट रिसर्चर इन अ वेंटेज पोजीशन to make predictions about future probabilities and trends. तो अगर आपके पास डाटा है तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज और ट्रेंड के बारे में बता सकते हैं, हम प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू. एंड नाउ अनदर क्वेश्चन हियर इज, so it is kindly requested again to kindly mute your mics those who don't want to ask question, otherwise background noise जो है वो यहाँ पे हमें तंग करेगा. So now another question is, when does task of data collection begins? So मेरे पास शायद जो ऑप्शन है वो म्यूट ऑल की है, तो इट्स काइंडली रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर माइक्स those who don't want to ask a question. So another question here is, when does task of data collection begins? Normally this task of data collection begins after the research problem has been defined and research design is chalked out. Since it is a systematic process, तो हमें उसी सिस्टम के मुताबिक काम करना है कि हम उस सिस्टम को फॉलो करेंगे. Now in collecting the data the researcher must decide. कुछ चीजें रिसर्चर ने डिसाइड करनी है डाटा कलेक्शन में. वो क्या है? which data to collect. जैसे मैंने कहा कि वी आर ऑलरेडी लिविंग इन इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, तो हम हर डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे. वी ओनली कलेक्ट द डाटा दैट इज रेलेवेंट टू अवर रिसर्च क्वेश्चन, जिसको हमने प्लान किया है कि हमने आंसर करना है. देन फिर रिसर्चर ने डिसाइड करना है हाउ टू कलेक्ट द डाटा. वेदर डाटा कलेक्शन जो है मैंने करनी है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर, with the help of survey, with the help of experiments, doing experiments in the lab. तो ये चीज रिसर्चर ने डिसाइड करनी है कि वो डाटा कैसे कलेक्ट करेगा. Then who will collect the data? That is very important. Whether I am going to collect the data by myself for my research or someone on my behalf will do it. तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन के रिलेशन जो है वो डाटा की क्रेडिबिलिटी के साथ भी है, रिसोर्सेज के साथ भी है, हमारी स्किल्स के साथ भी है. तो ये रिसर्चर ने डिसाइड करना है डाटा कलेक्शन के दौरान कि हु विल कलेक्ट द डाटा. एंड देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू कलेक्ट द डाटा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने कल भी कुछ इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि अगर आप वर्कर से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो whether you would like to do it on site or during informal chat. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डाटा की क्वालिटी को जो इफेक्ट करेगा. और जो हमें हेल्पिंग है इसके लिए कि द सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज द सोर्सेज अवेलेबल. कि हमें इंटरव्यू करना है, अब उसी डेमोग्राफिक लोकेशन पे करना है या ऑन कॉल करना है, बाय स्काइप मीटिंग करना है, बाय टीम्स मीटिंग करना है. और इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, हमारे प्लान में रिसर्च डिजाइन में हमने डिसाइड क्या किया है. देन कम्स द क्रेडिबिलिटी. जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को हमने इंश्योर करना है. देन कम्स एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एंड फाइनली द स्किल ऑफ द एवेलुएटर. कि अगर हमने को डाटा की एनालिसिस रिपोर्ट करना है और डाटा जो है इज क्वालिटेटिव इन नेचर, वी शुड हैव द स्किल to convert that data into some meaningful form. And if the data is in quantitative form, we should be aware of, we should have an hands-on experience to use
to use different tools which can handle that data, which can collect that data and organize that data, and finally analysis of that data so that we can make a meaningful story. So with this one, what are the methods of data collection? ये जो data collection है, in itself falls under two broad categories. The first category is primary data collection and the second one is secondary data collection. So what is the difference between primary data collection and secondary data collection? ये हम देखेंगे अभी कि what is the difference between them. Primary data collection is the gathering of raw data collected at the source. Primary data is the raw data collected at the source. It is a process of collecting the original data by a researcher for a specific research purpose. Normally ये वो data है जो हम lab में, experiments में या questionnaire में directly इकट्ठा करते हैं. और ये जो primary data है, further we can analyze it into two segments: qualitative research and quantitative research data collection method. So that's the primary data. Then what is the secondary data? Secondary data is referred to as gathering of second-hand data collected by an individual who is not the original user. It is a process of collecting data that is already existing. What does this mean? The already existing data. इसका मतलब ये है कि ये data available है in the form of books, journals, online portals. तो अगर ये डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा. और when we are going to compare this secondary data with the primary data in terms of ease, ये जो secondary data collection है is much less expensive and secondary data is easier to collect. So question now is how we will choose between primary data collection and secondary data collection. It should not only be on the basis of a secondary data जो है that is less expensive, easier to collect, but the choice should be on the basis of nature of the research we are doing, scope and area of our research, और इसके साथ साथ जो हमने देखना है कि what are the aims and objective of our research. तो हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ लेस एक्सपेंसिव और इजियर टू कलेक्ट की बेस पे चूज नहीं करना, rather than we need to look for what are the requirements of our research, what is the nature of our research, what is the scope and area of our research, और इसके साथ साथ what are the aims and objective of our research. उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है between primary data collection method and secondary data collection method. So with this one, we are moving towards the importance of data collection. There are a bunch of underlying reasons for collecting data, especially for a researcher. Some of the reason why, what is the importance of data collection are: the first one is integrity of the research. Key reason for collecting data, whether it's qualitative data or quantitative method, is to ensure that the integrity of the research question is maintained. Integrity को maintain करने के लिए we need to collect the data. The second reason is to reduce the likelihood of errors. The correct use of appropriate data collection method reduces the likelihood of errors consistent with the result. So that is very important. If we want to reduce the likelihood of errors, we need to use the correct tools. Then comes the third point, decision making. As I have already told you, we are living in the world of information, and normally we make decision on the basis of those information. इसलिए हमें data collect करना है. And to minimize the risk of errors in decision making, it is very important that accurate data is collected so that the researcher does not make uninformed decision. Uninformed decision को हम wrong decision भी कह सकते हैं और bet भी कह सकते हैं कि it can go either way. So information based decision making normally हमें right path की तरफ ले जाती है.
And then another reason is it saves cost and time. Data collection normally saves the researchers time and fund that would otherwise be misspent without a deeper understanding of the topic or subject matter. अगर हमने डाटा कलेक्शन ही डाटा कलेक्ट ही किसी और डायरेक्शन का कर लिया तो दैट इज यूजलेस फॉर अस दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ आवर मनी एंड टाइम एंड एनर्जी एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन to support a need for a new idea, change, or innovation, we need to have the data. And to prove the need of change in the norm or the introduction of new information that should be widely accepted, it is very important to collect data as evidence to support these claims. अगर हमारे claims बड़े strong हैं, बड़े heavy हैं, then we need to have the same strong data which can support our claims over innovation. Otherwise people are not going to accept our claims. Then comes the data collection for quantitative and qualitative research. So how can we decide कि data हमने qualitative या quantitative करना है? Data collection for qualitative and quantitative research जो है depend करेगा कि what philosophical epistemology is underpinning our research to or research inquiry. तो इसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा. देन हाउ वाज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड? फॉर एग्जांपल, was it through a structured or unstructured or flexible format of data collection? And then another question is, were the question or issues discussed during data collection, they were predetermined or developed during data collection procedure? Then comes this predetermined or developed. How was the information we gather recorded? Was it descriptive, narrative, categorical, quantitative form or on a scale? और इसका जो second part है कि how the information was analyzed. Was it descriptive, categorical or numerical analysis? Then how do you propose to communicate the findings? Do you want to write in a descriptive or analytical manner? तो ये बड़ा important है for the data collection for qualitative and quantitative research. With this one, we will move towards how to select a data tool. और इसके लिए भी हमें कुछ questions हैं और वो क्या है कि define the goal of our survey. तो जो data tool है should be able to define the goal of our survey. Once the goal of our research is outlined, it will aid in deciding which questions are the top priority. A clear, attainable goal would identify why something is happening. For example, the goal of the question is to understand why employees are leaving an establishment. तो ये क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए ये हमारा गोल है. तो इसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि whether we are going for an interview, questionnaire, face-to-face interview or something like that. Then data selection tool के लिए we use close-ended, clearly defined questions. Avoid open-ended questions and ensure you are not suggesting your preferred answer to the respondents. If possible, offer a range of answers with choice, options, and ratings. Then another thing is it should be the survey outlook should be attractive and inviting. An attractive looking survey encourages a higher number of respondents to respond to the survey. You could use images, videos to keep participants glued to their screen. So ये suggestion है कि इसको थोड़ा सा अगर attractive या inviting outlook होगी तो आपका response rate बढ़ जाएगा. Ensure safety, privacy of the data. और ये बड़ा important है कि to assure the respondents about the safety of their data. If you want your respondent to be assured while disclosing details of their personal information to you, it's your duty to inform the respondent that the data they provide is confidential and only collected for the purpose of research. Then
You need to ensure your survey can be completed in record time in the proposed time. Ideally, in a typical survey, users should be able to respond in 100 seconds. It is pertinent to note that the respondents are doing you a favor. Don't stress them. Be brief and get straight to the point. तो जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा चांसेस हैं कि people will keep on filling the forms. लंबे हो जाएंगे तो फिर थोड़ा problematic हो जाएगा. Then comes another point, that is trial. Do a trial survey. Before going for a bigger jump, go for a trial survey. Review your survey before sending out your surveys to the intended respondents. Make a trial version which you shall send to the few individuals. Based on their responses, you can draw inferences and decide whether or not your survey is ready for the big time. And then comes a reward upon completion. Attach a reward upon completion for users. Give respondents something to look forward to at the end of the survey. Think of it as a penny for their troubles. और इसकी एक आसान सी एग्जांपल है कि जब भी आप किसी रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू करते हैं तो then they are not paying you something, no monetary benefit, but normally they give you 1 month subscription to their journal, to their article. You can read free articles, or you can get a discount of 15, 20 or 30% of the books or article you are going to purchase from that specific company, from that specific publishing house. So ये reward है on completion. Now comes the data collection techniques. And the first one is benchmarking. This benchmarking is basically organization and plan practices. Benchmarking normally जो है is a technique by which an organization compares its actual or planned practices to those of comparable organizations. इसका क्या मतलब है कि एक यूनिवर्सिटी जो है बेंचमार्क करती है दूसरी को जो कि उस फील्ड में कहीं ऊपर है, and they try to benchmark and try to reach to that level. So उसका बेनिफिट क्या होता है कि it identify best practices that generate ideas and measure performances. So अगर आप benchmark करेंगे तो it helps to identify best practices, generate ideas and help to measure performance. Benchmarking normally can be used to identify best practices, generate ideas for improvement, and provide a basis for measuring performance. The projects used for benchmarking can be within the organization, external to the organization, and can be that of competitor, can be within the same industry or from other industries. For example, if Pakistan wants to venture into high-speed rail project, we can benchmark our project against the high-speed rail projects in Germany, France, Japan, or China, or any other country that is already operating that specific high-speed project. This will help us to easily collect requirements and plan quality. We can actually set our expectations against an existing successful system. तो हमें उसमें help मिल जाएगी to organize, to plan practice, to identify the best practices, and if there is a problem, we can modify it, we can generate ideas, and we can measure our performance कि किसी दूसरी कंपनी ने कितने अरसे में यह काम किया, and in how much time and money spent by us to perform the same job. With this one, normally this benchmarking find uses in the process of collect requirements, plan quality management, and plan stakeholder engagement. Now the next one is brainstorming. Brainstorming basically is a technique used to identify a list of ideas. And how can we identify the list of ideas? By holding a group discussion led by a facilitator. This group can include team members and subject matter experts. And normally it is a quick way
to generate a large quantity of ideas. And normally this brainstorming it involves two stages. The first one is idea generation. And during the idea generation phase, the focus is on the quantity rather than quality. Every idea is recorded by the facilitator, और उस वक्त ये कंसीडर नहीं किया जाता कि दिस आइडिया इज यूजलेस इन द आइडिया जनरेशन फेज. और जो उसके बाद है स्टेप दैट इज एनालिसिस. Data representation techniques like affinity diagrams or mind mapping may be used to further understand the ideas generated, which could lead to new ideas. Brainstorming can be used in the process of to develop project charter, develop project management plan, and helps to collect the requirements, plan quality management, or इसके साथ साथ additionally to identify the risks in that specific project and to identify the stakeholders. कि इसके stakeholder कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, HEC, PHEC. तो ये brainstorming help करती है इन सारे प्रोसेस में to develop the project charter, इसके मैनेजमेंट प्लान में, डाटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स में, क्वालिटी मैनेजमेंट के प्लान में, इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, एंड फाइनली द स्टेक होल्डर्स. देन अनदर डाटा कलेक्शन टेक्निक इज चेक शीट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड टैली शीट्स. जो चेक शीट्स है, दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू कलेक्ट डाटा अबाउट अ पोटेंशियल क्वालिटी प्रॉब्लम. Check sheets may be used to quantify defects by type or by location or by cause. तो नॉर्मली चेक शीट जो है, अगर आपने रूटीन में कोई डेली में कोई चीज प्रैक्टिस करनी हो तो चेक शीट को यूज करते हैं और टू फाइंड द डिफेक्ट्स. चेक शीट्स जो फ्रीक्वेंटली यूज की जाती हैं इन क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन to remind the inspectors of the various departments that has to be checked. Auditor use checklists to ensure they audit all the relevant clauses in a quality management system. और जो चेकलिस्ट है उनको अप्लाई किया जाता है टू डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए, टू मैनेज क्वालिटी के लिए, कंट्रोल क्वालिटी के लिए, एंड टू आइडेंटिफाई रिस्क्स के लिए. So with this one we are moving to data collection tools. And what are data collection tools? The data collection tools basically refer to the devices, refers to the instruments used to collect data. कुछ examples हैं इसकी. For example, interview is one of them, paper questionnaire the second one, observation the third one, then comes the focus group, and then combination research, and finally the reporting one. So ये कुछ data collection tool हैं. Now we will look them one by one. ये जो इंटरव्यू है, द फर्स्ट वन इज इंटरव्यू. बेसिकली एन इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन between two individual. And what is the purpose of that face to face conversation? The sole purpose of collecting relevant information to satisfy a research purpose. इंटरव्यू की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, the second one is semi-structured interview, and the third one is unstructured interview. तो हम थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि what is structured interview. Structured interview basically is a verbally administrated questionnaire. Structured interview is basically a verbally administrated questionnaire. In terms of depth, it is surface level and usually completed within a short period of time. और अगर हमें स्पीड एंड एफिशिएंसी चाहिए, then the structured interview is highly recommended, but it lacks depth. An interview schedule is a written list of questions, open-ended or closed, ये depend करेगा, prepared for use by interviewer in a person-to-person interaction. और ये जो person-to-person interaction है, that can be face by face, by telephone, or by any other electronic media. So structured interview basically is written questionnaire, और जो इसकी second type है, that is called semi-structured interview. वो नाम indicate कर रहा है कि what does this may mean.
तो सेमी स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है, they subsist several key questions which cover the scope of the area to be explored. It allows a little more leeway for the researcher to explore the subject matter. तो इसमें आप flexibility present है, हम questions को change भी कर सकते हैं. And then comes a third type, that is unstructured interview. Unstructured interview basically हैं, they are in-depth interview that allows the researcher to collect a wide range of information with the purpose. The advantage of this unstructured interview is the freedom it gives us as a researcher to combine structure with flexibility. Even though iska jo drawback hai, that is more time consuming. One of the main advantages of the structured interview is that it provides uniform information, जो कि लैग करता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी ली गई, क्वेश्चंस को चेंज किया गया. Then comes the pros, benefits of the interview, and cons, the drawbacks. So we will start with the pros, the advantages of the interview. The interview is more appropriate for complex situation. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि if you want to study complex and sensitive areas, for example, the interviewer has the opportunity to prepare a respondent before asking sensitive questions. उसको वो तैयार करता है और माहौल के मुताबिक then it asks the question, sensitive question, and to explain complex ones to the respondent in person. The second advantage is it is useful for collecting in-depth information. In an interview situation, it is possible for an investigator to obtain in-depth information by probing. In situations where in-depth information is required, interviewing is the preferred method of data collection. क्योंकि situation के मुताबिक especially in unstructured interview, we can change the questions. And then this information can be supplemented. An interviewer is able to supplement information obtained from responses with those gained from observation of non-verbal reactions. तो आपके पास चांस होता है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, एंजाइटी लेवल को भी फेस कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू. एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्लेन्ड. क्योंकि क्वेश्चनर में या रिटन फॉर्म में हमारे पास ये लिबर्टी नहीं होती. It is less likely that a question will be misunderstood as the interviewer can either repeat a question or put it in a form that is understood by the respondent. और इसके साथ है interviewing has a wider application. An interviewer can be used, an interview can be used with almost any type of population. For example, with the children, the handicapped person, the illiterate, or very old. Why it has a wider application? Because we have the liberty to explain the question. We can supplement the information. तो ये तो इसके कुछ benefits हैं या advantages हैं. Then comes what are the disadvantages of interview. The first one, it's time consuming. हमें पता है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो we need to be realistic with the timeline कि हमने कब तक अपना काम कंप्लीट करना है. Then if it's a face-to-face interview, उसके लिए हमें resources चाहिए. So it's a time consuming one and then expensive to collect. कि अगर हमें डेमोग्राफिकल पोजीशन पे करना है, किसी की जॉब लोकेशन पे जाके करना है, तो इसके लिए we need to be ready to spend some money for that purpose. Then comes the second type, that is questionnaire. A questionnaire basically is a written list of questions, the answers to which are recorded by respondents. So basically, how interview is different from questionnaire. जो questionnaire है, in a questionnaire, respondents read the question, interpret what is expected, and then write down the answers. The only difference, the major difference between the interview schedule and a questionnaire is that in the form, it is the interviewer who asks the question and, if necessary, explain them and record the respondent's replies on an interview schedule. And in the questionnaire, normally replies are recorded by
respondents themselves. So difference between interview and questionnaire is same question is asked by different respondents. The scheme is always the same or pattern is always the same, but what we are getting is different response because different respondents are there. So the same way, this questionnaire may have some of the advantages, some of the pros, and some of the disadvantages, that is drawbacks. The first advantage of questionnaire is it is less expensive. As we do not interview respondents, we save time, we save the money spent on human experience, and we save financial resources. The use of questionnaire is comparatively convenient and inexpensive as compared to interview. And there is a special case when the questionnaires are administrated collectively to a study population. It is an extremely inexpensive method of data collection. And second advantage is it offers greater anonymity. There is no face-to-face interaction between respondents and interviewer. So जो questionnaire का method है, it provides a greater anonymity. कुछ ऐसी situation होती हैं where sensitive questions are asked, and this questionnaire helps to increase the likelihood of obtaining accurate information. तो ये इसके benefits हैं. Then comes few of the drawbacks. कि questionnaire की application is limited. Main disadvantage questionnaire का है is limited to a study population that can read and write. It cannot be used on a population that is illiterate, very young, very old or handicapped. Basically ये advantage था interview का. तो questionnaire का यही drawback है कि हम छोटे बच्चों से, handicapped से या illiterate से questionnaire fill नहीं करवा सकते. And another drawback is response rate is low. Questionnaire जो हैं, they are notorious for their low response rates. People normally fail to return them. If you plan to use a questionnaire, always keep in mind that because not everyone will return their questionnaire, your sample size will in effect be reduced. The response rate depends upon a number of factors. और कुछ factor क्या हो सकते हैं? The interest of the sample in the topic of the study, the layout and length of the questionnaire, the quality of the letter explaining the purpose and relevance of the study, and the methodology used to deliver the questionnaire. तो कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि normally अगर if we want to have 300 responses, we need to send at least 2000 questionnaires. तो फिर हमें ये response rate मिलेगा. तो ये इसका drawback है कि normally the response rate is very low. And then another is there is a self-selecting bias. Not everyone who receives a questionnaire returns. So there is a self-selecting bias. Those who return their questionnaire may have attitude, attributes, or motivations that are different from those who do not send their questionnaire back. So if the response rate is very low and findings may not be representative of the total study population, जो कि aim नहीं है. Search का aim क्या होता है कि आपके result जो है वो base करें on the basis of all of your data, basis of all of your samples. And then another drawback is the opportunity to clarify issues is lacking in when we are performing this questionnaire. If for any reason respondents do not understand some question, almost no opportunity for them to have the meaning clarified unless they get in touch with you. You mean the researcher, which normally does not happen. If different respondents interpret questions differently, this will definitely will affect the quality of the information provided. So we will move to the next type, that is observation. Observation is basically way of gathering data by watching behavior, events, or noting physical characteristics in their natural setting. So observation is way of gathering data by watching behavior, events, or noting physical characteristics in their natural setting.
ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो कुछ चीजें नाम से भी क्लियर है. द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस watching the events or situations or activities from inside by taking part in the group to be observed. जो रिसर्चर है normally freely interacts with others, participates in various activities of the group, acquire the way of life of the observed group or his own, and study their behavior or other activities, not as an outsider but by becoming a member of that group. तो नॉन पार्टिसिपेंट में इसके ऑपोजिट है कि वो पार्टिसिपेशन नहीं करता, एक्टिविटीज में टेक पार्ट नहीं करता. So when the observer observes the group passively from a distance without participating in the group activities, it is known as non-participant observation. और इस केस में observer researcher does not try to influence them or take part in the group activities. जो second observation की type है, that is simple versus behavioral. Simple observation जो है is to generate research that are direct and immediate, that is not generated or colored by interpretation, artificial experimental conditions, memory or other factors. उस केस को हम कहते हैं simple observation. And behavioral जो है observation is the systematic recording of behavior by an external observer. The systematic nature of behavioral observation is characterized by carefully detailed procedures that are designed to collect reliable and valid data on clients' behavior. Then the third type is direct observation versus indirect observation. A direct observation collects information only from an individual's senses and is not affected by thoughts. In indirect observation, the observer bases the information on his previous knowledge too. Indirect observation involves the analysis of textual material generated either indirectly from the transcription of audio recordings of verbal behavior in natural settings. For example, the conversations, the group discussions, or directly from the narratives. Then comes another type, that is covert versus overt observation. Covert versus overt observation has arguably the most noticeable difference in the role the researcher play in the process. Covert observation takes place when a researcher is observing the activity in secret. और secret का क्या मतलब है? Probably through a hidden video camera or like that. और जो overt observation है तो वो secret में observe नहीं करता. Then comes recording observation. So recording observation, there are different ways. The first one is narrative recording. In this narrative recording, the researcher records a description of the interaction in his own words. Such type of recording clearly falls in the domain of qualitative research. Usually, a researcher makes brief notes while observing the interaction and then soon after completing the observation, make detailed notes in narrative form. Some researchers may interpret the interaction and draw conclusions from it. The biggest advantage of narrative recording is that it provides a deeper insight into the interaction, and disadvantage is that an observer may be biased in his observation, and therefore the observation, the interpretation, and conclusions drawn from the observation may also be biased. Interpretations and conclusions drawn are bound to the subject reflecting the researcher's perspective. If a researcher's attention is not in observing, they might forget to record an important piece of interaction, and obviously the process of recording part of the interaction may be missed. Hence, there is always the possibility of incomplete recording or observation. When there are different observers, the comparability of narrative recording can be a problem. तो कुछ इसके advantages हैं और कुछ disadvantages हैं. The second type is using scales.
At times, some observers may prefer to develop a scale in order to rate various aspects of interaction or phenomenon. The recording is done on a scale developed by the observer or by the researcher. और जो scale है इसकी different types हो सकती हैं. A scale may be 1, 2 or 3 directional depending on the purpose of the observation. To record the nature of the interaction within a group, there are 3 directions. वो कौन-कौन सी हो सकती हैं? Positive, negative और इनके in between neutral. The main advantage of using scale in recording observation is that we do not need to spend time on taking detailed notes and can thus concentrate on observation. लेकिन जो problem associated है इसके साथ with using scale, it does not provide specific and in-depth information about the interaction. It may suffer from different errors. For example, if the observer is extremely confident of his ability to assess the interaction, they may tend to avoid the extreme positions on the scale using mostly the central part. और ये जो error है, tendency है, this is basically called error of central tendency. और जो कुछ observer हैं, they may prefer certain sections of the scale in the same way that some teachers are strict markers और कुछ जो हैं, they are not. When observers have a tendency to use a particular part of the scale in the recording and interaction, इस phenomena को हम कहते हैं elevation effect. और जो third type है, third effect है, that is called halo effect. Another type जो error की है is the introduction when the way we rate an individual on one aspect of the interaction influence the way rate that individual or another aspect of the interaction. And something similar to this happen in teaching when a teacher's assessment of the performance of a student in one subject may influence his rating of that student's performance in another, और इसको क्या कहते हैं? Halo effect. Then the third type is called categorical recording. Sometimes an observer may decide to record his or her observation using categories. The type and number of categories depend upon the interaction and the observer's choice about how to classify the observation. इसकी भी different type हो सकती है. For example, 2 category जो system है, that is by just categorizing them as passive and active. और जो 3 category system है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं कि always, sometimes, never, that someone is always participating in a game. और second observation है कि sometimes they are participating. Third observation है they are never participating in any game. और जो 5 category system है उसमें हम choice की range बढ़ा देते हैं कि we may strongly agree to something, we may agree, or we are uncertain, or we may disagree, and finally we strongly disagree. The use of these categories to record an observation may suffer from the same problem as associated with scales कि हम tendency किसी खास की तरफ हमारी हो जाए. Then comes the recording on electronic devices. Observation can also be recorded on videotape or other electronic devices, and then we can make an analysis. The advantage of recording an interaction in this way is that the observer can see it number of times before interpreting an interaction or drawing any conclusion from it, and they may also invite other professionals to view the interaction in order to arrive at more objective conclusions. One of the disadvantages is that some people may feel uncomfortable or may behave differently before a camera. When you are seeing that someone is recording you, then sometimes people change their behavior. Therefore, the interaction may not be a true reflection of the situation. So, अब इनके भी कुछ advantages हैं, कुछ disadvantages हैं observation के. The first advantage is it's easy to administer. Then there subsists a greater accuracy with results, and it is a universally accepted practice, and it diffuses the situation of an unwillingness of a respondent to administer a report, and it is appropriate in certain situations. The drawbacks are some phenomena are not open to observation, and the most important one, it cannot be relied upon.
और इसमें से क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर की बायस में अराइज एंड बेसिकली इट्स एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर and its validity cannot be predicted accurately. Then another type is called focus groups. Focus groups are basically the research involves asking open-ended questions to a group of individuals, or your group of individuals जो है normally ranges from 6 to 10 people. और जो important condition है focus group के लिए कि we need to recruit the right participants, we need to choose a moderator, we need to record the meeting, we need to discuss it, then conduct sessions with the report and use this data to make plan of action. So focus group में क्या है, we need to recruit the right participants, moderator को choose करना है, meeting record होगी, discussion आएगी, फिर हमें report के साथ session लगाने हैं and we use data to make plan of actions. So some of the advantage of focus groups are information obtained is usually very detailed. So we can have a detailed information. The second one is it's a cost effective when compared to one-to-one interview. And the third advantage is it reflects speed and efficiency in the supply of results. जैसे इसके कुछ advantages हैं, the same way we have some disadvantages, the cons. And the first disadvantage is it lacks depth in converting the nitty-gritty of the subject matter. Then bias might still be evident, and इसमें जो most important item है, it requires interviewer training, and researcher has very little control over the outcome. और जो सबसे बड़ा drawback है इसमें कि a few vocal voices can drown out the rest, and then finally difficulty in assembling all inclusive groups. So focus group के बाद जो another type है, that is called combination research. Combination research basically is a method of data collection, the use of innovative methods to enhance participation to both individual and the groups. And basically it's a combination of interviews and focus groups while collecting qualitative data. So नाम से भी indicate है कि it's a combination, it can be combination of various things. तो इसके भी कुछ advantages हैं और कुछ disadvantages हैं. The first advantage is it encourage participants to give response. क्योंकि हम एक से ज्यादा method use कर रहे हैं, then it stimulates a deeper connection between participants. The relative anonymity of respondents increase participation. And it improves the richness of the data collected. क्योंकि एक से ज्यादा मेथड से आए हैं, हो सकता है कुछ लोगों को एक मेथड पसंद ना आए, वो दूसरे में शेयर कर लें, so we may have the more information. And the drawbacks are they are costly. Combination research is costly as compared to the individual method. And second one is it is the most time consuming one, so timeline को attain करना इसमें problematic हो सकता है. Then comes the reporting. The process of gathering and submitting data to be further subjected to analysis is called reporting. और इसके भी कुछ advantages और disadvantages हैं. The first advantage is that we can have informed decision making and it's easily accessible. Reports are easily accessible. और जो drawbacks हैं कि self-reported answers may be exaggerated. The results may be affected by the bias. The respondents may be too shy to give out all the details in the reports, and inaccurate reports will lead to uninformed decisions or even wrong decisions. Then comes some of the scientific data collection methods, for example, from samples, from instruments, from manuals, from previous experimentation, from environmental factors, from human interactions, and from self-studies. And normally, when we work in the labs, we choose to the questioning का method same है, हमने same way पे research goal को करना है. अब जो data collection है वहाँ पे slightly difference आ गया, rather than doing it by the questionnaire, rather than doing it by the interview, rather than doing it by the surveys, we normally prepare the sample in the lab. और उनकी जो samples की composition है उसके लिए हम अब different method use करते हैं. हम सबसे पहले calculations करते हैं, then we try to make over samples
और उन सैंपल्स को जो ट्रीटमेंट्स करनी है वो करने के बाद वी नीड टू टेक देम टू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली ये भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि टू डू द सेम थिंग, टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन वी मे हैव द चॉइस टू चूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो फिर इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज करने हैं उनके लिए फर्स्ट थिंग वी नीड टू सी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड इज व्हाट इज आवर रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस मीन कि हमें एक्यूरेसी कितनी चाहिए, वी आर डूइंग इट फॉर अ कमर्शियल पर्पस और वी वांट टू गो फॉर लुक फॉर द न्यू मटेरियल्स। तो उस पे फिर इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी और कितने डेसिमल प्लेसेस तक उनकी एक्यूरेसी है, दैट मैटर्स अ लॉट। फिर जो डाटा है हम उस डाटे को एनालिसिस कैसे करेंगे, किस लेवल तक उसकी एक्यूरेसी करेंगे, व्हाट आर द हाउ मच error is should be there, तो ये भी मैटर करेगा। then comes the whether these instruments are we are using them manually, we are getting information, we are getting data from them by doing this manually things, or we are taking the technology help. For example, if we want to conduct an experiment for 24 hours and if we want to take information for after every 2 minutes, तो क्या हमें हर बार को बटन प्रेस करना है, या वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर आफ्टर एवरी 2 मिनट्स द साइकिल विल रन अगेन एंड अगेन और वो सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। तो नॉर्मली इफ वी हैव द ऑटोमेटेड सिस्टम वी विल हैव मोर इंफॉर्मेशन, वी विल हैव मोर डाटा। तो समटाइम्स हम कोई प्रीवियस डाटा को, प्रीवियस एक्सपेरिमेंटेशन को, प्रीवियस डाटा को कंपेयर करते हैं विद अ न्यू वन, दैट इज आल्सो द पॉसिबिलिटी। फिर अगर हम लैब्स में काम कर रहे हैं तो environmental factors are very important, especially the cases where the chemistry is, where the humidity, where the temperature conditions जो कि इफेक्ट कर सकती हैं हमारे सैंपल्स को, तो वो environmental factors हमने मेंशन करने हैं, मॉनिटर करने हैं और अगर नेसेसरी है तो कंट्रोल करने हैं, वरना वो एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ डाटा को इफेक्ट करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे मैंने पहले कहा कि whether we are doing it manually, for every reading we need to calibrate it, or we need to calibrate it only once and then we need to start the experiment, and after 2 minutes or 3 minutes or 10 minutes or after every 10 degree centigrade कि हमारे पास वो डाटा कलेक्ट होता जाएगा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सम टाइम ह्यूमन पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी हो जाएंगी कि कुछ लोग जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके रिजल्ट एज कंपेयर टू द इनएक्सपीरियंस्ड वन बड़े डिफरेंट होते हैं। सो एक्सपीरियंस्ड पीपल एक्चुअली सम टाइम हैव a good relationship with the equipment. The same equipment used by two different persons sometimes can generate different results. तो हमें पहले अपनी एक्सपर्टी लेवल को मेंटेन करना है, उन इक्विपमेंट के साथ फेमिलियर होना है, then we are supposed to do the experiments. And then comes the self study. The self study mean हमारे पास शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है but we are making something, या कुछ हमने काम किया और aim was different but we are getting different results और हमने उन पे रिसर्च शुरू कर दी और उससे हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। ये है डिफरेंट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और लैब में जो हमने डाटा इकट्ठा किया। अगर हमने जो डाटा इकट्ठा कर लिया देन वी नीड टू वैलिडेट द डाटा। सो व्हाट इज डाटा वैलिडेशन? Basically data validation refers to the process of ensuring the accuracy and quality of the data. And how can we implement this data validation? We can implement it by building several checks into a system report. And why we want to do that? We want to ensure the logical consistency of input and stored data. जैसे मैंने अभी कहा कि इफ वी आर वर्किंग विद ऑटोमेटेड डाटा, द डाटा इज, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा है चाहे वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, दैट इज एंटर्ड विद मिनिमल और नो ह्यूमन सुपरविजन। Therefore it is very important, therefore it is necessary to ensure that the data that enter the system is correct and meet the desired quality standards. The data will be of little use or no use at all if the data entered is incorrect, and rather than giving us the benefit we have the problem of cleaning that data. तो हमें उस क्लीनिंग के लिए भी एनर्जी, टाइम और मनी तीनों रिक्वायर्ड होंगी। So data validation is very important to ensure the accuracy and quality of the data. So some of the data validation methods are
There are a number of ways, but the most common types of data validation are, the first one is data type check. What does this data type check mean? Data type check confirms that the data entered has a correct data type. For example, a field might only accept the numeric data, numbers को सिर्फ accept करना है. If this is the case, then any data containing other characters such as letters or special symbols should be rejected by the system. और उस specific field में सिर्फ और सिर्फ numbers को add होना चाहिए, neither letters or neither special letters. The second type is called code check. वो कोड चेक जो है बेसिकली इट इंश्योर्स दैट अ फील्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ वैलिड लिस्ट ऑफ वैल्यूज और फॉलो सर्टेन फॉर्मेटिंग रूल. इसकी जो आसान एग्जांपल है कि इट इज इजियर टू वेरीफाई दैट अ पोस्टल कोड इज वैलिड बाय चेकिंग इट अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड्स. तो अगर वो लिस्ट ऑफ वैलिड कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब है कि कोड चेक में वो फेल हो गया, और इसको हम कंप्यूटर साइंस में भी यूज करते हैं. Then comes the third type of data validation, that is called range check. ये जो range check है basically it will verify whether input data falls within a predefined range. इस predefined range का क्या मतलब है कि being a researcher, if we are working in some special area, on some specific area, we actually need to know कि data limit points क्या होगी, data की boundaries क्या हैं. For example, if we are working with geography, we knew that latitude और longitude की certain value हो सकती है. Latitude value जो है normally that is between -90 degree to 90 degree, और longitude values जो है they must be between -180 and 180 degree. अब अगर कोई भी वैल्यू इस वैल्यू से बियॉन्ड आ रही है सिस्टम में, it mean it is not within the range, and whatever data we are collecting is not fine. We need to check where the problem is, we need to rectify that problem, और हमें proper data को validate करना है. एक और एग्जांपल है कि अगर हम कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं और कैपेसिटेंस की वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हैं, तो we knew कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस नहीं हो सकती. If it's not possible and we are getting the negative values, it means we need to think, we need to recheck, we need to find the reasons, we need to adjust our system again, and then data collection procedure should start. The fourth type of data validation is format check. Many data type follows a certain predefined format. Predefined format का एक common use जो हम करते हैं आमतौर पे date लिखते हैं. There are normally the two ways of writing date. The first one is the normal way we write it as day, month and year. And कुछ जगहों पे हम इसे opposite करते हैं, the starting with the year, then month and then day. A data validation procedure ensures dates are in the proper format that helps maintain consistency across data through time. जैसे मैंने बताया कि अगर हमने ऑटोमेटिक इक्विपमेंट को लगाया है रीडिंग पे, तो हर रीडिंग के लिए साथ साथ टाइम नोट हो रहा है. इफ टाइम एंड डाटा इज नॉट मैचिंग, इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम. तो हमने उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फाइंड करके हमने अपने डाटा को वैलिडेट करवाना है. देन कम्स द कंसिस्टेंसी चेक. जो कंसिस्टेंसी चेक है is a type of logical check that confirms the data has been entered in a logically consistent way. Logically consistent way का क्या मतलब है कि अगर हम कोई postage send करते हैं from Lahore to Karachi, we send it on a specific date, और हमें ये पता है कि data postal delivery से पहले, postal send करने से पहले, it cannot be received at the destination. So if this is happening, it means there is a problem. So delivery date should always be after the shipping date of a parcel. और ये है consistency check. इस तरह की consistency check हम अपने हर system पे लगा सकते हैं, whether it's a qualitative system or quantitative system, or whether we are working in the lab. तो ये consistency check is the must one. Then comes the uniqueness check. Some data like IDs, email addresses, they are unique in nature. If they are unique in nature, a database should likely have unique entries on that specific fields.
और अगर उस फील्ड में, यूनिक फील्ड में, इफ वी आर हैविंग मोर देन द वन एंट्री, इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम. A uniqueness check ensures that an item is not entered multiple times in a database, और वो हमें डाटा की यूनिकनेस को इंश्योर कर रहा है और डाटा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है. जब हमारा डाटा वैलिडेट होगा, सो फर्स्ट स्टेप इज वी आर कलेक्टिंग द डाटा. देयर आर नंबर ऑफ वेज क्वालिटेटिव के लिए, देयर आर नंबर ऑफ वेज क्वांटिटेटिव के लिए. वी कैन कन्वर्ट क्वालिटेटिव डाटा टू समहाउ क्वांटिटेटिव डाटा. अब ये हमारी सर्च के एम पे है, स्कोप पे है, हमारे ऑब्जेक्टिव पे है कि इन विच फॉर्मेट वी वांट टू प्रेजेंट इट. एंड देन if we are working in the lab, we are working with the project, we are working with the final year thesis, we are working with the PhD thesis where the people are supposed to work in the labs. तो वहां भी हमारे पास ऑप्शन है कि whether we are getting manual data और automated data, और उस डाटे को हमने उसकी टाइप चेक से, कोड चेक से, रेंज चेक से, फॉर्मेट चेक से, कंसिस्टेंसी चेक से और यूनिकनेस चेक से कंफर्म करना है. And then we will move to the next step, and that is data organization and data interpretation. तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे और we will interpret the data, तो we may reach to the wrong conclusions. So this data collection tool and technique is very important. Otherwise, all our effort will go in vain. So thank you very much for your time and attention. So this is all from my side. So if you have any question, you are more than welcome. सर आई वांट टू आस्क वन बाय वन अपना माइक अनम्यूट करके आप सर से सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अब यास्मीन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से. ज़ाला को बात कर रही हूँ फैसलाबाद से. सर ये टाइप्स ऑफ वन बाय वन प्लीज. डॉक्टर साहब, डॉक्टर यास्मीन को अगर पहले आप बात कर लेने दें प्लीज. हाँ जी सर. सर मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वैलिडेशन और ये जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों साथ साथ आते हैं, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही उसका है, इनका मतलब पर्पस और इनका मीनिंग एक ही बनेगा. अच्छा, जो रिलायबल है ना, आमतौर पे लिया जाता है रिलायबिलिटी को आफ्टर द कंक्लूजन. डाटा वैलिडेट किया आपने, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने कर लिया कि आपका डाटा इज वैलिडेटेड, कि डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उसकी बेसिस पे, क्योंकि आपको शायद याद हो कल रिसर्च डिजाइन में मैंने बताया था कि जब आप क्वेश्चन से आंसर की तरफ मूव करते हैं तो पर्सपेक्टिव भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो सेम डाटा को आप लें, डिफरेंट रिसर्चर्स को दें, दे माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन फॉर द सेम डाटा, सो दे कैन रीच टू स्लाइटली डिफरेंट कंक्लूजन्स. तो रिलायबिलिटी जो है ना, वो आमतौर पे बाद में आती है कि आपने जो कंक्लूड किया है वो कितना रिलायबल है. जब वो सर्विस में आएगा, जब वो आप उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद रिलायबिलिटी की बात आएगी. तो डाटा वैलिडेशन में ये है कि वट एवर यू आर कलेक्टिंग इज इट शुड बी कंसिस्टेंट. देयर शुडंट बी एनी एरर. उसकी एक्यूरेसी में, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्लियर सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. फातिमा गफार साहिबा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, सब चीजें क्लियर. आपने जितनी प्रेजेंटेशन पूरी तैयार की है उसका एक मेरे हर पॉइंट हमें समझ आता गया है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी एज अब काफी ज्यादा हो गई है. एक लेक्चर में इतने सारे पॉइंट याद रखना हमारे लिए मसला हो रहा है. इसके लिए हम परेशान है. इस सिलसिले में कुछ कहिए. आपको ना बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं. वट एवर यू आर गेटिंग, it will help or it may help you at different levels. हर आदमी की कंस्ट्रेंट्स हैं. हम में से कोई भी मशीन नहीं है कि वो 100% चीजें ऑब्जर्व कर ले. जो एक कॉन्सेप्ट है ना टीचिंग लर्निंग का, उसमें एक बड़ा क्लियर कट है कि आप 25 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज पे. और विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स ये टाइम शॉर्ट होता जा रहा है. यूज ऑफ गूगल, यूज ऑफ दीज डिक्शनरीज, ये हमारी मेमोरीज को खा रही हैं. बट इट डजंट मीन कि हमें चीजों को देखना नहीं है. वट एवर, हो सकता है कि वो पॉइंट, आपने जो बात मुझे बताई, मुझे कहीं याद रह जाए एंड आई विल कीप ऑन यूजिंग इट. तो आमतौर पे ये जो चीजें होती है ना, इन्हें कहते हैं गोल्ड डस्ट.
तो जो आप सुन रहे होते हैं, इस गोल्ड डस्ट में से हमारा दिमाग इतना तेज है कि इट कैन इजीली पिक द मेन पॉइंट्स, और जो चीजें उसमें नहीं फिट आ रही होती हैं, आपकी रूटीन में नहीं आ रही थी, इट विल कीप ऑन रिजेक्टिंग दैट डाटा। सो जितना आपके पास है ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए है, डिस्कशन के लिए है। ह्यूमन इंटरेक्शन इज अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग योर नॉलेज। तो इसके लिए जितना इंप्रूव हो जाएगा वो बहुत अच्छा है। बाकी हर इंसान ने एफर्ट अपने तौर पे करनी होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं डॉक्टर हुजाला फ्रॉम फैसलाबाद। सर ये टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था। डेटा टाइप चेक, रेंज चेक और फॉर्मेट चेक, कंसिस्टेंसी चेक, यूनिक। सर ये तो क्लियर है, बट व्हाट अबाउट कोड चेक? सर जरा इसको रिपीट कर दें, कोड चेक। कोड चेक की जो एग्जांपल मैंने दी थी ना यहाँ पे, कि जैसे आपने अगर पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोड, पोस्टल कोड यूज नहीं होता लेकिन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैं यूटी लाहौर में हूँ, मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ जीटी रोड यूटी लाहौर, और कोड हमारा है 54890। इसी तरह हर एरिया के पोस्टल कोड्स हैं कि अगर मैंने फैसलाबाद, जैसे हमारे टेलीफोन के नंबर्स जो है पिछले वक्तों में था कि 042 वाज एंड स्टिल इज द कोड ऑफ लाहौर, 041 वाज द कोड फॉर फैसलाबाद। तो इसी तरह ये कोड्स हैं डिफरेंट सिटीज के लिए। तो आपके पास कोड्स की लिस्ट है हर कंट्री के लिए, हर सिटी के लिए, विद इन सिटी जो डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया गया। तो ये एक एग्जांपल थी कि जैसे आपके पास कोड्स की लिस्ट है तो आप डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई लिस्ट है और जो डाटा आपका एंटर हो रहा है वो उस लिस्ट के मुताबिक है, तो इट शुड एंटर इनटू द सिस्टम। और अगर वो उसमें से, उस कोड की रेंज में से जो आपने डिवीजंस की हैं, अगर वो फॉल नहीं कर रहा तो इट शुड नॉट एंटर द सिस्टम। मसलन मेरा, अगर हमारा कोड है 54890 और कोई अगर इसको कोड को कर दे 54891, तो इसका मतलब है या तो वो गलत जगह डिलीवर हो जाएगा या वो डिलीवर ही नहीं होगा अगर वो कोड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है डॉक्टर साहब? यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपने कहा था कि वो जो पेपर था वो शेयर करेंगे। जी जी, वो डिस्कस करना था ना, तो उसमें से कौन से ऑप्शन? मैंने आपसे ये कहा था कि जो क्वेश्चन है, होपफुली एट द एंड ऑफ लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको अभी तक क्लियर ना हुआ हो जो फॉर्म में था? जी ओके, वो फिर हम देख लेंगे। तो उसको देख लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सिंपली सेंड मी एन ईमेल। यू हैव माय ईमेल आईडी। This topic is about research report writing, and I think you people are familiar with the what is research and what is the educational research. If I just want to share you a very simple definition of the research, because I just want that we must सॉरी have मैडम, आप काइंडली मैडम अपनी स्लाइड शेयर कर दें, आपकी आवाज अब बेहतर है। I am sharing my slides. You are not getting those slides. I think I am sharing at that time. Your slides are not visible, madam. Kindly share it again, please. Okay. I'm trying. Now, क्या visible हैं slides? जी, आपको आ रही हैं स्लाइड्स नजर? हेलो, ये स्लाइड्स शेयर हो रही हैं आपको नजर आई हैं स्लाइड्स? हेलो हेलो, जी मैडम, आपकी स्लाइड नजर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ठीक हो गया, चलें जी, गुड हो गया। तो I just want to share first of all a definition that is very simple. You can quote this definition everywhere, and when you go across the different definitions of the research, you will find that these three words which I am just telling you are very much important, and they are actually one in another form is reflecting in every definition. What are these words? For example, we define educational research systematic collection, conscious and systematic collection of
collection, analyzing and interpreting information to solve educational problems, educational issues, or to answer the certain questions relating to the education. This is a very simple definition. You can put this definition everywhere where you want. Interpreting, collecting, interpreting, and analyzing information. This is all about the research. And even these three words are actually representing the whole research process. So the first slide is about, because and whenever you complete your research project, we have to write down the report of our research project. For example, before starting the research project, we have to present the research proposal. And after the completion of the research project, we have to write down the research report. And writing the research report is very much technical. First of all, I think you must have an idea what is the difference between the research proposal and the research report. There are two major differences, not so much differences. In research proposal, which we usually write down, but write down in a future tense, that we are going, we have actually research proposal is a research plan, that we have to do this, 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 and this. In research, we have to write down research report in past tense because we have already gone through all that process. So we have, so it's mandatory that we must write the research report in past tense. The second difference is that research proposal did not include the findings of the research because we just planned, we did not conduct research. But as far as research report is concerned, findings are the main part of the research report. So now we formally start about the research report writing. First of all, my today's presentation content is, first of all, we try to define what is research report. Then we talked about the objectives and types of report writings, what are the considerations before the start of report writing, and then the significance of report writing, errors in report writing, again importance of report writing, and then structure of report writing, and then we will conclude the session. So these are the headings which we are going to discuss today in this session. And if I just want to ensure that are you people listening to me properly, someone can respond this. Not all people, anyone of you can respond me, because I just want to ensure that you people are listening me. Any one of you? जी हेलो, आप में से कोई एक इंश्योर कर दे कि आपको आवाज आ रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू जी आवाज आ रही है। अभी तक जो सबके माइक म्यूट थे। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, इसका मतलब है कि आपने उसको सुना। मैंने सिर्फ सिंपल एक बात की आपसे कि आई डिफाइन रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च। I tell you people that there are three words: collecting, interpreting, and analyzing information. These three words are crux of any definition of research. And if you put 3 to 4 more words, that these words link the previous definition with the educational research. For example, collection, analysis, and interpretation of the information regarding certain education issues. So, and I told you what is the research, what is the difference between the research proposal and research report. We write research report after conducting the research project. So, meaning, what is the meaning? A report is a statement of the results of an investigation or
of any matters on which definite information is required. किसी ने का mic open है, kindly जरा mute कर दें. A report is a statement of the results of an investigation or of any matters on which definite information is required. This is the meaning, or you can say the definition of the report. Slide show नहीं हो रही, sorry. जी? Slide show नहीं हो रही, ma'am. हो रही है मैडम, आपकी नहीं हमें हो रही, तो हो रही है, हो रही है, हो रही है. मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो फिर शायद हो जाए. आपके नेटवर्क का माइट भी इशू हो. मैडम बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू इट. ठीक है, थैंक यू. So this is the meaning of a research report. A report is a statement of the results of an investigation or of any matters on which definite information is required. So what are the objectives? Why you want to write research report? Understand the purposes of report, plan a report, understand the structure of the report, collecting information for your report, organize your information, use an appropriate styles of writing, present data effectively, understand how to lay out your information in an appropriate way. The purpose sentence could be written as either statement or a बिलाल question. साहब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. आ रही है. आवाज आ रही है. बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है. As a problem, kindly check your internet connection. मैडम आवाज भी आ रही है और स्लाइड्स भी शेयर हो रही हैं, प्लीज. Thank you so very much. Thank you. So we have two types of usually reports, that's the formal and informal. And actually, because we are concerned with the formal reports, and I have a slide that can be informal reports, research reports, analytical reports, recommendation reports, laboratory reports, technical reports, reports of a work placement or industrial visit, reports of a field trip or a field work. These are different, but we are interested in the, this is the list of the informal report, for example, progress report, a sales activity report, personal evaluation report, financial report, feasibility report, literature review and credit reports. We are interested in the research report. That's our today's topic. So first of all, before writing the research report, you have to consider certain issues, because before every writing, we have to plan and we have to make our mind. We have to think that what are we going to write. So this preliminary session where we mentally prepare ourselves that we are going to write research report, we have to consider these 6 points. For example, first of all, you have to determine the scope of the report, consider your audience, gather your information, analyze your information, determine the solutions, and organize your report. These are few few things that you have to consider before writing your report. So what is the significance of report writing, especially the research report writing? It is considered a major component of the research study as the research incomplete without report. Why? Why it is considered major component? Because whenever someone completed his her research project, so we have to think what is the purpose of the research. So if we find the answer, the purpose of the research is that mainly two purposes. Why we have a research project? First of all, we want to fill the gaps in the knowledge. The second one is we want to improve our practices, and we want to share these results with the other people. Research is not for a single person. No problem. Please mute your mic, and if you want to ask questions, just ask questions. Don't murmur. You people are interrupting me. मैडम ये स्लाइड्स को जूम कर दूं थोड़ा सा zoom कर दूं.
Okay. छोटे बच्चे बीच में टॉक के मैडम नहीं आ रहा इंटरनेट ज्यादातर हो रहा है। मैडम तनवीर कह रही है कि बाद में जमा करवाएंगे पेपर मंडे को। मैंने कहा पेपर भी Now you can see slides are not. So. Yes, madam. Yes, ma'am. Please continue. जी पहला कंपोनेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, पहला कंपोनेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि जी ये मेजर कंपोनेंट है रिसर्च का, और उस पर मैंने बताया कि इस पॉइंट को हम जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो आपको भी पता होगा, हम सबको पता है, इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू हैव टू कंप्लीट द डिग्री एंड इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री that you have to conduct research project. But the main purpose of the research is mostly we want to fill the gap in the knowledge. और इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा आप जाएंगी तो अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टडी किया हो कभी आपने, तो आप अगर देखें कि ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम केव टू नाउ प्रेजेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक जर्नी है। एंड इफ समवन आस्क यू प्लीज give the reason how a human being jumped from caves to this metropolitan city in a single word, so you have an answer. This single word is research. Research and enable human beings to go through this hard journey. So because research is not for personal use, research is for the benefit of humanity, for the benefit of human beings. So that is why it is required. It is required, and it is the duty of the researcher that the researcher must share the results with other people. So report writing, research report is one of the way, one of the method to share your findings, to share your research project with the other people. So that is why it is important. One of the significant of I think you people may understand this. The second is our report should be properly dated and signed by the concerned authority, by the chairman of the committee, or by all committee members. This has a legal significance and needs special attention in report writing, because these things, whenever you have a signed report, it become more authentic. So that is why this part is necessary. A lengthy report is not necessary. In fact, report should be brief and compact document. It should give complete picture of the problem under investigation. That's very much obvious, because if you want to share your findings with the other people, we have a purpose back up in our mind that these findings should be conveyed to the other people in a way we find them. There should not be a communication gap. Your language should not be a hurdle while understanding your research findings. So it doesn't mean that lengthy report is necessary. It must be a precise and should present the problem in a very, very clear manner. Writing reports need skills. So what kind of skills? It means you must have a writing skills. You must have a research skills. You know the research process and understand the research jargons. If you are competent enough, you can better present your report. If you don't know, if you are lacking in your language, if you are lacking in understanding the concepts of the research, you are unable to present your findings in an effective way. So first of all, you must have a certain skills, and this task should be accomplished by the researcher with the utmost care. Report communicate the planning, policies, and other matters regarding an organization or whatever
the subject of the research, whether it's an organization and something else. Reports discloses unknown information. A good report is one which is drafted in a simple and a clear language. It should not be difficult, and readers should be able to understand the entire report easily, exactly, and quickly. This is the significant. All the skills and knowledges of the professional and are communicated through a report. A report helps the top line in decision making. A true and balanced report also help in problem solving. A report should be in a proper format. The report should have all the essential components such as a title, introduction, finding, and recommendation. The report presents aggregate information on various aspects of the business, organization, or educational sector. In a report writing, attention should be given to certain essential technical details. For example, the pages and the paragraph of the report should be numbered properly. Marginal heading and title should be given. This gives convenience to the reader. The data collection, analysis, and interpretation of the data, conclusions drawn, and recommendations made in reports should be made accurate so to make the whole report reliable and dependable for future reference and also for policy decisions. अगर आप इस सारे जो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं इसका नटशेल में आपको बताऊं तो देखें, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके पास पड़ता है किसी भी चीज का या किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वो ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट लुक में देखने में कैसा लग रहा है। अब देखने में कैसा लग रहा है मतलब उसमें बहुत सारी फिर चीजें आ जाती हैं। देखें पेपर की क्वालिटी क्या है, उस डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज कितना अच्छी तरह से किया गया है, उसके अंदर सीक्वेंस का ख्याल किस तरह से रखा गया है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो है उनको कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है। तो अगर ये सारी चीजें जो हैं लिखते हुए रिपोर्ट को आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो सिग्निफिकेंस है रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट यूज होती है रेफरेंस के लिए, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स यूज होती हैं दूसरे सर्चेस में गाइडेंस के लिए, रिपोर्ट्स यूज होती हैं प्रोफेशनल की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। देखें चाहे कोई मेडिकल प्रोफेशन में है या टीचिंग में है, हर फील्ड में रिसर्च होती है और हर फील्ड की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। आप अपनी, क्योंकि अगर आप इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एंड लर्निंग एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। ये स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है कि हमने जो सीखा हम आगे वही सिखाएंगे। एवरी डे थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। और खास तौर पर आप ये देखें जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, इवन आप 2 years बैक देखें, we are not I think very much involved in the online teaching and learning. Now more than half of your system is shifted on that online learning. Even we people are practicing this, but 2 years before COVID, we don't have an idea how can we use this technology to teach the people, to train the people. So things, but if we stuck ourselves, अगर हम कुएं के मेंढक ही रहेंगे, we are not learning, और हमारी लर्निंग कहाँ से होगी? रिसर्च से, रिसर्च फाइंडिंग्स। अल्टीमेटली हमने ये सोल्यूशन ढूंढा कि अगर हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो व्हाट एल्स वी शुड डू, बिकॉज हमने चीजों को रोकना नहीं था, चीजों को आगे चलाना था। तो ये डायनेमिक प्रोसेस क्यों सक्सेसफुल होता है कि लोग रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो फिर प्रैक्टिशनर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस उसी वक्त ठीक हो सकता है, उसी वक्त इफेक्टिव हो सकता है अगर आप लोगों को उन फाइंडिंग्स को समझा हो, अच्छे तरीके से समझा हो। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। तो वो उसको उसकी सिग्निफिकेंट को इनहांस करने के लिए और बेहतर करने के लिए उसके फॉर्मेट, उसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को केयरफुली एनालाइज करने की जरूरत है। So these are the bad aspects of report. अब ये bad aspect ये बोरिंग हो सकती है। अब बोरिंग इन अ सेंस कि इफ यू हैव अ, देखिए बोरिंग होने के 3-4 तरीके हो, 3-4 वजूहात हो सकती हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट की नहीं है तो आप बोर हो सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप तब भी बोर हो सकते हैं।
अगर आपको एक्सेस में इंफॉर्मेशन मिल रही हैं और वही इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, तो हम फिर भी बोर हो सकते हैं। ठीक है, सो वन ऑफ ये बैड रिपोर्ट्स में जो बैड रिपोर्ट होगी वो ऑडियंस को बोर करेगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बाइस्ड एज अ राइटर, बाइसनेस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। सेक्रेटेरियन बाइस, जेंडर बाइस, सिमिलरली आप लैंग्वेज बाइस्ड, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें एथनिसिटी के हवाले से। तो अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो किसी तरह टिल्ट नजर आएगी कि एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रही है या सिर्फ किसी सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कर रही है, तो इट बिकम बाइस्ड. So we have to avoid these. It must be it should not reflect any gender bias, any ethnicity bias, any language bias. As a researcher, we portray ourselves a very objective person. I know because it's quite difficult for a human being to become an impartial entity. But if you are a researcher, you tried your level best to control that bias. And this should be reflected in your research report. Again, language. If when you are writing report and you are using language that is complex, that is too wordy, long sentences, and you mix the concepts, so it's become difficult to understand, and it create a hurdle for the people lost interest, and your report just become a pieces of paper that someone kept in the cupboard and in shelf and so on. So language should be easy to understand, should be simple, it should be clear, concise. So again, I talked about the lengthy. The report should not be too lengthy. It is not a criteria for a good report that report should be a lengthy. It should be a precise, concise, and very much clear. So values of the research report has communicative values, and again it comprises of statistical analysis and recommendations. So these are the different sections of the report. For example, preliminary material that contains title of the report, table of the content, and abstract. And then main body of the report, introduction, literature review, methodology, results, discussions, conclusions, recommendations, and references. I think all people are familiar with these terms. If you have one or two research project in the form of your thesis or dissertation, you people know these terms very well. So first of all, what is the title? A short, clear title which clearly indicates what the report is about. अगर मैं आपसे आपके रिसर्च टॉपिक की बात करूं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो टॉपिक है, जब वो आपके टाइटल पेज पे होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक टाइटल पेज शुड बी वेरी कैची and must seek the interest of the audience. If title is not completely organized and it's a sort of sloppy and floppy, it cannot catch the attention of the people, of the interested readers. So you must focus on this. So title of your research project should be very much clear. आपकी सहूलत के लिए इट्स माय एक्सपीरियंस कि मैं आपके साथ शेयर करूं. Title should be like variable of interest should be obvious from your topic. Variable of interest, okay. Your population and your research design. ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि आपके टाइटल के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. You can judge your topic, you can evaluate your topic by yourself. Just look at your topic and look, this is my topic, these are my variables, they are reflecting in my topic. This word is showing my research design, whether you are
relationship, whether you are using effect, whether you are using the word describe. These words reflect your research design. And the next, population. किन लोगों पे आप कर रहे हैं, ये 3 चीजें आपके टाइटल के अंदर होनी चाहिए। और टाइटल आपका जितना अच्छा होगा, जितना स्मार्ट, कंसाइज, प्रिसाइज होगा, वो इतना ही अट्रैक्ट करेगा लोगों को। That title page will normally include the date and the who the report is for, main audience of the report, stakeholders of the research findings and funding agencies. आपने टाइटल में जिन लोगों को आपके जो ऑडियंसेस हो सकते हैं, पोटेंशियल ऑडियंस हो सकते हैं, आपने उनको टू सम एक्सटेंट उनको अट्रैक्ट करना है। वो ऑडियंस कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, द प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो आपके ऑडियंस हो सकते हैं। सिमिलरली आपके जो इफ आई टॉक्ड अबाउट प्योरली एजुकेशनल रिसर्च, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपके इंटरेस्टेड हो सकते हैं उस रिपोर्ट में। सिमिलरली जो आपकी रिसर्च को फंडिंग दे रहे हैं या फंडिंग एजेंसीज हैं, वो जो हैं वो आपके पोटेंशियल ऑडियंस हो सकते हैं, तो उनको आपने अट्रैक्ट करना है। Again, the next thing is, first is the title page. The next very page is the list of contents. The table of content is an organized listing of your documents, chapters, sections, and often figures, clearly labeled by page number. ये याद रखिएगा कि जब भी आप अपना list of content बनाते हैं, आपने उसमें एक हायरार्की के साथ जाना है कि मैंने कौन सी चीज पहले लिखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, एज पर द नीड ऑफ योर रीडर। और आपने इस बात को ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी जम्बल्ड, शुड नॉट बी मिक्स्ड, शुड नॉट क्रिएट हैजर्ड, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। आपने उनको ऑर्गेनाइज। और लिस्ट ऑफ कंटेंट क्यों जरूरी है? देखें, ऑल द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर होल रिपोर्ट. Sometimes some people are interested in different section of your report. So it's for the convenience of for those people. If someone is interested just in your methodology, and the person just look at your list of content and the person can find the page number. So methodology chapter is on the page number 70 or the page number something like that. The person can directly approach that page number and save the time. So that is why very properly arranged content list along with the page numbers. Reader should be able to look at your table of content pages and understand immediately how your document is organized. That is the first thing that create impression of your report. If your table of content is organized in a good manner, it create a good effect. The table of content should list all front matters, main content and back matters, including the headings and page numbers of all chapters and the bibliography. A good table of content should be easy to read, accurately formatted and completed last so that it is 100% accurate. कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मेन चीज मैटर करती है, मेन कंटेंट मैटर करता है, मेन फाइंडिंग्स मैटर करती हैं, बट दैट इज नॉट द केस. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट द इंप्रेशन योर रिपोर्ट क्रिएट फॉर द रीडर्स, आई थिंक for that impression, these things are also very much important. That's the how your document is formatted and how it is organized. These things also matter a lot, equal to the content. Although you can complete a table of contents manually, mostly people do manually. आप लिखते हैं क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल है लोगों की कंप्यूटर कॉम्पिटेंसीज उतनी ज्यादा नहीं है, बट नाउ पीपल start while organizing all things while using computer softwares and something like that. Many words processing tool like the Microsoft Words enable you to format your table of contents automatically. The next thing, these are the preliminary pages.
और आपने ये याद रखना है कि आपके जो प्रिलिमिनरी पेजेस हैं उनको मोस्टली आपने जो है आप जब उनको नंबरिंग करते हैं तो आपने रोमन में करना है, 1-2 फॉर्म में नहीं करना. अगेन द नंबरिंग विल स्टार्ट, एग्जैक्ट नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट. ये बहुत ज्यादा तो स्लाइड्स पूरी मुझे नहीं. जी बताइएगा, 1 by 1 पूछे ताकि. सॉरी मैम, स्लाइड्स जो है ना ये ज्यादा आपने ब्रॉडन कर दिए हैं तो वो पूरी स्लाइड शो नहीं हो रही. टॉप एंड बॉटम आर नॉट शोइंग. एब्स्ट्रैक्ट और समरी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, कुछ कहते हैं जूम करें, कुछ कहते हैं ना करें. दैट्स व्हाई. नहीं अच्छा मैडम बिल्कुल सही है. अब ठीक है. अच्छा एब्स्ट्रैक्ट और समरी. अच्छा मुझे आप अगर कम्युनिकेट कर रही हैं मेरे से तो अब टिल हमने जितना डिस्कस किया, यू गॉट इट और नॉट, समथिंग यू वांट मोर? यस मैडम, गॉट इट. Okay, good. Acha. Now after table of content, it's an abstract. Abstract is actually you can say a brief summary of your research. So the abstract should be placed immediately before the first chapter of the report. It should not be more than 300 words. ये याद रखिएगा. जो abstract है, that's very much mathematical. मसलन मैं अपने जो इसमें तो जो लिखा है वो मैं आपके लिए रीड कर दूंगी. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि हाउ आई गाइड माय स्टूडेंट्स टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं जल्दी उनको बताती हूँ कि बेटे आपने 250-300 वर्ड्स के दरमियान में रहना है. टॉपिक का बैकग्राउंड बताएं, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ, मीन 3 to 4 lines. 5 lines, methodology. 2 lines, main findings. 2 lines, conclusion. 1.5 line, recommendation. This is the formula which I usually share with my students. So now I just read this slide for you people, but you remember my personal formula. Excuse me, ma'am. प्लीज दोबारा से आपने ये जो अपने ऑन वर्ड्स में बताया काइंडली रिपीट करेंगे कि बैकग्राउंड की टॉपिक की 3 लाइंस और लाइक दैट. Yes, of course, why not? You can introduce background of your topic, your introduction of your topic. These 3 to 4 lines, not more than 4 or 5 lines. Introduction and background of the topic. Methodology, 5 lines, more than enough. 2 lines, main findings. 2 lines, conclusions, and 1.5 line recommendations. This is the format of the abstract. Thank you. Now I'm just going to read it for you. The abstract should be placed immediately before the first chapter of the report, not more than 300 words. It should take the form of a short factual statement identifying the topic of your study, the approach adopted, and the findings, including the conclusions. Bird eyes view of the result. It is likely to be used by future students and by other researchers. The abstract should give a brief exposition of the research problem, purposes of the study, scope of the study, research approach, and limitation. Now, अब एक्चुअली काम स्टार्ट हो रहा है. अगर आप देखें जिसको आप पेज नंबर 1 कहते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे, practically how I guide my students, how can they write the introduction? मैडम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. No one is listening. आ रही है मैडम आपकी आवाज. Okay. मैडम बिल्कुल आवाज आ रही है और बहुत अच्छा समझा रही हैं आप. Thank you so very much. Thank you so much. And I wish and I hope we do this session face to face. Because you know online has its own limitation. So whenever in my life we got an opportunity to have a face-to-face class, it would be a quite different. I know that there are some hurdles. You know, initially आप इतना disturb हो गए, मेरी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो वो एक मुझे I know कि mentally आप disturb हुए, but now I think हम ठीक जा रहे हैं, अब हम सही हो गए हैं. थोड़ा सा टेक्नोलॉजी तंग करती है,
लेकिन अल्टीमेटली इंसान को अल्लाह ने बनाया इसीलिए कि इन सब चीजों को कंकर करे, और वो कंकर करना ही रिसर्च है एक्चुअली। वो रिसर्च ने ही एनेबल किया ह्यूमन बीइंग को टू कंट्रोल द फिनोमेना ऑफ नेचर। तो ये बड़ी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिल से करने वाला सब्जेक्ट है। और मैं आपको बताऊं कि आई इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस सिंस 2006। I continuously, since 2006 to 2022, I am teaching research at PS level, at MS level, and even at PhD level. So, and I have a lot of research projects in my BS, for my BS students, for my MS students, and even my PhD students. I completed some PhD projects with my students also. So strictly do believe on research ethics and honesty in conducting research. So if I look back my career as a teacher, the one thing which most inspired me and inspired my career as a teacher is the research. I think I learned a lot. So मैं आपको अपने देसी तरीका बताऊं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसी लिखनी है। देखिए ये मैं अभी आपको मैं बताऊं, यू हैव अ रिसर्च कोर्स एंड यू शेयर विद मी कि आपको किसी ने ये बताया था नहीं। देखें मैं उनसे कहती, जैसे डिपेंड करता है ना मैंने सफ़े कितने कहने हैं। मसलन मैं BS के स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप ना 1.5 लिखें, बस 1.5 से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। मैं अपने MS के स्टूडेंट्स को कहती हूँ 2.5 लिखें। मैं अपने PhD स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि 5 to 6 पेजेस इंट्रोडक्शन के लिखें। नाउ यू कैन कैटेगराइज कि इम्पोर्टेंस है ना, BS का सब्जेक्ट स्टूडेंट और है, MS का और है, PhD का और है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आप कभी कोई किताब आपको नहीं बताती। देखिए पहली बात तो ये है कि इंट्रोडक्शन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एंड द रूल ऑफ द बिजनेस इज दैट नो हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है, बट यू हैव अ सर्टेन हेडिंग्स इन योर माइंड। देखिए ना, एक पीस ऑफ राइटिंग करना है आपने तो किसी सीक्वेंस के साथ तो चलना है ना, तो वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? दैट सीक्वेंस शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च टॉपिक, 3 to 4 पैराग्राफ, ठीक है। देन यू हैव टू राइट डाउन योर टॉपिक, योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, उनको करें। अगर 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, अपने वेरिएबल को वेरिएबल्स एक्सप्लेन करें। देन आपने ये वेरिएबल्स लिए क्यों, इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन क्या है, जस्ट 1-2 पैराग्राफ इस पे लिखें आप। फिर आप rationale of the study, why you are going to do this research, तो आपने वो गैप आइडेंटिफाई करना है, नॉलेज के अंदर वो गैप आइडेंटिफाई करना है जिसको आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट करेगी। लेकिन there is a difference between the significance and the rationale. Sometimes people mix these two terms, but you have to clear cut define these two terms separately. When you have to write down the rationale of your study, it means you have to create the gap. आप वहां पर डिफरेंट रिसर्चेस रिपोर्ट करें और बताएं कि इस रिसर्च में ये हुआ, इसमें ये हुआ, लेकिन इस पहलू को नहीं डिस्कस किया गया, या इस पॉपुलेशन के साथ ये काम पहले नहीं किया गया, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप तीनों तरीकों से गैप ढूंढ सकते हैं। गैप के हुआ ही नहीं, इस वेरिएबल पे काम नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, इस पॉपुलेशन पर नहीं हुआ, इस टाइम पीरियड में नहीं हुआ, 10 साल पहले हुआ, सो ये गैप है। और ये आपकी स्टडी को रैशनल देता है, यस देयर इज द जस्टिफिकेशन। और सिग्निफिकेंस होती है स्टेक होल्डर के लिए कि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं तो हाउ स्टेक होल्डर कैन बी अफेक्टेड विद द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट। सो ये आपने हेडिंग सब हेडिंग नहीं देनी, लेकिन माइंड में रखना है कि बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, लॉजिक फॉर द वेरिएबल्स, एंड देन आपने रैशनल, और उसके बाद अगला आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। नाउ हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये जरा ये भी वही चीजें हैं आप, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको बताई हैं।
दूसरा एक और चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी है, देखें राइटिंग जो है ना, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, वी हैव अ लॉट, हम बहुत फोकस करते हैं, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, बट स्टिल I think you people must agree with me that we are not so competent in this language, क्योंकि मदर टंग का अपना एक इफेक्ट होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लैग करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर हमारे लिए है जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट को, तो उसको भी हमने किसी न किसी तरह से ओवरकम करना है। तो अगर हम सर्टेन रूल्स जो हैं, और ये रूल्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, किसी किताब में नहीं अगेन लिखे हुए, दैट इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि देखें, अगर आपका एक पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ में 5, 7, 8 लाइनें होती हैं, वो 5, 7, 8 लाइनें जो हैं उनको आपने कैसे लिखना है, उस पैराग्राफ की मेन लाइन, और उसके बाद आपने लिखना है, एक लाइन लिखनी है जो आपकी कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करे। कंट्रोलिंग एरिया मीन, लैंग्वेज के लोगों को इस टर्म का पता है, कंट्रोलिंग एरिया मीन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू राइट डाउन द पैराग्राफ ऑन गोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइटल लाइन इज गोल्ड इज अ मेटल, इट हैज 2 important फीचर। अब कंट्रोलिंग एरिया इज 2 important फीचर्स, मैंने बताना है ये कीमती धात है, जेवरात में इस्तेमाल होती है, अद्वियात में इस्तेमाल होती है, तो सो आई कैन कंक्लूड दैट इट्स अ क्वाइट प्रॉफिटेबल मेटल, प्रॉफिटेबल एलिमेंट, जो भी आप इसको कह लें। तो ये देखें, अगर आप इस पैराग्राफ को, ये जो मैंने अभी गोल्ड वाला शेयर किया, तो आप देखेंगे एक टाइटल लाइन थी, कंट्रोलिंग एरिया में मैंने इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक, फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक बताई, और एट द एंड मैंने कंक्लूड किया। ये सिंपल एक पैराग्राफ की कहानी बता रही हूँ आपको। तो जब हर पैराग्राफ को आप ऐसे लिखेंगे, इट बिकम वर्थवाइल। अनदर टिप जो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ वो ये है कि आप देखें, राइटिंग शुड नॉट बी अ जर्की, राइटिंग शुड बी जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर। जैसे पानी बहता है ना, कि आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे, एक लाइन से दूसरी लाइन में, तो आप फील करें कि चीजें कनेक्टेड हैं। ऐसे नहीं है कि आपको जंप लग रहा है, अच्छा ये ऐसे नहीं था, ये तो अगली लाइन कुछ और कह रही है। तो इसको आपने लाइनों को कनेक्ट करना है, पैराग्राफ को कनेक्ट करना है। एंड सिंपल फॉर्मूला टू कनेक्ट पैराग्राफ इज कि आप फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइनें हैं, द कीवर्ड्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, तो खुद ब खुद एक कनेक्शन पैदा हो जाएगा। और फर्स्ट राइटिंग, मैं आपको बताऊं कि राइटिंग का रूल ये है कि जब भी आपको पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं, वेदर यू आर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, वेदर यू आर राइटिंग एन एसे, एनालिटिकल एसे, और व्हाटसोएवर द केस, पर्सुएसिव एसे या आर्गुमेंटेटिव एसे, रिसर्च ये कहती है कि 80% टाइम इंसान का थिंकिंग में लगता है और 20% टाइम ओनली सर्व होता है राइटिंग में। तो जो 80% थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें हम सारा प्लान करते हैं कि हमने, जैसे मैं अभी ये लेक्चर शुरू होने से भी पहले बताया कि बिफोर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वी हैव टू कंसीडर सर्टेन सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन गाइडलाइंस, ये हमने नहीं करना। तो ये भी एक है कि जब आप लिखते हैं तो आप कितना इफेक्टिव लिखते हैं। ये फ्यू थिंग्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं दैट आई यूजुअली प्रैक्टिस व्हाइल गाइडिंग माय स्टूडेंट। सो अगर यहाँ से आप पढ़ें तो कहता है जी, पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड द रैशनल फॉर द रिसर्च। दिस rationale should address 4 issues. What is the nature of the issue or the problem of the research investigates? Why is this worthy of investigation? What have previous researchers discovered about these issues or problem? What does your research attempt to prove? The second, after your introduction, the second chapter is about the literature review. The purpose of this chapter is to show you are aware of where your own piece of research fit into the overall context of the research in your field. Literature review, यहाँ से जो भी लिखा हुआ है वो मैं रीड कर लूंगी आपके लिए। देखें, whenever you select topic, mostly there are 3 sources of topic selection.
First, you want to investigate your personal problem. You have a certain issue, you have a certain question in your mind, and you want to get the answer of that question, or whether you want to solve that problem related to your field. If we are a teacher, so we are interested, for example, that we are interested why some students are, disruptive in the classroom. So this is my professional problem, and I just want to solve this problem, and I want to solve this problem through research. So अब मैंने ये एक source of topic हो सकता है. The second source of the topic is your teacher, your supervisor, and someone who is authority on the subject can guide you that you should choose this topic. अच्छा, इसमें sometimes ये होता है कि, for example, in the universities the professors are doing certain research projects, and they engage their students in those projects, and that's our collaborative efforts के teacher students को degree मिल जाती है और professor का project जो है वो complete हो जाता है, and again students are forced to follow their supervisors. So this is another source. The third source is the literature. जब आप literature पढ़ते हैं, and literature mean literature related to your area. If we are a teacher, for example, one of the area is assessment. So if we are interested to do our research project in assessment, then I have to read the literature on assessment. So literature guide करता है आपको आपके टॉपिक के लिए. लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि लिटरेचर आपको, जो दूसरे सोर्सेज हैं, वो भी अल्टीमेटली आपको सजेस्ट क्या करेंगे कि आप लिटरेचर पढ़ें. एक तो तीसरा तो है ही लिटरेचर से टॉपिक लेना ना, जो दूसरे दो सोर्स हैं, जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है या टीचर ने आपको बताया, तो अगेन वो रेफर बैक करेगा आपको लिटरेचर की तरफ. लिटरेचर आपको नो हाउ प्रोड्यूस करता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च टॉपिक इज दिस, उस पर पहले कितना काम हो चुका है, उसमें कितना काम करना बाकी है, उसमें गैप्स क्या हैं, आप अपना प्रोजेक्ट कैसे फिट इन कर सकते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजीज कौन सी आप यूज कर सकते हैं, आप डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर सकते हैं. ये सारी की सारी गाइडलाइन जो है वो आपको लिटरेचर प्रोवाइड करता है, और उस लिटरेचर को बहुत अच्छी तरह से आपने, जैसे कहते हैं, खंगाल के उसको आपने अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना होता है. कहता है, टू डू दिस यू नीड टू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द रिसर्च इन योर डिफाइंड एरिया. Consider whether there are any closely related areas that you are also need to refer to. Identify a gap where you argue that further research is needed, and explain how you plan to attend to that particular research gap. वही आपके gap की बात कर रहे हैं कि gap भी आपको literature बताता है. Provide a context for the proposed study. Generation of research questions or hypothesis for further studies. आपको इसमें भी help मिलती है ना, क्योंकि आपको पता है आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, तो लिटरेचर गाइड्स यू ऑलवेज. नॉलेज ऑफ द मेथडोलॉजीज कॉमन टू द फील्ड्स. आपने कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी यूज करनी है, कौन सी अप्रोप्रिएट है, लिटरेचर आपको गाइड करेगा. कैन रिवील सोर्सेज ऑफ डाटा दैट यू मे नॉट हैव known existed. Demonstrate why it is important and timely to avoid or solve problems other have encountered in their research. Increase your confidence in your topic because other have invested considerable time, effort and resources in studying it. आपके टॉपिक की वर्थ भी आपको पता चलती है. If the people have worked on it, दुनिया उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने वो रिसर्चेस की होंगी, और आपका लिटरेचर जो है आपको गाइड करेगा कि आप बेहतर तरीके से आप अपने टॉपिक को डिफेंड कर पाएंगे. So these are the purposes of अब लिटरेचर रिव्यू के कैसे करना है, आपके उसके स्टेप्स हैं. आइडेंटिफाई अ रिसर्च टॉपिक, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्टर्स दैट आर यूजफुल इन लोकेटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल. देखें, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगी या आप लाइब्रेरी पे जाएंगी, यू मस्ट हैव अ सर्टेन कीवर्ड्स इन योर माइंड, और वो कीवर्ड्स को देखते हुए ही आप अपनी जो लिटरेचर को है उसको ढूंढेंगी. डेवलप एन ओवरऑल सर्च स्ट्रेटेजी फॉर द लिटरेचर रिव्यू. देखें, आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरह से आपने अपने लिटरेचर को रिव्यू करना है. देखें, जब कंप्यूटर नहीं था और ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, द बेस्ट टेक्निक व्हिच आई नो इज दैट यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन अ आउटलाइन. आउटलाइन सबसे पहले बहुत जरूरी है. आप एक आउटलाइन पर्सनली खुद
लिखें, एक दफा लिखें, देन उसको एवेल्युएट करें कि मेरे टॉपिक के लिहाज से क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं है। इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, यू थिंक कि इसमें कुछ और चीजें ऐड होनी चाहिए, ऐड देम। आप अगर लिख लें, खुद रिव्यू कर लें, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी पीयर से कहें कि वो रिव्यू करें आपके लिए, या किसी आप अपने टीचर से कहें कि वो रिव्यू कर दे आपको। तो आप इस तरीके से आप अपनी जो आउटलाइन है उसको रिव्यू कर सकते हैं। एंड देन कंप्यूटर से पहले क्या था कि पीपल यूज राइट डाउन द लिटरेचर ऑन कार्ड्स, ये हार्डबोर्ड कार्ड्स नहीं होते, उनको यूज करते थे, उनपे वो सर्टेन इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी उनको लिटरेचर उस सर्टेन जगह से उनको लिख लेते थे अलोंग विद द रेफरेंस। ये याद रखिएगा, जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस। अगर आप किसी की थॉट और आइडिया को आप यूज करते हैं तो हमें एक्नॉलेज करना है, दिस इज द प्रोफेशनल एथिक्स। और अगर आप नहीं करेंगे तो इट मींस यू आर प्रैक्टिसिंग प्लेजरिज्म, कि आप किसी के आइडिया को अपनाना। सो प्रॉपर रेफरेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो वो आप जहां से आप मटेरियल लेते हैं रेफरेंस साथ साथ नोट करें, नेवर मिस योर रेफरेंस, क्योंकि आपको ये टिप है, अगर आप एक दफा रेफरेंस मिस करेंगी तो फिर आप हमेशा उस रेफरेंस के पीछे आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बट नाउ आई थिंक डूइंग अ रिसर्च इज क्वाइट इजी, because you have a lot of material that is available on online or authentic material. ये देखिएगा, जब भी आपने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इट मस्ट बी ऑथेंटिक, इट मस्ट बी पीयर रिव्यूड। देखें, एक जैसे बहुत सारे लोग जो है वो विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बट आई थिंक सो दीज इंफॉर्मेशन आर नॉट रिलायबल। मसलन मैं एक रिसर्च की डेफिनेशन जो है अपने नाम से डाल लेती हूँ, तो आप जब भी डेफिनेशन ढूंढेंगी तो कहीं मेरे नाम की डेफिनेशन भी आ जाएगी, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट। सो आपने मटेरियल को जब लिटरेचर है उसको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन गुड एंड बैड लिटरेचर, और उस एक ड्रॉ करें लाइन कि ये लिटरेचर जो है ये ऑथेंटिक लिटरेचर है, उसका ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो देन आप उसको अपने उसका हिस्सा बनाएं। तो आपने कीवर्ड्स अपने आइडेंटिफाई करके, तो कीवर्ड से सर्च करें, आपको हजारों की तादाद में आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इस टाइम पे हालात यही हैं, तो सो इट्स नॉट इट्स बिकम क्वाइट इजी। लेकिन ये है कि आपने, बट इन अ वे इट बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल है और उसमें से अपने मतलब का ढूंढना जो है दैट्स इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। Search preliminary sources, select relevant primary and secondary sources, search the library for identified primary and secondary sources, establish a computer and paper trail including research summaries in your own words and will be used in the literature review. Repeat step 4 to 7 as needed to refine search, develop themes, concepts that synthesize the literature, relate the themes, concept to one another through an outline of the literature review, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, or a literature map, produce a final literature review that structure or organize the literature thematically or by important concepts, use the literature review to develop or refine the research objectives, questions and hypotheses. ये रोल हम पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। Now the next section is methodology. This is very important. Whenever someone asks you about your research, the question, I think the most important question the person might be asked to you is, what was your research methodology? So when you are going to write your research report, kindly focused on this aspect very technically, very professionally. Because some people want to replicate your research, some people want to want to believe on your research finding. तो जब तक आपकी मेथडोलॉजी क्लैरिटी के साथ नहीं होगी तो वो रिपीट नहीं कर सकेंगे, वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेंगे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो इस सेक्शन को बहुत केयरफुली और टेक्निकली आपने राइट करना है। वो कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी सिंपली रेफर्स टू द practical how of any given piece of research. आपने किया कैसे? More specifically, it's about how a researcher systematically design a study to ensure valid and reliable results that address the research aims and objectives. देखें, जो मैंने बात की ना डेफिनेशन की,
मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन, हाउ टू कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। अब ये तीनों लफ्ज जो हैं वो इस चीज से लिंक करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो हैं वो वैलिड भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में हम उसे कहते हैं कि अप्रोप्रिएट, ट्रस्टवर्दी, वैलिड, इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन वही है जो हमें चाहिए। सिमिलरली रिलायबल मीन कंसिस्टेंट है, उस पर एतबार किया जा सकता है। तो और जो ये इंफॉर्मेशन है, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस और आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उनको अटेन करने में हेल्पफुल हैं। ठीक है। For example, how did the researcher go about deciding what data to collect and what data to ignore? Who to collect it from in research? This is called sampling design. How to collect it? This is called data collection method. How to analyze it? This is called data analysis methods. ये methodology के parts हैं। ठीक है। अच्छा, main सबसे पहले you have to decide what is your research approach. यहाँ पे ना थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर देते हैं। When we ask the question, tell me what is your research design, and most of the people replied that the quantitative research design. This is not correct answer. You know, quantitative and qualitatives are approaches on a continuum. They are not separate entities. They are on a continuum. I hope you know you understand the concept of continuum. So these are the approaches, and these have a different methods. For example, if we talked about the quantitative research, we have a 4 to 5 methods: survey research, causal comparative or ex post facto research, correlational research, and experimental research. And if we talked about the qualitative, we have a narrative research, case study method, and historical research, so and so. So first of all, we have to identify our approach. Whether we are going to have a quantitative approach and qualitative approach. Why is it necessary? Because after selecting the approach, it means that we, as a researcher, we have our mental stance. Both these approaches have different paradigms, following the different paradigm. For example, if we talked about the quantitative approach, it follows the positivistic paradigm. Positivistic paradigm has its own certain assumptions, and I think you people know about the paradigms and the assumption. For example, one of the assumption is the positivistic paradigm is that the reality is objective, tangible, and fragmentable. And if you are following the qualitative paradigm, they are saying that reality is multiple, constructed, and holistic. So different approaches, and as a researcher, you have to give your stance after deciding. It means if you are deciding that you are going to follow the quantitative, it means you are believing on the positivistic paradigm, and for you people as a researcher, you have in your mind that you are going to follow these assumptions, philosophical assumptions. You can even you can say that what is your ontology, what is your epistemology, and what is your axiology as a researcher. तो अगर आप क्वांटिटेटिव को फॉलो करते हैं तो assumptions डिफरेंट होंगी, अगर क्वालिटेटिव को फॉलो करते हैं तो डिफरेंट होंगी, and you have to justify it, and you have to write down it in your methodology section that what kind of mental stance as a researcher you have. So one example I shared with you, because this is not my topic, so in some other occasion we can discuss in a detail if we got another opportunity. The second thing is your sampling design. We have a two kind of sampling: probability sampling and non-probability sampling. आपने अपने methodology section में ये लिखना है कि कौन सी sampling technique. Again यहाँ पे guideline है. If you are following the quantitative research, you have to go for the probability sampling. Probability sampling की आप आगे किसमें है जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो random sampling है.
देखें बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं, इवन टुडे आई हैव एन एक्सपीरियंस टू सिट इन अ सिलेक्शन बोर्ड, and when we asked the student introduce your research topic, and they said I have done random sampling, and I asked the question that I am interested, what is random sampling? The continuous reply, random sampling means randomly select किया ना मैडम, रैंडम। मैंने कहा बेटे ये बताओ कि रैंडमली होता क्या है, मैं नहीं जानती रैंडमली कहता, बट अगेन द आंसर इज रैंडमली सिलेक्ट किया। मैं कभी कभी मजाक करती हूँ, बच्चों आपका तो हाल ये है कि आपसे पूछें कि आपका घर कहाँ है, तो आप कहते हैं मस्जिद के सामने। मस्जिद कहाँ है? घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। तो आप हमारे साथ ये हाल करते हैं कि हाँ रैंडम, भाई रैंडम होता क्या है? नहीं, रैंडमली होता है। फॉर यू पीपल रैंडम मीन ईच एंड एवरीवन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। जब आप ये वाली टेक्निक यूज करते हैं कि हर किसी का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, आपकी जो डिफाइंड पॉपुलेशन, तो मींस कि आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है कि आपने कन्वीनियंस देख ली, पर्पस देख लिया, कोटा सैंपलिंग कर ली। तो ये दो मेन, और उसमें आपने फिर अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में लिखना है कि विच सैंपलिंग डिजाइन यू पीपल आर फॉलोइंग। अगेन फिर अगला है कि डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगेन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के डिफरेंट हैं। क्वांटिटेटिव यूजुअली यूज क्वेश्चनियर्स, ठीक है, और क्वालिटेटिव में हम यूज करते हैं यानी आपका इंटरव्यू प्रोटोकॉल होता है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती हैं जो आप या ऑब्जर्वेशन होती हैं या आप क्वालिटेटिव में यूज करते हैं। मेन डाटा एनालिसिस मेथड्स कौन से होते हैं? मसलन क्वालिटेटिव में आपका कंटेंट एनालिसिस है, थीमेटिक एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस है, ग्राउंडेड थ्योरी है। इनमें से जो भी आप फॉलो कर रहे हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वांटिटेटिव में कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इन्फ्रेंशियल रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपने याद रखना है व्हेन यू आर फॉलोइंग अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, तो जो डाटा आपके पास आता है दैट इज फिगरेटिव डाटा, दैट इज डाटा इन अ फिगर्स 2 3 4 5 something like that. When you are following the qualitative approach, the data will be in the textual form. You have a data in text form. तो text form को analyze ज़ाहिर definitely differently way में करते हैं, लेकिन अगर आपके पास data figures में है तो different statistical techniques available हैं। Main दो ये हैं, descriptive और inferential। Inferential में आगे आपने क्या use करना है? Inferential use करने के लिए parametric करना है, non parametric करना है। Parametric की अपनी assumptions हैं, non parametric की अपनी assumption है। These are the technical things. And I think so if you have a research methodology course, you people are well aware of these things. So the next is the conclusion. You have to write down the conclusion. और ये हर चीज में important होता है. For me, it is also important at the end of the paragraph. आप किसी पैराग्राफ को एंड करते हैं तो उसमें भी जरूरी होता है कि उसकी एक कंक्लूडिंग लाइन लिखी जाए, ठीक है? The conclusion is intended to help the readers understand why your research should matter to them after they have finished reading the paper. A conclusion is not merely a summary of your points or a restatement of your research problem, but a synthesis of key points. ये याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, a well-written conclusion provides you with the several important opportunities to demonstrate your overall understanding of the research problem to the reader. These include presenting the last words on the issue you raised in your research, just as the introduction gives a first impression to your reader. The conclusion offer a chance to leave a lasting impression. Do this, for example, by highlighting key points in your analysis or findings, summarizing your thoughts and conveying the larger implication of your study. The conclusion is an opportunity to swiftly answer the so what questions by placing the study within the context of the past research about the topic you have investigated, demonstrating the importance of your idea. Don't be shy. The conclusion offers you a chance to elaborate on the significance of your findings, introducing possible new or expanded ways of thinking about the research problem. This does not refer to introducing new information, which should be avoided, but to offer new insights and creative approaches for framing, contextualizing the research problem based on the results of your study. Again, discussion, very important, very, very important.
बहुत स्टूडेंट्स जो हैं और जो लिख रहे होते हैं रिपोर्ट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि डिस्कशन क्या होती है। सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊं कि डिस्कशन क्या होती है। डिस्कशन में एक्चुअली आप जो प्रीवियस रिसर्चेज होती हैं एंड आपकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनका कंपैरिजन और कंट्रास्ट होता है। ये सबसे सिंपल वर्जन है। अगेन लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है तो आप अपने एरिया में रिसर्चेज को जानते हैं, आपको आइडिया है, तो आप उसको डिस्कशन को जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइड्स है, व्हाट मेक्स एन इफेक्टिव डिस्कशन। The discussion informs readers about the larger implication of your study based on the results. Highlighting these implications while not overstating the findings can be challenging, especially when you are submitting to a journal that selects articles based on novelty or potential impact. Regardless of what journal you are submitting to, the discussion section always serves the same purpose, concluding what your study results actually mean. A successful discussion section puts your finding in context. It should include the results of your research, comparison between your results and initial hypothesis, comparison with previous research findings. तो ये मेन क्रक्स है कि आपने डिस्कशन जो है वो क्यों लिखनी है, क्यों करनी है और इसको कितना लॉजिकल। देखें ये समटाइम लोगों के ज़हन में ये जाता है कि वी आर pointing out about the findings of the other researches, so it should always resonate with the findings of our research. That is not the case. Sometimes to emphasize our point of view, we need the counter argument. So do believe on that you are right. You just exactly follow the research process and steps and honestly and correctly. You by yourself tried your level best not to commit any error. Some errors are by default, so ignore them. So if you are 100% sure, so your point of view is also a valuable. So contrasting view is not your weakness. It actually strengthens your point of view. That it can be, it is very important subject and people have a different point of view. So ये कभी भी ना कहें sometimes came to me and they said मैडम मेरी रिसर्च गलत हो गई, मेरा टी टेस्ट सही नहीं निकला, मेरा कोर। इट्स नॉट द केस। देखें सैंपल डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सैंपल सिलेक्शंस में इश्यूज हो सकते हैं। सो डोंट गो फॉर दैट टू जस्टिफाई कि नहीं मेरा रिजल्ट यही आना चाहिए। नो, जो आया है उसको रिपोर्ट करें। ऑनेस्टी मैटर्स अ लॉट इन रिसर्च एंड इवन इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि नो वन कैन क्वेश्चन। देखिए हमेशा जब भी आप रिसर्च रिजल्ट्स को रिपोर्ट करें और उनको डिफेंड करने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ें। अगर आप कहें कि इट शुड बी लाइक दैट, इट इज एब्सोल्युटली लाइक दिस, तो आप अपने क्वेश्चंस खत्म कर रहे हैं। देखें जब आप ये कहते हैं माइट बी, देयर इज अ चांस, माय सैंपल says this, I selected my sample like this, there might be something that influence my study. देखें एरर का मार्जिन आपने हर जगह देना है, क्योंकि जो हम रिसर्चेस करते हैं एंड स्पेशली सोशल साइंसेज में, द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ ह्यूमन बीइंग. Even a simple physical measurement has an error. Someone is there having a science background. When we are in our matriculation and we have done our physics practical, when at that time when we measure certain physical entity, we use vernier caliper and another I just forget. Even वो मिलीमीटर तक भी वो मेजरमेंट करते हैं, बट स्टिल दे हैव मार्जिन ऑफ एरर. हम पहले उसको वर्नियर कैलिपर को सेट करते हैं और एरर को देखते हैं कि अगर दोनों लाइंस रेजोनेट नहीं कर रही, तो अगर माइनस की तरफ है और प्लस की तरफ है, तो वो फिर हम अपनी फाइंडिंग्स में ऐड और डिलीट करते हैं. दैट इज जस्ट सिंपली अबाउट द फिजिकल मेजरमेंट. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, and it's quite, human being is quite complex entity. It's quite difficult to measure, and most of the time we cannot do direct measurement. We do measurement through our through different behaviors
For example, most of the variable in our educational setting are not just simple concept, they are construct, and construct can never be directly measured. So and sometimes some psychological measurement is involved, so no 100%. So give a cushion and margin to your results. Don't say that it's perfect, it's good, it's ideal. Leave it to the reader. Reader should decide whether it is a perfect, and nothing is, I believe as a researcher that nothing is perfect. Each and everything has something that need further explanation. That is why, research is just a cyclical process. ये एंड नहीं होता. हर रिसर्च के बाद 2 क्वेश्चंस और एक सवाल के जवाब के लिए आप 2 सवाल और जनरेट कर देते हैं. So again, another thing, that is the recommendation. These can take 2 forms: recommendations for the further study or recommendation for change, or both. Each recommendation should trace directly to a conclusion. जो आपकी conclusion उनमें से निकलनी चाहिए. General recommendations मत दें. हम देखते हैं स्टूडेंट 3-3, 4-4 पेजेस की recommendations लिख देते हैं, but they are quite general. They are not based on their findings and conclusions. So इसको आपने देखना है. अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मोस्टली लोग यहाँ पे जो है वो गलतियां करते हैं. जो आपका 5वां सेक्शन है रेफरेंसेस का, जस्टिफिकेशन क्या है. देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है बिब्लियोग्राफी और एक होता है रेफरेंसेस. दोनों में फर्क एक तो आपको पता चले. देखें, रेफरेंस होता है डायरेक्टली आपने कोई चीज किसी की कोट की, ठीक है ना. डायरेक्टली कोट करने से यू गॉट एन आइडिया, और आपने वो आइडिया अपनी रिसर्च में किया, तो आप उस बंदे को का रेफरेंस देंगे, ठीक है. डायरेक्टली वो आपके. सम टाइम हम कहीं से पढ़ते हैं, हमारे ज़हन में आइडिया आता है मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ बुक्स से, मुख्तलिफ जर्नल से, तो लेकिन वो डायरेक्टली वो आइडिया, उस आइडिया को हमने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पोर्ट्रे किया होता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं. तो डिफरेंस है. रेफरेंस ये है और बिब्लियोग्राफी है. मोस्टली आजकल हम रेफरेंस पे जाते हैं. अच्छा, अब एक और मुख्तलिफ रेफरेंसिंग स्टाइल है, क्योंकि देखिए चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना होता है. रिसर्च रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए नहीं जनरेट करते, यू जनरेट फॉर योर रीडर्स, फॉर योर स्टेक होल्डर्स, फॉर योर फंडिंग एजेंसी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो जैसे देखें दुनिया में मेजरमेंट का स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, किलो, मीटर. Similarly, standardized tools हैं to format your research report. तो उसमें जो सोशल साइंसेज में सबसे ज्यादा यूज होता है, that is the APA. अब 2 तरह से रेफरेंसेस देते हैं. एक रेफरेंस आप देते हैं टेक्स्ट के अंदर, और एक रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस लिस्ट देते हैं आप एट द एंड. पहली बात ये नोट कीजिएगा कि अगर आप APA फॉलो कर रहे हैं तो ईच एंड एवरीथिंग के लिए वो आपको गाइड करते हैं. फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, मार्जिन, लेफ्ट राइट कौन से होने चाहिए, पेज नंबर आपने कहाँ लिखना है, दे गाइड यू. कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, फर्स्ट ऑथर का नाम लिखना है, सेकंड का लिखना है. टेक्स्ट में रेफरेंस कैसे देते हैं, लिस्ट में कैसे अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकली वो यूजुअली कहते हैं अरेंज करते हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर भी हैं, सॉफ्टवेयर को अगर आप डाटा दें तो आप उनसे कहें आप स्टाइल मेंशन कर दें, तो वो आपको आपकी जो है वो लगा देते हैं उसमें. अच्छा, इसके रेफरेंसेस को थोड़ा मजीद हम करते हैं कि उनके साइटेशंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं. मसलन आपने ऑथर्स और ऑथरिंग बॉडी आपने मेंशन करना है, किसने लिखा, या कोई देखें 2 तरह से हो सकता है ना, मैंने लिखा, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिपोर्ट है, या HEC की रिपोर्ट है, या PHEC की रिपोर्ट है. तो इसका मतलब है ऑथर, अगर कोई सिंगल पर्सन है, या 2 पर्सन है, 3 है, 4 है, वो ऑथर है. ऑथरिंग बॉडी जो है, तो कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको करती है. पब्लिकेशन की डेट क्या है, टाइटल ऑफ द वर्क क्या है, एडिशन, पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, ये हर चीज जो है वो मांगते हैं. अब यहाँ पे ना पहले हमारा 6 मैनुअल जो है वो फॉलो होता था, अब 7th होता है. प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आप 7th एडिशन जो APA का वो नहीं मांगता. टाइटल ऑफ द सोर्स, लोकेशन इंफॉर्मेशन विद इन द सोर्स, URL और DOI और नॉन रूटीन इंफॉर्मेशन, ठीक है. अच्छा, अब जैसे अगर आपने बुक का रेफरेंस लेना है तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे सईद M2000. आप ये देखें, सईद के बाद कॉमा है, M के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद ईयर है, ईयर के बाद फुल स्टॉप है, फिर आपने इटैलिक्स में निकला है जो किताब का नाम है, और उसके बाद जगह कहाँ की है और पब्लिशर कौन है. ये 6th एडिशन में है. इसी को मैंने फिर 7th एडिशन में भी किया हुआ है,
कि आप यहाँ पे फर्क सिर्फ कितना है कि अब आपने प्लेस नहीं लिखनी, ठीक है, तो आपने सिर्फ जो है वो लिख देना है, पब्लिशर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 6 और मोर ऑथर्स हैं तो उनके लिए आप एट ऑल का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है ना, सबके नाम नहीं लिखते, 2-3 के हों तो आप लिख लें। जर्नल का अगर रेफरेंस देना है तो वो आप जो उसका टॉपिक है वो आप सही लिखते हैं, जो उस जर्नल का नाम है वो आप इटैलिक करते हैं, आप वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर देते हैं, आप पेज नंबर देते हैं कि किस पेज पे है। अगर प्रेस में है तो उसको कैसे लिखते हैं, ये नीचे उसका भी मैंने एक दिया हुआ है। अगर थीसिस और डेजिटेशन का है तो उसके आगे आप लिखते हैं अनपब्लिश्ड डॉक्टरल प्रेजेंटेशन, और जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे सर्टेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको उस पे भी जो है आप उसका रेफरेंस कैसे देते हैं, ये इस लिस्ट में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे एपीए मैनुअल जो है मैं शायद आपको ईमेल पे जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ शेयर कर दूंगी, सारा जो थोड़ा इससे ज्यादा डिटेल से होगा तो आपको वो मिल जाएगी। तो आप whenever you want to after writing your research report you want to format that report in a APA style, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके उसका पता चल सकता है। एपीए आप जानते हैं, जैसे बहुत सारे हैं ना, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, एपीए है, एमएलए है, एएसए है, शिकागो है। एपीए जो है वो रेफर करता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये अपना बनाया हुआ है। लास्ट में एक काम आप करते हैं रिपोर्ट के, जो आप उसके अंदर लगाते हैं जो अपेंडिसेस हैं, ठीक है ना। मसलन सम टाइम हमने जो क्वेश्चनियर यूज किया होता है या किसी को कोई ईमेल की होती है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या किसी से कोई चीज लेने की परमिशन ली होती है, तो वो डिफरेंट चीजें हैं जो आप यूज करते हैं अपने अपेंडिसेस के तौर पे, और वो रिपोर्ट के आखिर में लगती हैं। इफ समवन वांट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो वो यहाँ से ले सकता है इन अपेंडिसेस से, ठीक है। और दैट इज ऑल अबाउट, आई थिंक 2 मिनट पहले खत्म हुआ है। सॉरी, मेरा ख्याल शायद ज्यादा टाइम मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं दे पाई, लेकिन हम अगर आप इधर हैं तो आप 5-4 मिनट ले सकते हैं इफ समवन वांट टू आस्क क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम मैं रज़ा कोका बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मैडम अभी डिस्कशन आपने पोर्शन जो है बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इसमें सिग्निफिकेंस बताई है आपने डिस्कशन की, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आपने डिस्कस किया है कि इसमें कंपैरिजन करते हैं विद प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। तो मैडम अगर इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी भी होती हैं जिसमें प्रीवियस हमें रेफरेंसेस नहीं मिल रहे होते, तो व्हाट अबाउट दोस पॉइंट्स मैडम, काइंडली प्लीज एक्सप्लेन। Yes, देखें, first of all, I think we should prefer the reference, the findings which have proper reference. पहले तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, but if you think that no, these are the important things, but we don't have a reference, तो indirect reference कोई ना कोई हमें मिल जाता है। मतलब किसी ने साइट किया हो किसी, तो आप ये कर सकते हैं कि उसका रेफरेंस देने, उसका बताने के बाद आप कहें साइटेड इन फलां फलां फलां। Again, first of all, I think you should try to get the things that is properly referred. अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि रिसर्च रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट, क्या ये एक ही चीज के दो नाम हैं या ये दो डिफरेंट हैं? नहीं, देखें, रिव्यू रिपोर्ट जैसे किसी बुक के रिव्यू लिखें या किसी रिसर्च की भी रिव्यू रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट मीन कि जो आपने रिसर्च के अंदर किया है, यू हैव टू राइट डाउन। ओके मैडम मेरा भी क्वेश्चन जरा मिलता जुलता है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे एक रिसर्च पेपर है और रिसर्च रिपोर्ट है, जैसे थीसिस उसमें भी तो हम यही बता रहे होते हैं कि हमने रिसर्च किया है। थीसिस तो जरा मुझे समझ में आता है कि साइज बड़ा होगा, रिपोर्ट और पेपर में क्या फर्क होगा? हाँ, जो देखें, जो आपका रिसर्च रिपोर्ट है दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। आप हर कुछ लिखते हैं जो आपने किया हुआ, सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड।
how did you get your sample, आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जो रिसर्च पेपर होता है ना, उसमें मेन चीजें आप डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एब्स्ट्रैक्ट डाल दिया, इंट्रोडक्शन पूरा नहीं डाला, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड देन जो है आप अपनी मेथोडोलॉजी लिख लेंगे, ब्रीफ मेथोडोलॉजी, नॉट और डाटा एनालिसिस, मेन डाटा एनालिसिस टेबल, आप कंप्लीट डाटा एनालिसिस जो है, क्योंकि देखें मोस्टली रिसर्च पेपर जो है वो पूरी रिसर्च पे नहीं होता, वो किसी उसके एक आध कंपोनेंट पे होता है। अगर फर्ज करें एक आध कंपोनेंट पे, अगर पूरी रिसर्च पे भी आप रिसर्च पेपर लिख लें तो उसको आप ये समझ लें कि आप उसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं। रिपोर्ट इज मोर डिटेल्ड। तो मैम एक और बात क्लियर कीजिएगा प्लीज, कि क्या जो थीसिस राइट अप किया जाता है हम इसको भी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट ही कह सकते हैं? इज इट एन एग्जांपल ऑफ दैट? यस ऑफ कोर्स, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। थीसिस नाम दिया है, थीसिस इज एक्चुअली अ रिसर्च रिपोर्ट ही है। जी ठीक है, थैंक यू। जी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं ना आपसे बात करना मेरा ख्याल है कि हम असातिज़ा चाहती को ये रिसर्च सिखाने का मकसद ही यही है ना, कि हम अपनी तालिबात को रिसर्च करना सिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं साइदा बात कर रही हूँ जीसीटी से। मैम मैंने ये पूछना है कि मैडम आपने बहुत अच्छा आप जो है बयान करती हैं, तो आपने बताया कि आप रिसर्च पढ़ाती हैं, तो मैम आपका कोई मकाला वो उसका कोई नाम वगैरह बता दें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये लेक्चर, और मैं ये पढ़ना चाहती हूँ आपका कोई बुक वगैरह अगर है रिसर्च पर। मेरा ऐसा देखे ये डेफिशिएंसी है, मैंने स्टार्ट की हुई है बट येट नॉट कंप्लीटेड, लेकिन आई हैव यू नो डिफरेंट आर्टिकल्स जो आप मेरे नाम से अगर आप लिखेंगी डॉक्टर गुजाला नौरीन और आप उसको गूगल करेंगी तो आई थिंक आपको मेरी लिस्ट मिल जाएगी आर्टिकल्स की। डिफरेंट अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 3-4 एरियाज हैं जिनको मैंने फोकस किया है, एंड वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन इज वन ऑफ द एरिया। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं आपको कि I have my PhD from the University of the Punjab, and then I have my postdoctorate from the University of Wolverhampton, UK. So जो मेरा जो postdoc जो था project था that of the women empowerment. So these are the three, and another area of my interest is assessment, and then third one is the leadership. आपको इन तीनों areas में मेरे article मिलेंगे। आप वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई मेरा आर्टिकल देखें तो वो भी आपको मिल जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे मिल जाएगा। सो ये डिफरेंट मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो आप इंटरनेट से एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। हमें दिखा दें ईमेल आईडी, बिब्लियोग्राफी कैसे मैं अपना ईमेल आईडी मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया है इनके साथ, ये जो आपके ऑर्गेनाइजर हैं, तो काइंडली आप बेशक उनसे कहिएगा कि वो आपके साथ शेयर कर दें। आई हैव नो इशू अगर वो शेयर करते हैं। ओके मैडम, थैंक यू सो मच। सबला काइंडली प्लीज शेयर मैडम ईमेल आईडी। थैंक यू। मैं कर दूंगी। बिब्लियोग्राफी का भी कुछ बता दें। पूछना चाह रही हूँ। जी जी जी, जबीन मुख्तार मेरा नाम है। सवाल नहीं, सब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हम लिटरेचर रिव्यूज में समरीज डालते हैं इसकी रिसर्च की, तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा बता दें कि वो उसमें मेन चीज़ें हमने क्या इंक्लूड करनी होती हैं जो बेहतर होती हैं। और सेकेंडली सैंपल में जब हम सैंपल लिखते हैं तो उसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी मेंशन किया जाता है अक्सर, तो उसके लिए हमें कौन से क्राइटेरिया को सामने रखना चाहिए? देखिए मोस्टली तो जो जैसे आप पहला क्वेश्चन आपका है दैट्स रिगार्डिंग द समरी, उसमें देखिए उसमें सिंपल आप जब आप किसी को कोट करते हैं किसी की रिसर्च को, तो आपने उनकी फाइंडिंग्स को फोकस करना होता है। ठीक है ना, कि मेन फाइंडिंग यानी वेरिएबल्स कौन से थे, टॉपिक क्या था या वेरिएबल क्या थी, एंड मेन फाइंडिंग क्या थी। सही ठीक है। अच्छा रह गया, देखें जब आप सैम्पलिंग करते हैं ना, जैसे मैंने मेंशन किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, ये तो बड़ी टेक्निक, लेकिन मुझे जो समझ आई है उसमें भी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं उसमें भी एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का क्राइटेरिया है। देखें फर्ज करें कि अगर आप सैम्पलिंग करते हैं और कोई चीज आपने एक दफा सिलेक्ट कर ली, तो दूसरी दफा रैंडमली सिलेक्ट करने में क्या आप उसको इंक्लूड करेंगी या एक्सक्लूड करेंगी। ठीक है, एक ये होता है कि आप उस एक चीज आपने सिलेक्ट कर ली, तो अगर फर्ज करें कि आपका 100 पॉपुलेशन है,
तो एक आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया तो पीछे 99 बच गए ना। अब 99 में से आपने उसको दोबारा इंक्लूड करके 100 करके दोबारा सिलेक्ट करना है या आप 99 को। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का क्राइटेरिया। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि उसके लिए जब आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन रखते हैं तो वो पॉपुलेशन जब आप डिफाइन करते हैं ना, whenever you define your population categorically, तो it means boundaries कि ये मैंने लेना ये नहीं लेना। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं राहत शाहीन बात कर रही हूँ मॉडल टाउन कॉलेज से। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो थीसिस हम कर चुके होते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो क्या हम उसको आगे पीएचडी के लिए कर सकते हैं उसी टॉपिक को? आप उसी टॉपिक पे नहीं कर सकते, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, यू कैन ऐड सम मोर वेरिएबल्स। देखिए पीएचडी और मास्टर्स में फर्क तो होगा ना लेवल का। जी मतलब उसके हम स्नॉप्सिस वगैरह में अपना वो मटेरियल तो यूज कर सकते हैं। व्हाई नॉट, श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम मैं वालेकुम। क्वेश्चन कर रही थी कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। आपने कहा था बिब्लियोग्राफी में तब होगा जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो फिर हम उसको लिखेंगे कैसे? नहीं एग्जैक्ट नहीं पता होगा। देखिए आपने 3-4 किताबें पढ़ी हैं और जब आप अपना थीसिस लिख रहे होते हैं या चीजें लिख रहे होते हैं तो आप उन चीजों को आप लिख लेते हैं अपने। एग्जैक्टली नहीं, आपने आपने आइडिया सिंथेसाइज किया होता है मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ मटेरियल को लेके, वो बिब्लियोग्राफी होती है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली किसी का आइडिया आपके टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दैट इज रेफरेंस होगा। ओके अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। मैम मैं सियालकोट से फौजिया नाहिद बात कर रही हूँ। आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई कि जी चाहता है फिर से रिसर्च का रास्ता अपना लिया जाए। मैंने एमएस किया। आप हमारे से राब्ता करें, लाहौर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप हमारे से कोलैबोरेट करें। आप अपने कॉलेज में हमें इनवाइट करें, हम आपको अपनी वर्कशॉप्स और उनमें बुलाते हैं। एकेडमिक कोलैबोरेशन जो है वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। जरूर मैम। हम एक दूसरे के आइडियाज देखें। इट्स अ टू वे प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा एक तरफ लर्न करते हैं। इट्स अ टू वे प्रोसेस। आपने मेरे से लर्न किया एंड आई लर्न फ्रॉम यू पीपल, एंड इट्स रियली अ ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू पीपल सच एज सीनियर फैकल्टी मेंबर्स। बहुत शुक्रिया मैम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम, I'm Raza फ्रॉम बाबरा टाउन कॉलेज। मैम आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, मुझे आपसे ये जरा पूछना है। बताइए जी, कि ये जो बिब्लियोग्राफी है ये भी उतनी ही वैल्यूएबल है जैसे कि हम डिफरेंट रेफरेंसेस यूज करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है, वो उतनी ही वैल्यूएबल है। देखें ये शो करती है कि जो रिसर्चर है उसने अपना आइडिया सिंथेसाइज किया बहुत सारे मटेरियल्स को पढ़ के, उसके हक में, या उसने आर्ग्यूमेंट डेवलप किया ना अपना व्हाइल रीडिंग डिफरेंट पीपल। थैंक यू सो मच मैम। मैडम जब बिब्लियोग्राफी लिख रहे होंगे तो फिर हम वहाँ पर सिर्फ अपना आइडिया लिख रहे होंगे, हम ये नहीं बता रहे होंगे ये हमने कहाँ से लिया है ना? हाँ नहीं, ये नहीं बता रहे हूँ क्योंकि डायरेक्टली नहीं ना लिया आपने सिंथेसाइज किया मुख्तलिफ जगहों से लेके उसको। तो इसमें मुख्तलिफ यानी पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि कुछ कहीं से ये आइडिया लिया, फिर नेक्स्ट आइडिया, फिर नेक्स्ट। देखिए एक पैराग्राफ आपने लिखा ना, लेकिन वो आपका खुद की राइटिंग है आपने, लेकिन वो देखें इंसान पे वही तो नाजिल नहीं ना होती। वो जो आपने लिखा उसने कहीं ना कहीं तो उसका कोई सोर्स था ना, उसको आप बिब्लियोग्राफी में, लेकिन अगर उसी का एग्जैक्ट आइडिया आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आप रेफरेंस में आ जाएंगे। मैम मैं रोजीना सईद बात कर रही हूँ गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज चूना मंडी से। मुझे ये बात पूछना थी कि आजकल के नौजवानों में प्लेजरिज्म तो एक तरफ रहा, खुद रिसर्च करने का एक कंसेप्ट ही बदकिस्मती से बहुत कम हो गया,
और बाकायदा मुआवजे पर दूसरों से रिपोर्ट्स या ये थीसिस वगैरह लिखवाए जाते हैं। मैंने अभी हाल ही में एमफिल किया तो मुझे उस वक्त इस बात को मतलब मुझे अंदाजा हुआ कि बाकायदा ऑफर्स होती थी कि करवा लें। मतलब उर्दू मेरा मजमून है, उसमें तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मतलब किसी से कैसे करवा लें ये जो अपना करने का काम है। लेकिन मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है और बेशतर मज़ामीन में लोगों से करवाई जाती हैं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए या तालिबात में या नौजवानों में ये रिसर्च का एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ये मैडम आप ये देखें कि ये आपने बहुत अच्छी चीज को मेंशन किया कि ये देखें ना, जब हम ये बात करते हैं ना कि करप्शन हमारी जड़ों में फैल गई है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी जो है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। लोग इसमें मुझे लगता है कि अगर टीचर एक रोल अच्छा प्ले करे ना, ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, पर टीचर की कमिटमेंट्स नहीं है ना। आप ये देखें कि टीचर खुद कितना कमिटेड है, वो कितनी कोशिश करता है, वो कितनी एफर्ट करता है। तो अगर ये चीजें उसमें होंगी तो मेरा ख्याल है कि हम इस फिनोमेना को तो सिवाय टीचर के और कोई नहीं रोक सकता। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन उसके लिए मैं टीचर्स के लिए ना 3 लफ्ज जरूर बोलती हूँ: कमिटेड, शुड बी लॉयल, शुड बी ऑनेस्ट। बेशक ऐसा ही है, लेकिन ये है कि डिक्लाइनिंग इज एवरीवेयर। अभी हम तो पुराने जमाने के मॉडल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर हैं ये चीजें, लेकिन अभी आप आगे देखिए तो बहुत बदकिस्मती नजर आती है। शॉर्टकट्स बहुत है ना, एवरीवन इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। मेरे ख्याल में पैशन भी बहुत जरूरी है टीचर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें असल में इशू इज दिस कि आपने अपनी हर लेवल की एजुकेशन को बहुत बहुत ज्यादा जो है वो कर लिया है, यू नो कि मतलब हम ये नहीं सोचते कि हम जब एक टीचर बनाने में कंप्रोमाइज करते हैं तो हम एक बंदे को खराब नहीं कर रहे होते, हम नस्लें खराब कर रहे होते हैं। इनफेक्टिव टीचर मीन्स एक पूरी 50, अगर वो 30 इयर्स भी फॉर एग्जांपल टीच करता है तो 30 ईयर अगर वो टीच करता है तो इट मीन्स कि कितने लोगों को पढ़ा गया। और अब ये जो मैडम अब ये जो आप जिस लॉट की बात कर रही है ना, वो लॉट अब ये वो लॉट आ रही है जो हमने प्रोड्यूस की है। यस बिल्कुल सही। दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। जिन्होंने हमें प्रोड्यूस किया था ना, दे आर मच मोर बेटर पीपल। बेशक सही है, बेशक। अब ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह ये है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम किसी भी वक्त चीजों को ठीक कर सकते हैं अगर हम में से हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ सर, पर टीचर देखिए ना, टीचर के कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप डिसऑनेस्टी के वर्ड, चीटिंग के वर्ड और बिकॉज टीचर इज अ रोल मॉडल, उसके साथ ये मेल प्रैक्टिसेस नहीं जुड़नी चाहिए। मैम ऐसा है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने बच्चों को नंबर बनाने वाली मशीनें बना दिया, उनके अंदर से एथिक्स और ये सब रवायात, इक़दार, उनका सब खत्म कर दिया। बच्चे जो आजकल हम आप टारगेट लेस हो गए हैं। देखें हमेशा स्टूडेंट एफर्ट करते थे ना कि अच्छा मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, यानी मेरे चाहे 90% आ जाएं, 85% आ जाएं, 18। अब क्या है कि आपने 1100 में से 1100 दे के तो अब क्या करे बच्चा, क्या सोचेगा मैंने क्या लेना है। जी, लेकिन वो नंबर भी मुझे लगता है मशीनों ने ही दी हैं, वो हम लोगों ने नहीं दी हैं, वो भी मशीनों ने दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बस ये कि पब्लिक सेक्टर में तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह में हमारे कॉलेज में वो बच्चे आते हैं जिनको कहीं दाखला नहीं मिलता, लेकिन वो बाद में माशाल्लाह ऐसे पॉलिश होकर जाते हैं कि हर जगह पर उन्हें वेलकम किया जाता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर ने बदकिस्मती से पिछले 10-15 सालों में हमारे पूरे निज़ाम तालीम जो पहले डगमगा रहा था उसको बस एक समझें धक्का ही दे दिया है। ऐसे देखिए, जब ये स्टार्ट हो रहा था ना, हमारी जनरेशन जो है, मतलब मुझे नहीं पता कुछ यंग लोग भी बैठे होंगे यहाँ पे, तो हमारी जनरेशन ने इस ट्रांजिशन को वॉच किया है। और मैं आपको बताऊं, व्हेन दैट इज इंक्लूडिंग इन आवर सिस्टम, जब ये स्टार्ट हो रहा था तो मैं तब भी सोच रही थी कि एक्चुअली हम क्या करें कि हम आप कौम नहीं रहेगी ना,
देखें मेरी अगर इनकम 100 रुपीज ज्यादा कम है आपसे, तो मेरा बच्चा डिफरेंट स्ट्रीम में जा रहा है, डिफरेंट करिकुलम को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, डिफरेंट आइडियोलॉजीज पढ़ रहा है। तो दैट इज वाई आप देखें कि आप नेशन नहीं ना रहे, आप इंडिविजुअल्स बन गए। अब तब जब हम कंट्रोल कर सकते थे, अब ये आपकी जड़ों में इतना बैठ गया है कि आई थिंक नाउ द थिंग्स बिकम वर्स्ट। इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको अगले 15-20 मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम तो 40-50 तक जाएं। उसमें नेक नियति चाहिए, नेक नियति होनी चाहिए जो गवर्नमेंट लेवल पर भी। जी पार्टिसिपेंट्स बहुत शुक्रिया आपका मैडम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा मेरा ख्याल आपका डिस्कशन भी रही और लेक्चर बहुत अच्छा था, थैंक यू सो वेरी मच। और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, 2:30 बजे अगले सेशन के लिए दोबारा हाजिर होंगे। That more than 50 universities around the world, they invited me in different countries, and I trained thousands of doctors, PhD students, and faculty members in different countries. So, for example, University of South Florida invited me. I went there and I trained their professors from different states of America. So it was very wonderful training experience, sharing my knowledge regarding qualitative data analysis using NVivo software. So similarly, Başakşehir University, Turkey, Istanbul, they invited me, and it was the pre-conference workshop, and professors and PhD students from 23 different countries, they attended my training workshop. So it was very wonderful training experience, sharing my knowledge with the international community. Similarly, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, they invited me on the Howard University USA funded project. I went there, and I got the chance to interact and provide my consultancy to and serve as a consultant in the Howard University USA funded project. So I also got the chance to perform Umrah Alhamdulillah. So it was very wonderful training experience, sharing my knowledge with the Arabic community who got the funding from Harvard University. So similarly, UUM University Uttara Malaysia invited me for the series of training workshops, and PhD students and faculty members from 35 different countries. They attended my series of training workshops. So it was also very wonderful training experience. Before COVID-19 in 2020, University of International Business, Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan, they invited me for the training workshops, and Kazakh and Russian professors, they attended my series of training workshops. So it was very wonderful, amazing training experience in Central Asia. So audience in Pakistan, a total more than 40 universities invited me, including IBA Karachi and so many other universities, Punjab University, ComSat, University of Balochistan, University of Peshawar College, Islamia College, Peshawar, and so many other universities. They invited me, so I trained their faculty members. I have number of publications, 54 in HEC recognized journals and 10 impact factor publications. And I'm guest editor of an impact factor journal. Its impact factor is 4.26, and we are going to publish a very wonderful special issue on qualitative research in hospitality and tourism management in 2022, inshallah, in this current year. So, audience, this is all about my introduction. So, after giving you my introduction, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। पहले हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे, देन माय डिस्कशन विल बी मूविंग ऑन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर उस पर हम क्वालिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे। सो ऑडियंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है डिफरेंशियल हाइपोथेसिस और एक होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस को डिफाइन कैसे करते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ। आप एक काम करें, अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करके मुझे बताएं हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। काइंडली
इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर आप बोलिएगा, क्योंकि अगर आपसे पहले कोई बोलना चाह रहा है या दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं तो आप इस तरह कह दें, मैडम आप बता दें, सर आप बता दें, आई विल टेल लेटर, ठीक है, इस तरह से रिस्पेक्टफुल मैनर में। जी वालेकुम सलाम मैडम, बताइएगा हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? Hypothesis is the untested statement is called hypothesis. बिल्कुल ठीक है, इट इज़ द अनटेस्टेड, ठीक है, स्टेटमेंट के जिसको आपने टेस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? Yes, thanks, Chaudhary. It is a tentative explanation. In hand. Sorry? Proposed solution of problem in hand. ओके, इट इज़ द प्रपोज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन हैंड। कोई सोल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है, प्रपोज सोल्यूशन है कि एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, अभी आप प्रपोज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। जी एनीवन एल्स? हम इसे कोई मफरूजा कह सकते हैं। मफरूजा, बिल्कुल, कोई एजम्पशन आपके जहन में आती है कि यार, बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी सर, a वालेकुम statement सलाम। which अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी, काइंडली दोबारा रिपीट जी, कीजिएगा। वालेकुम मैं सलाम। ये कह रही हूँ कि a statement which may or may not be true, we have to do experiments, and at the conclusion level we will see that our supposition was wrong or right. अस्सलाम वालेकुम, इट्स नबीला है सर। ऐसा आइडिया जो कि आर्गुमेंट के लिए हम प्रपोज करें, सर उसको मेरे भी ख्याल आवाज hypothesis। सुनी, सर तक आवाज नहीं जा रही शायद। हेलो, हाँ आवाज नहीं जा रही। वेट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, Kokab Hello. Yasmin here. Sir, I want to explain hypothesis. Hypothesis, we can say a statement as hypothesis which is precise and which may be tested by the researcher. Researcher's prediction. Okay, That statement that's which can be tested. बिल्कुल ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सो सर ऐसे statement- मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई है, आपने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। नहीं, उस टाइम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। Sir, I was saying that a statement which may or may not be true, and after a certain procedure of experiments, we can reach the conclusion. And at this stage, it may be right or wrong. बिल्कुल ठीक है मैडम, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि Sir, ऐसी sir, statement assumption जो without पॉसिबिलिटी its है कि truth. ट्रू हो या ना हो, बिल्कुल ठीक जी। है, जो आप एक्सपेरिमेंट करके, सर्वे करके या कोई मेथोडोलॉजी लगा के फिर रिजल्ट निकालते हैं कि वो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम, थैंक यू सो मच। जी Thank you, sir. Sir, any assumption without its truth? एनी assumption विदाउट Its truth. ट्रुथ? ओके, देखिए, अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं किसी रियलिटी की बेस पे ना, तो ट्रुथ या रियलिटी जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो रियल है, पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। जी ओके, एक लास्ट कमेंट लेकर फिर आगे मूव करते हैं। जी सर मैं नबीला बता रही हूँ आपको, एन आइडिया दैट इज प्रपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ताकि हम उसको टेस्ट कर सकेंगे ये ठीक है ये नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एन आइडिया दैट इज प्रपोज्ड फॉर द आर्गुमेंट whether it is true or not। बिल्कुल ठीक है, wonderful, thank you so much for this very wonderful and interactive session on hypothesis। so hypothesis का मतलब ये होता है कि गैस, एक assumption आउटकम के बारे में कि रिजल्ट क्या निकलेगा। सो आई बिलीव दैट यू कैन सी माई स्क्रीन, आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, हाइपोथेसिस को डिफाइन किया है। हाइपोथेसिस एक गैस है अबाउट द आउटकम, के रिजल्ट के बारे में आप गैस लगा लेते हैं कि आउटकम ऐसा निकलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी ना मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आपके हैंड्स में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, चाबियाँ, ठीक है जी, यू हैव कीज़, जो कीज़ है आपके पास हैं, उन कीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि अगर मैं ये चाबियों को छोड़ दूँ अपने हाथ से तो क्या होगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा, इट विल फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाएंगी। तो अभी आपने उसको छोड़ा नहीं है, अभी आप सोच रहे हैं छोड़ने के बारे में कि अगर मैं छोड़ दूं तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो रिजल्ट के बारे में पहले से ही अजम्पशन क्रिएट कर लेना, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी रिजल्ट ऐसा निकलेगा
इसके सोच लेना कि जो वेरिएबल आप टेस्ट करने जा रहे हैं उनका रिलेशन पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, या निकल आएगा या नहीं निकलेगा, या डिफरेंस निकलेगा या डिफरेंस आएगा या डिफरेंस नहीं आएगा। जरूर इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा हम निकलेंगे, 3 तक निकल जी पड़ेंगे। मैम, माइक्स अपने म्यूट कर इससे पहले लीजिएगा, बेटा आपकी आवाज पॉसिबल आ नहीं रही हो ठीक जाते हैं, फिर मोटर वे भी खुली हो। ठीक है। ओके मैम। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट के ऐसी स्टेटमेंट जिसको भी आपने टेस्ट करना है, ऐसी एजम्पशन जो आप क्रिएट कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में पहले से सोच रहे हैं कि यार रिजल्ट ऐसा निकलेगा, आउटकम ऐसा निकलेगा, ज़रूरी नहीं रिजल्ट वैसा ही निकले। अगर वैसे ही निकल आता है जिस तरह आपने सोचा है तो ये तो आपका हाइपोथेसिस फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर नहीं निकलता तो फिर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें ना दूसरी स्टेटमेंट में मैंने एक वर्ड ऐड किया गैस के साथ, एजुकेशन। ठीक है ना, दिस इज द की वर्ड, कि सिर्फ हमने हाइपोथेसिस का मतलब सिर्फ एक सिंपल गैस नहीं है कि आपके जेहन में कोई बात आ गई, आपने कहा इसका इसके साथ रिलेशन है या इसमें डिफरेंस है या आउटकम में ये चीज़ निकलेगी। आपके जेहन में बात आई और आपने अपने जो भी माइंड के अंदर आइडिया आया उसकी बेस पे एजम्पशन क्रिएट कर ली। बल्कि हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपने पास्ट के अंदर कोई एक्सपीरियंस किया जिससे एजुकेशन गेन की, आपने पास्ट के अंदर किसी की किताब पढ़ी, कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, कोई लिटरेचर पढ़ा, या पास्ट में आपको एजुकेट किया गया कि अगर ऐसा हो तो ऐसा रिजल्ट उसका निकलता है, तो उस एजुकेशन की बेस पे जो आप गेस लगा रहे हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी डेवलप द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द लिटरेचर। आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, पास्ट की स्टडीज रिव्यू करते हैं और उसकी बेस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, और यही बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च का पर्पस होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने थ्योरी बिल्ड नहीं करनी होती, थ्योरी टेस्ट करनी होती है। एग्जिस्टिंग थ्योरी है और एग्जिस्टिंग थ्योरी की बेसिस पे हाइपोथेसिस हम अज्यूम करते हैं लिटरेचर की बेस पे, पास की स्टडीज़ की बेस पे, और उसको अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करते हैं, आया कि जो थ्योरी कहती है वैसे रिजल्ट आते हैं या उससे डिफरेंट आते हैं। सो हाइपोथेसिस बनाने से पहले हमें थ्योरेटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होती है। उन थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पे हम हाइपोथेसिस अपनी एजम्पशन जो है वो प्रपोज करते हैं और उसकी बेस पे उसको टेस्ट करते हैं। So hypothesis is the educated guess, or it is the educated assumption about the outcome of the relationship, about the outcome in the variables, about the outcome in the experiment, about the outcome in the survey, सर्वे के आउटकम में, एक्सपेरिमेंट के आउटकम में, या जो भी आपके वेरिएबल्स हैं रिलेशन है उनको आप टेस्ट करने जा रहे हैं उनके आउटकम्स में आप अजम्पशन पहले क्रिएट कर लेते हैं कि रिजल्ट ऐसा आएगा, तो उसके बारे में पहले सोच लेते हैं कि रिजल्ट ऐसे ही आएगा। अगर वैसे ही आ जाए हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, अगर वैसा ना आए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ना 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस है, काइंडली अगर आप इसको मेंशन कर लें पेपर पे, क्योंकि इन्हीं को आज हमने इस सेशन में टेस्ट करना है। एक हाइपोथेसिस है डिफरेंशियल हाइपोथेसिस, और दूसरा हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल या एसोसिएशनल हाइपोथेसिस। So there are 2 types of hypothesis. Number 1 is differential hypothesis. Number 2 is relational hypothesis. अब differential hypothesis या relational hypothesis दोनों में difference क्या है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं differential hypothesis पे। differential hypothesis का मतलब ये होता है कि हमारी जो assumption होती है वो difference की बेस पे होती है कि आउटकम के अंदर कोई difference आएगा। So our assumption is based on the difference. We are assuming that there would be the difference in the outcome. ठीक है जी। Okay, I will come back to you. आवाज नहीं आ रही। Okay, audience. Sorry for the this particular gap. And I was discussing about the 2 different types of hypothesis. The first one is differential and the second one is relational. मैंने बताया कि differential hypothesis में आपकी assumption ये होती है कि result के अंदर difference आएगा। आप सोच लेते हैं, पहले से सोचते हैं कि जो रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर डिफरेंस आएगा, फ़र्क आएगा। ठीक है जी। आप कहते हैं मेल और फीमेल में उनके मेमोरी के अंदर फ़र्क डिफरेंस आएगा। आप ये सोच लेते हैं
कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनकी रिसर्च आउटपुट में और जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनकी रिसर्च आउटपुट में फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा। फिर उसको टेस्ट करते हैं कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। या आप कहते हैं पेशेंट को एक मेडिसिन दी है पैराडोल खिलाई है, तो उसका बुखार कितनी देर में ठीक हुआ है उसको आपने नोट कर लिया। आपने उसको पैरासीटामोल खिलाई जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो आपने दोनों पैराडोल और पैरासीटामोल का डिफरेंस देख लिया कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से या कोविड-19 की वैक्सीन है, आप कहते हैं डिफरेंस टेस्ट करते हैं कि कोविड-19 जिनको साइनोवैक लगी है वो क्या उनके नंबर ऑफ केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं जो इसकी 5th 6th वेव आई है उसमें, या जो जिनको साइनोफार्म लगी है या जिनको जो है फाइजर लगी है, ठीक है ना। जो वैक्सीन की भी किस्में हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की है, तो उसमें आप चेक कर लें कि उनमें डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रिसर्च करके हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं कि रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिफरेंशियल हाइपोथेसिस की एग्जाम्पशन ही होती है कि रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, जबकि हम बात करते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस की, रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि जिनमें हम अजम्पशन ये क्रिएट करते हैं कि रिजल्ट में रिलेशन आएगा, यानी दो वेरिएबल्स का या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है। तो हम कहते हैं दो दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन आएगा, ठीक है ना। अज्यूम कर लिया, अजम्पशन क्रिएट की, और फ्यूचर में उसको टेस्ट कर लेंगे कि अच्छा टेस्ट करते हैं रिजल्ट में रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसकी आगे एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। जिस तरह इसमें ना नॉर्मली हम कॉजल रिलेशनशिप को भी देखते हैं, एसोसिएशन को भी देखते हैं। चलें अगर कॉजल की बात करें, ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह जितना आप स्टडी करेंगे उतना क्या होगा, आपका ग्रेड अच्छा आएगा। तो स्टडी जितनी ज़्यादा की, स्टडी का रिलेशन आपने बना दिया ग्रेड्स के साथ, ठीक है जी। जितना आप खाना ज़्यादा खाएंगे आप हेल्दी फूड लेंगे, आपकी गुड हेल्थ कंडीशन होंगी, यानी हेल्थ कंडीशन पे हेल्दी फूड का इफेक्ट है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने कहा एक वेरिएबल का दूसरे के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कहते हैं रिलेशनल या एसोसिएशनल हाइपोथेसिस, जिसमें हम रिलेशन टेस्ट करते हैं, एसोसिएशन टेस्ट करते हैं। अब एसोसिएशन में और जो कॉजल रिलेशन है इसमें क्या डिफरेंस है उस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो बहरहाल टू टाइप्स के हाइपोथेसिस हैं, एक डिफरेंशियल है और दूसरे रिलेशनल है। तो डिफरेंशियल में हम डिफरेंस की बेस पे अजम्पशंस क्रिएट करते हैं और रिलेशनल के अंदर हम रिलेशन की बेस पे अजम्पशंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं टेस्टिंग की तरफ ना, देखें अगर आपके पास डिफरेंशियल हाइपोथेसिस है तो आप क्या करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू टेस्ट द डिफरेंशियल हाइपोथेसिस, आपके हाइपोथेसिस डिफरेंस की बेस पे बनाए हुए हैं, तो फिर आप स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, टी टेस्ट या अनोवा, या इनसे रिलेटेड टेस्ट लगाएंगे। जिस तरह टी टेस्ट की भी बड़ी टाइप्स है ना, सिंगल सैंपल टी टेस्ट है, या जो आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, या आपका रिपीटेड सैंपल पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। इसी तरह अनोवा अनोवा की भी टाइप्स हैं, वन वे अनोवा है, टू वे अनोवा है, फैक्टोरियल अनोवा है। तो यानी कि इस तरह से इस सेशन में हम टी टेस्ट या अनोवा पे बात कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम में। तो बाकी मैं बुक भी शेयर कर दूंगा एसपीएसएस की और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, तो आप फर्दर आगे उसमें टेस्ट वगैरह जो देखना चाहते हैं, क्योंकि कंडीशन बदल के यानी वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल बदलेंगे, टेस्ट बदल जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं डिफरेंशियल हाइपोथेसिस को, लेकिन दो एग्जांपल इसमें दी हुई हैं, एक टी टेस्ट की और दूसरी अनोवा की, ठीक है ना। तो अब कौन सा किस कंडीशन में टेस्ट लगाना है वो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी टी टेस्ट या अनोवा के अंदर जो डिफरेंस है वो उसको देख लेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि अगर डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है
फिर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में विल्कॉक्सन टेस्ट है, फ्राइडमैन टेस्ट है, मैन वाइट ने यू टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। बहरहाल वो बुक के अंदर और वो सारी डिटेल उसमें मेंशन की हुई है। तो ऐसे आपके हाइपोथेसिस जो डिफरेंस की बेस पे होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बस इतना याद रखें, टी टेस्ट या अनोवा या उनसे रिलेटेड टेस्ट हम लगा लेते हैं जो जिसमें हम डिफरेंस देखना चाह रहे होते हैं। और नॉर्मली हम डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में देखते हैं कि डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। आपने 2 बॉल लिए, 2 बर्तन लिए शीशे के, ठीक है ना, तो उनमें ना डाल दिए पॉपकॉर्न्स सॉरी कॉर्न डाल दिए। कॉर्न का मतलब है सिट्टे के जो दाने हैं ना, वो आपने ये दोनों बॉक्स में डाल दिए। अब एक्सपेरिमेंट आपने किया, एक कॉर्न बॉक्स को आपने रखा किचन में, ठीक है ना, इसको मैंने रखा किचन में, और एक को आपने रखा फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, एफ फॉर फ्रिज, ठीक है जी। तो एक को आपने किचन में रखा, दूसरे को आपने फ्रिज में रख दिया, के फॉर किचन। ले भाई, अब सुबह हुई तो बॉक्स 1 जो था कि फ्रिज वाला और ये बॉक्स 2 जो किचन वाला था, बारी बारी आपने दोनों से पॉपकॉर्न्स बनाए, ओवन में रखा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, घी डाला, जो भी किया आपने, और उसके बाद ओवन का बटन दबा दिया, हीट दी, और क्या होगा, बॉल से जो कॉर्न सिट्टे के दाने हैं उनसे पॉपकॉर्न जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखेंगे, ऐसा बॉल जिसको आपने फ्रिज में रखा है, क्या उससे पॉपकॉर्न जल्दी बनते हैं या किचन वाले से जल्दी बनते हैं जिसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा है, या किससे ज़्यादा फूल के वो बनते हैं, यानी ज़्यादा बनते हैं क्वांटिटी, या साइज़ ज़्यादा हो जाता है, एकदम बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली डिफरेंस देख रहे हैं। तो आप डिफरेंस को चेक कर रहे हैं। तो अब नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम डिफरेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं कि अच्छा जी ये मेडिसिन दी है, इससे कोई डिफरेंस आ रहा है, या ये पौधे पे ये चीज़, ये केमिकल छिड़का है, इससे कोई डिफरेंस आ रहा है, या उस पे जो पौधों को बहुत सारे शरात खा जाते हैं, तो क्या उस पे कोई इस केमिकल से डिफरेंस आ रहा है, इससे आ रहा है, या मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस को हम टेस्ट करते हैं, डिफरेंशियल हाइपोथेसिस। सोशल साइंस में भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप अगर एजुकेशन में एक मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ा के देखते हैं, तो आप देखते हैं बच्चों के रिजल्ट के अंदर क्या क्या है रिजल्ट, फिर दूसरा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी एक आप फ्लिप्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट पे चले जाएं, कन्वेंशनल लर्निंग पे चले जाएं, 1 to all पे। फ्लिप्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होता है, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अमाद उपल, उन्होंने एक रिसर्च की इस पे ना, एजुकेशनल लीडरशिप पे, उसका उनका काम बहुत है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग से उनकी पीएचडी या यूके से। तो उन्होंने कहा डॉक्टर लोधी मैंने काम किया फ्लिप्ड क्लासरूम पे। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, टीचर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर पहले ही दे देता है बच्चों को सीडी में, और उनको बाउंड करता है अपने पढ़ के सुन के आने, और उसके बाद क्या होता है, क्लास में सिर्फ डिस्कशन होती है। तो नॉर्मल कन्वेंशनल क्लासेस में क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है, बाकी सारे सुनते हैं, 1 to all मेथड जो नॉर्मली कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा चलता है। सो मतलब कि अब आप वो कहते हैं मैंने क्या किया, अपने दो सेमेस्टर्स की अलग अलग क्लासेस थी सेमेस्टर में, तो एक क्लास को मैंने कन्वेंशनल मेथड से टीचिंग की, दूसरे को फ्लिप्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट से मैंने टीचिंग की। दोनों का मैंने डिफरेंस देखा कि यार इन दोनों क्लासेस का कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने रिजल्ट रिपोर्ट किए, जो क्लास में मैंने फ्लिप्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था उसमें उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, और जो कन्वेंशनल मेथड था उनकी परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट थी, वैसे की वैसे थी। सो इस तरह से उन्होंने रिसर्च आर्टिकल एजुकेशन में लिखा। तो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत सारे लोग जो है डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं एसोसिएशनल हाइपोथेसिस या रिलेशनल। अगर आपकी हाइपोथेसिस एसोसिएशनल है या रिलेशनल है, तो उसके लिए फिर हम जो टेस्ट लगाते हैं रिलेशनल या एसोसिएशनल के लिए, कोरिलेशन टेस्ट लगाते हैं या रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन या सिंपल रिग्रेशन, तो ये टेस्ट लगाते हैं, कोरिलेशन या रिग्रेशन लगाते हैं टेस्ट, अगर आपने रिलेशनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो, ठीक है ना। और अदरवाइज अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वगैरह लगानी है फिर मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन या परसेंटेज रेंज वगैरह लगाते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं आज डाटा एनालिसिस के लिए डिफरेंशियल और एसोसिएशनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की, कि इनको आपने टेस्ट कैसे करना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे हाइपोथेसिस पे, ठीक है। सो हाइपोथेसिस की एग्जांपल मैंने इधर ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए लिखी हुई है। ये हाइपोथेसिस मैंने इधर लिख दिया कि आया कि अब ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट इसका फैसला हम बाद में करेंगे। हमने कहा सर, कि जी मैम प्लीज। सर आप गर्म पानी ले लें थोड़ा सा साथ। जी मैं ले रहा हूँ।
सर या लेक्चर को शॉर्ट कर दें, अगर आपकी तबीयत खराब है तो सर कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जो ये कि आप बहुत जल्दी जल्दी जो है ना ये चेंज कर देते हैं। मैं क्या चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो करूँ, ये आप कहना चाह रही हैं? स्लाइड्स मेरे ख्याल है जल्दी स्लाइड कह रही हैं। हाँ अच्छा नहीं, अभी ये आपको नजर आ रहा है हाइपोथेसिस, ये वाला H1? यस सर आ रहा है। चलें ठीक है। अच्छा मैंने ना एक हाइपोथेसिस बनाया H1। हाइपोथेसिस है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मेमोरी एबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। हमने कहा मेल और फीमेल स्टूडेंट्स की मेमोरी एबिलिटीज करता है। और H नोट हमने बनाया, H नोट क्या बनाया, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मेमोरी एबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। इसमें हमने वर्ड यूज़ किया नो का, कि डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे आप लोग बताएं, आप खुद अपने आप से भी पूछें, क्या मेल और फीमेल की मेमोरी एबिलिटी में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? मेमोरी कैपेसिटी में क्या मेल की मेमोरी ज़्यादा होती है, फीमेल की मेमोरी ज़्यादा होती है? मैंने वैसे जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया लाइफ का, फीमेल की मेमोरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। सो वो इस तरह से कि जी, वो इस तरह से कि मेरे ख्याल में अगर फील्ड है, खवातीन की जी डिफरेंट सॉरी फील्ड में मेमोरी और है और मेल की डिफरेंट फील्ड में मेमोरी ज्यादा होती है, फील्ड्स का डिफरेंस बिल्कुल आ ठीक, जाता है, ये बहुत बड़ी फील्ड्स चीज। सर वेरी करता है ये, सर वेरी इसको करता है कंक्लूड फ्रॉम करता हूँ मीडियट टू अपनी ना बात पे। जी But it जी is मैम a बिल्कुल ठीक है, यू आर hypothesis. आल्सो राइट। मेल की मेमोरी ज्यादा होती है अच्छा क्योंकि चले इसको ना हम फीमेल टेस्ट भूलना करेंगे। चाहती हैं, भूल जाती हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, इसको हमने टेस्ट करेंगे, मेल की ज़्यादा होती है फीमेल की ज़्यादा होती है। अच्छा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, मैं नहीं कहता कि मेरा एक्सपीरियंस जर्नलाइजेबल है या उसकी जर्नलाइजेबिलिटी ज़्यादा है। तो उसको जब तक कोई हाइपोथेसिस टेस्ट ना कर लें, हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रा करते कि जब तक एम्पिरिकल डाटा पे उसको टेस्ट ना कर लें। तो मेरा जो वैसे अपना पर्सनल मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस है, वो ये है कि ख़वातीन को ये भी याद होता है कि इस इवेंट पे कौन से कपड़े पहने थे, और उनको ये भी याद होता है कि ये वाले कपड़े मैंने इस इवेंट पे नहीं पहने क्योंकि फ़लाँ आ रही है उस इवेंट पे और उसने ये कपड़े देखे हुए हैं। सो कहने का मकसद है बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। फीमेल को बहुत सारी जहानत उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर, मेल भूल जाते हैं, उनको शादी की डेट नहीं पता होती, उनको बच्चों की बर्थडे की डेट नहीं पता होती, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो बहरहाल ये मेरा मुशाहिदा है, सर माइट बी आई औरतों एम रॉन्ग। को ये भी याद रहता है कि हस्बैंड ने किस बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया। हाँ ये भी याद रहता, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अब हम सर ना ये आगे भी तो मूव हो करते सकता हैं। है ना कि आप जो चाहें वो याद रखते हैं और जो नहीं, जिसको इम्पोर्टेंट समझते हैं हाँ वो चीज याद रहती है और जिसको आप इम्पोर्टेंट जी नहीं समझते वो नहीं याद रहती। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ये तो सर फिर अब गवाही ना हम क्यों, आगे मूव दो करते हैं। औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर क्यों होती है फिर? हाँ ये इसमें भी लॉजिक है, बिल्कुल सही है। तो अब ना इसके बाद आगे मूव करते हैं हम ना। अच्छा इसको ना हम टेस्ट करेंगे कि मेल की मेमोरी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या फीमेल की ज़्यादा अच्छी है। इसको टेस्ट करने के लिए ना हम टी टेस्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और इसको चेक करते हैं कि ये जो वाकई ऐसा है मेल की यानी दोनों की डिफरेंस आ रहा है या दोनों की मेमोरी एबिलिटी एक जैसी है। ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाया ना, ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। हमने लिखा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मेमोरी एबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। हमने ये नहीं कहा कि मेल की ज़्यादा है फीमेल की ज़्यादा है। अगर इसकी जगह मैं ये वाला हाइपोथेसिस बनाऊं H1 के मेल students have more memory ability as compared to female students, ठीक है, देन द फीमेल स्टूडेंट्स, इस तरह कर देते हैं मेमोरी देन द फीमेल स्टूडेंट्स। तो अब मैंने जो H1 बनाया ये वाला, ये मेरा हाइपोथेसिस जो होगा, ये वाला हाइपोथेसिस, अब ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, इसमें मैंने डायरेक्शन दे दी है। मैंने कह दिया कि रिजल्ट में अगर मेल की ज़्यादा आएगी ना मेमोरी एबिलिटी, तो उसी सूरत में ये रिजल्ट जो होंगे ना वो एक्सेप्ट होंगे। अगर फीमेल की कम आएगी फिर ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना, सिर्फ डिफरेंस पे बात नहीं चलेगी। जबकि नॉन डायरेक्शनल में क्या होगा कि हमने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी, हमने कहा मेल की भी ज़्यादा, ठीक है ना।
सो इसमें कोई हमने डायरेक्शन नहीं दी, जबकि ये देखिए वर्डिंग बदलने से डायरेक्शन दे दी हमने। अच्छा, अब ना मैं एक सॉफ्टवेयर ऑन करने जा रहा हूँ, एसपीएसएस, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। एसपीएसएस स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज के अलावा भी नेचुरल साइंसेज में भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है। तो आपकी दूसरे डिसिप्लिन में भी बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल मैं साइंसेज। एक दफा आई थी इस ना, ऐसे छुट्टी पे था, मुझे लेके दो, मैं इतनी बड़ी हूँ और बाजी बाजी भी करता है। एक्सक्यूज मी जी, ये जो सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल प्लीज साइंसेज। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। जी जी, मैंने म्यूट भी कर लिया, जिनकी आवाज़ आ रही थी अपनी आ रही। अच्छा मैम, अब हम जा रहे हैं आगे। ये पहला हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, जो कि कौन सा हाइपोथेसिस है, डिफरेंशियल हाइपोथेसिस है, उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ओके, उसके लिए ना मैं आपसे ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। एग्जांपल ज़रा देखिएगा इसमें क्या है। एग्जांपल ये है कि ये डाटा आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे हमने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट किया, 30 स्टूडेंट्स को 30 स्टूडेंट नहीं, 20 स्टूडेंट पकड़े, 10 मेल पकड़े और 10 फीमेल्स पकड़ी। उनको हमने अनरिलेटेड 30 अनरिलेटेड वर्ड्स सुनाए, पढ़ाए, रीड करवाए। 30 अनरिलेटेड वर्ड्स उनको पढ़ा दिए। कितने वर्ड्स हैं? 30। 30 वर्ड्स पढ़ाने के बाद हमने उनसे कहा कि इसको ना रिकॉल करें। कितने आपको याद है? अनरिलेटेड वर्ड्स का मतलब ऐसे इधर उधर के वर्ड्स, जिस तरह मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ बॉटल, ठीक है जी, वॉच, टेलीफोन, मोबाइल, क्विजेज, असाइनमेंट्स, ठीक है जी, उसके बाद मार्कर, पेन, चेयर, कोट, ठीक है, उसके बाद डोर, ठीक है, और मतलब के बैग, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, उसके बाद ये इस तरह के जो अनरिलेटेड वर्ड्स हैं 30 उन बच्चों को पढ़ाए गए। उन 30 अनरिलेटेड वर्ड्स को पढ़ाने के बाद उनसे कहा गया अब उनको रिकॉल करो, कितने वर्ड्स आपको याद है। तो पहला जो मेल स्टूडेंट था ना, उसने 16 वर्ड्स रिकॉल किए, दूसरे ने 14, तीसरे ने 18, चौथे ने 25, इस तरह मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जितने जितने वर्ड्स जिसको याद रहे उसने रिकॉल कर दिए। अब फीमेल्स के आप खुद पढ़ें ज़रा, फीमेल्स के कितने कितने हैं इसको पढ़ें, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन। यहाँ ओके, तो आ फीमेल जाए। ज्यादा आगे हैं। देखें, अब हम क्या करेंगे कि इसको ना डिफरेंस को टेस्ट करने जाएंगे और इस पे हम लगाएंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट उस जगह पे लगता है जहाँ हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, उधर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि अब हमारा ये डिफरेंशियल हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मेमोरी एबिलिटी इन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, ये हमने H1 बना दिया। और उसके अगेंस्ट हमने H नोट बना दिया कि देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ मेमोरी एबिलिटी इन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रूव होगी, कौन सी डिसप्रूव होगी, कौन सी जो स्टेटमेंट है जिस तरह डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, उसको टेस्ट करने हम जा रहे हैं। अब इसको टेस्ट, इन स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के लिए हम अप्लाई करने लगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी डाटा जो है वो इसमें एसपीएसएस पे पुटअप कर दिया होगा और आपके सामने मैं इसको जूम करके एसपीएसएस सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ। इसके ना दो जो साइड्स हैं, इसमें 2 व्यूज़ हैं, इसको मैंने जूम कर दिया। एक व्यू है डाटा व्यू, नीचे देखें, और एक व्यू है वेरिएबल व्यू। अच्छा, मैं एक काम करूँगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एसपीएसएस पे पहले भी काम किया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने एसपीएसएस को पहली दफ़ा सुना होगा। तो ये जो एसपीएसएस की वीडियोज़ है ना, बहुत सारे लेक्चर्स की उर्दू में भी हैं और बड़ी सिंपल हैं, ईजी हैं।
ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और SPSS सॉफ्टवेयर का जो लिंक है इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी शेयर करेंगे। और आज का जो सेशन हो रहा है ये भी रिकॉर्डेड है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा उनसे जो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आपको आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखें इसमें 2 व्यूज़ हैं, एक है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू पे हमने वेरिएबल 2 बनाए, एक बनाया जेंडर, ठीक है, और दूसरा बनाया वर्ड्स रिकॉल या वर्ड्स के नाम से हमने बनाया। जेंडर में हमने ना 2 कैटेगरीज डाल दी, वैल्यू के अंदर जाके एक कैटेगरी डाली उसमें मेल, और दूसरी कैटेगरी हमने डाली फीमेल। मेल को हमने कैटेगरी को 1 नंबर दे दिया वैल्यू, और फीमेल को हमने नंबर दे दिया 2, कोडिंग कर दी इसकी। और उसके बाद ये करने के बाद हमने डाटा व्यू पे जाके डाटा डाला मेल का, कि जहाँ मेल थे वहाँ पर 111 एंटर कर दिया। और ये देखे जो पहले मेल ने 16 वर्ड्स याद रखे 30 में से, दूसरे ने 14, तीसरे ने, ये बहुत इसकी मेमोरी अच्छी थी, शार्प थी, 30 वर्ड सुने। फीमेल का डाटा शुरू हो रहा है 222 से, तो ये हमने कोडिंग कर दी और ये सारा डाटा डाल दिया फीमेल्स ने कितने कितने वर्ड्स याद रखे, ठीक है ना। अगर इस पे ना एक ऑप्शन आ रही होती है SPSS पे 1 और A की ना, लेबल टेक्स्ट की, तो लेबल और वैल्यू की, तो इसको आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए 1 जो था वो मेल में कन्वर्ट हो गया, और जो 2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल में। तो ये फीमेल का डाटा है और ये मेल का डाटा है, इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। हम एनालाइज पे जाके और उसके बाद कंपेयर मीन पे जाएंगे और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये जो सिंटेक्स है आप इसको पेपर पे लिख भी सकते हैं कि हम किधर गए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए, आप पेपर पे लिख लें अप्लाइंग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सो उसके लिए हमें किधर जाना है, एनालाइज पे क्लिक करना है और कंपेयर मीन पे क्लिक करना है, एनालाइज कंपेयर मीन, और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करेंगे। एनालाइज कंपेयर मीन और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे हमने क्लिक किया। अब टेस्ट वेरिएबल में जिसको हमने टेस्ट करना, हमने वर्ड्स को टेस्ट करना, उसको मूव कर दिया, और ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने जेंडर को मूव कर दिया। जब मूव किया तो उसने कहा इसकी वैल्यू तो डिफाइन करें, तो नीचे डिफाइन वैल्यू या डिफाइन ग्रुप का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। और ग्रुप 1 को, मेल को हमने 1 वैल्यू दी थी, फीमेल को हमने 2 वैल्यू दी थी, 1 और 2, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ओके कर देंगे। कंटिन्यू करके ओके किया, हमारे पास SPSS की जो आउटपुट विंडो आई है, इस पे हमारे पास ये 2 टेबल आ गए, एक ग्रुप स्टैटिस्टिक्स और एक ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स का टेबल। जो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का टेबल आया उसमें वो कह रहा है कि वर्ड्स को हम टेस्ट करना चाह रहे थे मेल और फीमेल में, 10-10 का हमने सैंपल लिया, n का मतलब सैंपल है, 10 हमने लिया मेल स्टूडेंट, 10 लिए फीमेल स्टूडेंट, और मीन उनका क्या निकला, मेल ने 17 वर्ड्स याद रखे 17.7 यानी 17-18, और फीमेल ने 22 वर्ड्स याद रखे। इसका मतलब है मेल और फीमेल की मेमोरी एबिलिटी में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब कितना करता है ये वैल्यू भी बता रहा है। और नीचे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की हम 2 टेल वैल्यू देखेंगे। 2 टेल वैल्यू, जो ये वैल्यू आनी चाहिए सिग्निफिकेंट 2 टेल वैल्यू, ये 0.05 से कम आनी चाहिए। ये वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% से ज़्यादा है और आपके चांसेस ऑफ एरर 5% से कम है। अब देखिए ये 5% से कम है, ये बेसिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है 2 टेल पे जो वैल्यू आ रही है सिग्निफिकेंट, इसको हम P वैल्यू भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी वैल्यू का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो उसकी वैल्यू या 0.1 से कम हो, या दूसरा क्राइटेरिया 0.05 से कम हो, तीसरा होता है 0.001 से भी कम हो। यानी या तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल हम लेते हैं, या 95% लेते हैं, या 90%। उसमें ना टाइप 1 और टाइप 2 जिसको हम स्टैटिस्टिकल एरर कहते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, उसके डाउट होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम ना दरमियाना क्राइटेरिया रखते हैं, और वो कौन सा होता है वो मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहेगा। वो होता है कि 95% कॉन्फिडेंस हम लेते हैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए, कि जब तक हमारे पास 95% से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा और पी वैल्यू यानी एरर के चांसेस लेस देन 5% नहीं होंगे, यानी पी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 5% पी वैल्यू, ठीक है ना। पी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 5%। और कॉन्फिडेंस लेवल CL मैंने लिख दिया, CL होना चाहिए ग्रेटर देन
95%। तो तब तक हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कब करेंगे? जब कॉन्फिडेंस लेवल 95% ज़्यादा होगा और एरर जो होंगे 5% से कम होंगे। अब इधर जो मेरे पास आ रही है जो वैल्यू, वो पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 007 आ रही है। इसको हम 007 को 100 से भी मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 0.7% बनता है। 100 से मल्टीप्लाई करें 0.7% स्टिल 5% से कम है। तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 99% से भी ज़्यादा है, ठीक है ना? यानी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है और 1% से भी कम है इसके एरर के चांसेस। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, इसमें से हम ये सिग्निफिकेंट वैल्यू उठा लेंगे। हम टी वैल्यू भी उठा सकते हैं, उसका एक टेबल होता है, उसके मुताबिक मेन जो चीज़ है वो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू उठानी होती है हमने, ठीक है? बाकी वैल्यूज़ आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और वैसे इसकी एक एग्जाम्पशन होती है लेवीन टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना? तो उन एग्जाम्पशंस में मैं आपको नहीं डालना चाह रहा कि वो क्या होती है। बस हम इतना याद रखेंगे कि जनाब पाजी मेल और फीमेल दोवें बराबर नहीं है। एक जो है ज़्यादा वर्ड्स याद रख सकती है फीमेल, और मेल जो है कम वर्ड्स याद रख सकते हैं। और इस चीज़ के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95% से ज़्यादा है, जो कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एरर के चांसेस 5% से कम है, जो कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू बता रही है कि एरर के चांसेस सिर्फ 0.007 है। यानी एरर इसको मल्टीप्लाई 100 करें तो एरर के चांसेस 0.7% है, 1% भी नहीं है, 0.7% है, जो कि 5% से कम है। 0.7% 5% से कम है, यानी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसको पी वैल्यू भी कहते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी एरर हमारे 5% से कम है और कॉन्फिडेंस लेवल 95% से ज़्यादा है। लिहाजा हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। हाइपोथेसिस क्या था कि मेल और फीमेल में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम चेक करते हैं उस पे जाके, जो टेबल जो मैंने आपसे शेयर किया था, अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट है हाइपोथेसिस है, उस पर हम आगे और इधर हम क्या लिखेंगे कि ये वाला हाइपोथेसिस क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। और ये वाला हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ये एक्सेप्ट क्यों हुआ? ये कहता था कि भाईजान ये चीख चीख के हाइपोथेसिस कह रहा है कि डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। हमने का रिजल्ट में क्या निकला? मेल का निकला है, मेल बराबर है 17 वर्ड्स के, 17.7 है, वाइल जबकि फीमेल कितना? फीमेल का स्कोर निकला है 22.1। तो हमने कहा भाईजान चीख चीख के हम कह रहे हैं मेल का और फीमेल का डिफरेंस है, इज का मतलब है, डिफरेंस है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, वाकई डिफरेंस है और कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा है 95% से ज़्यादा है। जबकि ये हाइपोथेसिस एच नोट क्या कह रहा था? ये कह रहा था डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो हमने कहा यार ऐसा तो नहीं कि डिफरेंस तो आ गया, लिहाजा जो कहता था डिफरेंस नहीं है नल हाइपोथेसिस, ये रिजेक्ट कर देंगे और जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि वाकई हमने डिफरेंस निकाला है, मेल और फीमेल इक्वल नहीं है, उनके अंदर मेमोरी एबिलिटीज में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम ना ये डिफरेंशियल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, ठीक है ना? सो एक याद रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, जिस तरह मेल और फीमेल को हमने कंपेयर किया, तो उसमें फिर हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाया और अगर ग्रुप ज्यादा हो जाते तो फिर हम वन वे एनोवा पे जाते। तो इफ वी हैव टू ग्रुप्स we will apply independent sample t-test. If we will have more than two groups, we will apply one way ANOVA. इसको मैं इधर लिख देता हूँ। If we compare, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं टू ग्रुप्स, जिस तरह मेल और फीमेल ग्रुप्स थे, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल ग्रुप्स हैं, then we'll apply independent sample t test. Or in case if we have if we are comparing more than two groups, then
will apply one way ANOVA. लेकिन वन वे नोवा में ये कंडीशन यही होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जिस तरह जेंडर एक ही था। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते जाएंगे फिर वो आप फैक्टोरियल एनोवा उनकी कंडीशन फिर आगे चलती जाएंगी। वो फिर मैं आपसे बुक शेयर कर दूंगा, आप उसमें फर्दर अगर जाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल जो चीज़ हम इधर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि मैं ना एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। एग्जांपल ये है कि मेरे पास ना, मैं यूईटी में था, यूसीपी आने से पहले ना मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में था, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में था। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम था मैं उधर, और साथ असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो मेरे पास ना एक स्टूडेंट आ गई केमिस्ट्री की। उसने कहा सर मैंने एनालिसिस करना है, केमिस्ट्री का एनालिसिस है, और आई एम कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स। तो मैंने कहा आपके कितने ग्रुप्स हैं? उसने कहा सर मेरे ना, मैं क्या करना चाह रही हूँ जो साइलेंसर होता है ना गाड़ी का, रिक्शे का या ट्रक का, मोटर बाइक का, उसके साइलेंसर से ना धुआं निकलता है। जो स्मोक है उसके अंदर मेटल्स होते हैं, लेड होता है, आयरन होता है, और पता नहीं क्या क्या मेटल्स होते हैं। उसने कहा कि मैंने ना इनको कंपेयर करना कि मोटरसाइकिल, गाड़ी और रिक्शा और ट्रक, इसके जो यानी स्मोक है उसमें से जो मेटल्स निकलते हैं, क्या आया कि उनकी क्वांटिटी एक जैसी है या क्वांटिटी डिफरेंट है? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आपके ग्रुप्स कितने हैं? उसने कहा सर मेरे 4 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप क्या है? देखिए मैं इसको लिख देता हूँ इधर। पहला ग्रुप है इधर, उसने कहा सर पहला ग्रुप है मोटरसाइकिल है, पहला ग्रुप है मोटरसाइकिल, ठीक है जी, नंबर 1 पे। तो दूसरा ग्रुप क्या है? रिक्शा, रिक्शा। तीसरा ग्रुप कौन सा? कार है। चौथा ग्रुप क्या है? ट्रक है। तो मैंने कहा अगर आप इन चारों का डिफरेंस देखना चाह रही है ना, स्मोक के अंदर क्वांटिटी मेटल्स की, उसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपके ग्रुप 2 से ज़्यादा, तो आपका केस जो है वन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वाला नहीं है, बल्कि आपका केस कौन सा है? वन वे नोवा वाला, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स। तो 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो हमने क्या लगाना? वन वे अनोवा। अब वन वे अनोवा के लिए हम चलते हैं एक दूसरी एग्जाम्पल पे, ठीक है जी। वो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर 3 ग्रुप्स, 3 3 ग्रुप्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। अब वो ग्रुप्स कौन से हैं? ये देखें, जो मैंने आपसे एग्जाम्पल शेयर किया है इधर वो ये है, हमने ना शॉक इंटेंसिटी लगानी। शॉक इंटेंसिटी डिफरेंट है। ओके, काइंडली होल्ड कीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके ऑडियंस, वेलकम बैक। सो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में ना, मेंटल हॉस्पिटल में पागल मरीज जो होते हैं या जिनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती, उनको शॉक लगाए जाते हैं, झटके लगाए जाते हैं बिजली के। तो उसकी ना इंटेंसिटी, शॉक इंटेंसिटी जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है। एक होती है लो शॉक इंटेंसिटी, एक होती है मीडियम शॉक इंटेंसिटी, एक होती है हाई शॉक इंटेंसिटी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि लो शॉक लगा दें, मीडियम लगा दें या हाई। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने कितनी देर में पेशेंट ठीक हो जाता है, लो शॉक लगाते हैं या मीडियम लगाते हैं या हाई लगाते हैं। अब देखिए हमने 6 ग्रुप्स बना लिए। S1 का मतलब सैंपल 1 या जो भी सब्जेक्ट 1 या 2 है, 3 या 4 है, 6 हमने ले लिए लोग। अब पहला मरीज जो है वो ठीक हुआ है 15 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में, तीसरा 25 मिनट में, जिसको लो शॉक लगा रहे हैं। देखिए लगा लो शॉक रहे हैं, हल्का झटका लगा रहे हैं बिजली का। इसी तरह हमने मुख्तलिफ शॉक वगैरह लगाने हैं, और ये हमने डाटा ले लिया। उनका डाटा लिया कि कितनी कितनी देर में वो ठीक हुए हैं। जिनको मीडियम शॉक लगाए हैं, मीडियम वालों का ज़रा देखिएगा कि पहला 30 मिनट में ठीक हुआ है, दूसरा 15 मिनट में, तीसरा 20, इस तरह
मुख्तलिफ मिनट्स में वो ठीक हो रहे हैं। जिनको हाई वोल्टेज के झटके लगा रहे हैं वो कितनी कितनी देर में ठीक हुए हैं, वो डाटा हमारे पास आ गया। हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, लो वाला, मीडियम वाला, हाई वाला। जब 3 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो तो हम वन वे एनोवा लगाते हैं इसमें डिफरेंस को देखने के लिए। तो हमने हाइपोथेसिस बनाया, इधर मैं लिख लेता हूँ हाइपोथेसिस मैंने ये बनाया, H1 is a difference of time to resolve the problem in low, medium and high shock intensity। ठीक है जी, लो लगाएं, मीडियम लगाएं या हाई लगाएं, तो उन तीनों में डिफरेंस आ रहा है। इंटेंसिटी ये हमने H1 बना दिया। H1 के ना हम बनाएंगे अब दो को अलग-अलग कंपैरिजन करेंगे, उसके सब हाइपोथेसिस बना देंगे। यानी H1A बना देते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन लो एंड मीडियम शॉक इंटेंसिटी। H1B बना दिया, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन लो एंड हाई शॉक इंटेंसिटी। 1C बना दिया, सब हाइपोथेसिस बना दिए। There is a difference of time to resolve the problem in medium and high shock intensity। 3 हमने हाइपोथेसिस बना दिए, इन तीनों को हम ना इसके अंडर कर देते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं। 3 हाइपोथेसिस हमने मेन हाइपोथेसिस के नीचे 3 सब हाइपोथेसिस बना दिए, H1A, H1B, H1C। दो को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको हम ना टेस्ट करने जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, कौन सा रिजेक्ट होता है। तो ये जो डाटा है मेरे पास, इसको मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी SPSS में फाइल बनाई हुई है वन वे एनोवा की। ये मैंने खोल ली फाइल। अब ये जो फाइल मैंने खोली है इसको ज़रा देखिएगा। 2 वेरिएबल मैंने बनाए, ये वेरिएबल व्यू पे जाके एक बनाया शॉक इंटेंसिटी और दूसरा बनाया टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। कितनी देर में पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो टाइम और शॉक इंटेंसिटी। शॉक इंटेंसिटी में मैंने कोडिंग की 3 तरह की कोडिंग, एक कोडिंग की लो, दूसरी की मीडियम और तीसरी की हाई। ये तीनों हमने बना दिए। लो को हमने 1 दिया, मीडियम को 2 और हाई को 3 दे दिया। डाटा व्यू में जाके हमने डाटा एंटर किया। जो पहले 6 पेशेंट है उनको लो इंटेंसिटी लगी, अगले पेशेंट जो है उनको मीडियम इंटेंसिटी लगी और जो उससे अगले है उसको हाई इंटेंसिटी लगी। अगर आप इस पे जाके चेक करें इसको तो देखें लो, मीडियम, हाई आपको नज़र आएगा। और ये पेशेंट्स की वो जो वो है वैल्यू कितने टाइम में वो ठीक हुए हैं वो आ रही है। अब हम 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 ग्रुप्स की वजह से क्या लगाएंगे, वन वे एनोवा। तो काइंडली आप ऊपर पेपर पे लिख सकते हैं जहाँ आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं। अप्लाइंग वन वे एनोवा, एनोवा अप्लाई करने के लिए किधर जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे और कंपेयर मीन पे जाएंगे और वन वे एनोवा पे क्लिक करेंगे। एनालाइज, कंपेयर मीन और वन वे एनोवा पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया। अब डिपेंडेंट लिस्ट में हम डालेंगे टाइम और फैक्टर में हम डालेंगे शॉक इंटेंसिटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिएगा। एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन पे गए और वन वे एनोवा पे क्लिक किया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने डिपेंडेंट चेक करना है वो टाइम को टेस्ट करना, उसको टाइम को उधर मूव कर दिया और शॉक इंटेंसिटी को हमने मूव किया फैक्टर के अंदर। ये करने के बाद ना हम पोस्ट हॉक, ये बटन ऊपर नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। ये ना इसकी सारी ये रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब इनके चैनल पे, PHEC चैनल पे भी मिल जाएगी। आप मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा स्लो करके, स्टॉप, स्टिल, पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हैं। अच्छा, आगे पोस्ट हॉक पे क्लिक करेंगे और LST पे क्लिक करेंगे। LST पे क्लिक किया, इधर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फिडेंस लेवल क्या आ रहा है, 95% से ज़्यादा, और सिग्निफिकेंट लेवल आ रहा है 0.05, यानी 5% से कम
हमारा क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा था, इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे। LST बस हमने ना इधर एक टिक किया, चेक किया, पोस्ट हॉक में जाके कंटिन्यू किया, ओके किया, ये रिजल्ट आ गए वन वे नोवा के। वन वे नोवा टेबल आ गया, F स्टैटिस्टिक्स और सिग्निफिकेंट वैल्यू। हमारा ताल्लुक इस टेबल से ज्यादा इस चीज के साथ है, पोस्ट हॉक टेस्ट के साथ है जो हमने लगाया। एक छोटा सी थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, 5 to 10 सेकंड लगेंगे मेरे। पार्टिसिपेंट अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। थैंक यू सर, आप यू कैन कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये जो अनोवा टेबल है इसको हम स्किप कर देते हैं। हम चेक करेंगे ये पोस्ट हॉक जो अनोवा के साथ एसोसिएटेड टेस्ट है जो हमने लगाया, अनोवा ही एक्चुअल लगाया, उसमें फर्दर हमने ग्रुप्स बना के कंपेयर किया। अब इसमें ज़रा देखिएगा, मैं इसको ना पेन को इधर ले आता हूँ ये आसानी के लिए, ताकि इधर मुझे नज़र आता रहे। ये लें जी, ये देखिए पोस्ट हॉक में जो दो लिस्टें आई हैं, पहली लिस्ट क्या आ रही है, एक आ रही है लिस्ट आई और दूसरी आ रही है जे। शॉक इंटेंसिटी उसने आई बना दिया और जे उसको कंपेयर किया। उन्होंने कहा लो को मीडियम के साथ कंपेयर किया पहले, फिर लो को उसने हाई के साथ कंपेयर किया। उसने कहा लो शॉक लगाएं या मीडियम शॉक लगाएं, 5 मिनट का मीन डिफरेंस आ रहा है। मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 मिनट का, -5 मिनट्स आ रहे हैं। और सिग्निफिकेंट वैल्यू पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.111 आ रही है। 0.111 का मतलब क्या है इधर कि एरर के चांसेस 11% आ रहे हैं, जबकि 5% से कम आने चाहिए। सिग्निफिकेंट वैल्यू 5% से कम हो, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो। इसका मतलब है ये वाला हाइपोथेसिस पहले वाला रिजेक्ट हो गया, पहले वाला ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। हाइपोथेसिस क्या कहता था, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लो शॉक इंटेंसिटी एंड मीडियम शॉक इंटेंसिटी। तो हमने कहा भाजी पेशेंट नु लो शॉक ला लो, मीडियम ला लो, कोई 5 मिनट का फर्क है, 5 मिनट का डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो डॉक्टर को हमने एडवाइस की कि लो शॉक या मीडियम शॉक में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन देखें लो और हाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 मिनट का आ रहा है। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। सो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ रही है, यानी एरर के चांसेस 0 हैं। 0 का मतलब ये नहीं 0 है, पॉइंट के बाद ना 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अगर आप डिजिट्स बढ़ाएं ना, ये टेबल खुला कर लें, बड़ा कर लें, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ज़रूर होगी, एरर की वैल्यू कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। हम ये कह सकते हैं 99% हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे 100% कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। स्टैट में 100% नहीं होता, हमारा कॉन्फिडेंस मोर देन 99%, हम ये कहेंगे मोर देन 99% कॉन्फिडेंस है और एरर लेस देन 1% है, यानी 0 है एरर ना, ठीक है ना, लेस देन 1% है। सो ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। हमने कहा कि लो शॉक इंटेंसिटी और हाई शॉक इंटेंसिटी में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसको मैं येलो कर देता हूँ कि ये एक्सेप्ट हो गया है, येलो वाला। लो शॉक और हाई शॉक के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन लो और मीडियम में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, ये कर रहा, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लो मीडियम और लो का कंपैरिजन करें, वही बात है, 5 मिनट पहले पॉजिटिव थे, हम नेगेटिव, वो पॉजिटिव आ गए हैं, एरर के उतने ही चांसेस हैं। कंपेयर वो एक तरफ से उधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है, ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसको भी मैं इधर क्रॉस कर देता हूँ, वही बात है। मीडियम का आप देखें, हाई के साथ जब कंपेयर किया तो 20 मिनट का डिफरेंस आया और एरर के चांसेस कम है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है। इसका मतलब है वाकई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मीडियम का हाई का कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, लो और हाई का कर रहा है, उसी तरह 25 आ गया, और हाई और मीडियम का किया तो वो भी कर रहा है, 20 मिनट्स आ गया, पॉजिटिव आ गए। तो इसका मतलब है कि लो हाई का लो के साथ भी डिफरेंस है, हाई का मीडियम के साथ भी है। किसका नहीं आया, हमारा लो का और मीडियम का नहीं आया, या मीडियम लो का नहीं आया, एक ही बात है। लो मीडियम का नहीं आया, बाकी सारे आ गए हैं। अब हम चलते हैं उस जहाँ पर हमने हाइपोथेसिस बनाए हुए थे उस पर चलते हैं, तो उसको देखते हैं उसमें वो क्या कहते हैं। ये हाइपोथेसिस है, तो हमने कहा कि लो का और किसका नहीं आया था, सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया, लो का और मीडियम का नहीं आया था, ठीक है जी। लो का मीडियम का, ये पहला ही था, ये पहला हाइपोथेसिस, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। बाकी इन दोनों को मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये दोनों बाकी एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है जी। ये दोनों को ग्रीन कर देता हूँ, ये दोनों नीचे वाले एक्सेप्ट हो गए हैं,
और ऊपर वाला पहला जो था वो H1A वो रिजेक्ट हो गया। वो कहता था देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन लो एंड मीडियम। हमने कहा देयर इज नो डिफरेंस, H नोट एक्सेप्ट हो जाएगा, H1A रिजेक्ट हो जाएगा। तो H नोट इसका जो था जो कहता था डिफरेंस नहीं है, हमने वैसे वो नहीं बनाया, लेकिन अज्यूम हम कर रहे हैं कि वो वाला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, H नोट जो कहता था डिफरेंस नहीं है। तो अगर डिफरेंस नहीं है तो डॉक्टरों को हम कहेंगे डॉक्टर साहब रैम करो थोड़ा, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो लो में और मीडियम में नहीं आ रहा, लो में और मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस ये लिखा हो ना डिफरेंस, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। हमने कहा भाईजान कोई फर्क नहीं आ रहा, डिफरेंस नहीं आ रहा, तो पेशेंट्स बेचारे को मीडियम शॉक लगाने की बजाय आप लो शॉक भी लगा सकते हैं कि डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, रिसर्च करने से उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, उसकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। जो हमने रिसर्च करके जो फाइंडिंग्स देनी होती हैं उसकी बेस पे फिर क्या होगा कि हम आगे फाइंडिंग्स अपनी रिपोर्ट कर सकेंगे। इस तरह से फिर हम ना हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ये हमने डिफरेंशियल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सीख लिया, ठीक है ना। अप टू दिस पॉइंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर हम रिलेशनल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग पे जाएंगे। जी प्लीज। No, sir. Every point is clear. ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर मूव। वालेकुम सलाम जी मैम, क्विकली पूछने को टाइम भी कम है ना हमारे पास, फिर वो रह जाएंगे बात। सर जी जी बस एक प्लीज। छोटी सी बात मैंने पूछनी थी कि जी अगर जी। मोर देन वन जो डिपेंडेंट है हमारे, तो हम वो मनोवा नहीं इस्तेमाल कर सकते उसमें? मनोवा यूज करते हैं ना, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर मोर देन वन डिपेंडेंट हो जाए तो इधर तो केस हमारा एक ही डिपेंडेंट है ना। असल में उस तरफ मैं ले जाना नहीं चाह रहा ना, क्योंकि टाइम फिर हमारे पास बहुत ज्यादा हो तो टाइम भी लिमिटेड है। अच्छा अब आगे देखें, आगे हम चलते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस की तरफ। रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि जिसमें हम रिलेशन देखते हैं कि जनाब जितना मैं खाऊंगा उतना मैं मोटा हो जाऊंगा, जितनी मैं वॉक करूंगा या कम खाऊंगा उतना मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, ठीक है ना, जितना मैं पढ़ूंगा उतने मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, जितनी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना मेरा इंसेंटिव ज़्यादा लगेगा, उतनी मेरी वाह ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जितना आप पंखा ज़्यादा चलाएंगे उतनी हवा ज़्यादा आएगी, जितना जनाब जो बारिश अगर तेज़ आएगी, बारिश ज़्यादा होगी, उतना ही पानी सड़कों पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन के यार इसके इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होगा, या ऐसा भी हो सकता है एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो जाए। जिस तरह जितना मैं खाना ज़्यादा खाऊंगा उतनी भूख कम हो जाएगी, जितना मैं पानी ज़्यादा पीऊंगा उतनी प्यास मेरी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना बच्चे की तरबियत अच्छी करेंगे बुरी सोसाइटी से उतना वो ज़्यादा बच जाएगा। तो एक वेरिएबल के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज भी हो सकता है, या एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनको कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब इसमें ना मैंने रिलेशनल हाइपोथेसिस इधर बनाया है, एक एग्जांपल शेयर करना जा रहा हूँ, वो ये है रिलेशनल हाइपोथेसिस वो है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीड एंड जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स। जीपीए का मतलब है उसका जो ग्रेड है, जो स्टूडेंट्स का ग्रेड आता है यूनिवर्सिटी में, वो कितना, यानी जितना वो ज़्यादा पढ़ेगा, स्टडी आवर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना वो स्टूडेंट का जीपीए ज़्यादा आएगा। हम कहते हैं ना बेटा पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे उतना ग्रेड अच्छा आएगा। इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर लेते हैं कि जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा उसका उतना ज़्यादा ग्रेड अच्छा आएगा। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कोरिलेशन से या रिग्रेशन से। मैंने आपको बताया था रिलेशनल हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करते हैं, या तो हम लगाते हैं कोरिलेशन या लगाते हैं रिग्रेशन, ठीक है ना। अब कोरिलेशन कहाँ सूटेबल है, रिग्रेशन कहाँ पर सूटेबल है, उस पर हम बात करते हैं। कोरिलेशन उधर लग सकता है जहाँ हमारे दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, यानी कोई डिपेंडेंसी शो नहीं हुई। लेकिन रिग्रेशन उधर लगता है जहाँ पर हमें पता होता है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। जहाँ डिक्लेयर नहीं किया जाता कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, वहाँ कोरिलेशन लगा सकते हैं, वहाँ लिबर्टी है। लेकिन जहाँ पता लग जाए कि ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है, वहाँ आप सिर्फ रिग्रेशन ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ना मैं इसमें आपको गाइड करता हूँ। कोरिलेशन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। ये देखें, ये कोरिलेशन की मुख्तलिफ केसेस हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ना -1 से लेके +1 तक आती है। देखें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू -1 से लेके +1 तक, दरमियान में 0 है, -1 से +1 तक आती है। इसकी ना मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कोरिलेशन की। जब क्लास होती है ना, मैं उनको अगर समझा रहा हूँ या अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहा हूँ, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं 2 बच्चों को ना चलवा के देख लेता हूँ, चला के
तो बल्कि मैं कहता हूँ बेटा आपने ना चल के क्लास में पहले तो सेंटर में आए, दोनों खड़े हो जाए। उन्होंने कहा सर जी खड़े हो गए हैं। मैंने कहा एक दफ़ा आपने ना चल के इधर जाना और दूसरी तरफ दूसरी साइड पे जाना। ये दो स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स चलते हैं, चल के सेम स्पीड से एक क्लास के कोने में आ जा, एक क्लास की दीवार की दीवार पे आ जाते हैं और फिर यही वापस रिटर्न करते हैं, ये चल के दूसरी साइड पे चले जाते हैं। एक ही स्पीड से, दोनों की स्पीड एक जैसी होती है, एक ही स्पीड से चलते हैं, वापस जाते हैं। मैं कहता हूँ ये वाला जो केस है ना, दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक वेरिएबल देखें वाई एक्सिस पे है और एक एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस में इंक्रीज आ रही है तो वाई एक्सिस में भी इंक्रीज आ रही है, और एक्स एक्सिस में अगर डिक्रीज आ रही है तो वाई एक्सिस में भी डिक्रीज आ रही है। ठीक है ना, तो ऐसा इसमें लाइन जो होगी बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, सेंटर में पॉजिटिव रिलेशन आएगा और उसमें कोफिशिएंट वैल्यू जो होगी 1 आएगी, परफेक्ट रिलेशन आएगा। जितनी चेंज एक वेरिएबल में हो रही है एक्स में, उतनी वाई में भी हो रही है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है इंसानों में नहीं होता, मशीनों में हो सकता है। आपकी इंजीनियरिंग की स्टडी में ये रिलेशन आ सकते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन जो, मेरी भी बिजनेस मैनेजमेंट सोशल साइंसेज से रिलेटेड है, तो हमारी स्टडी जो होती है ना उसमें परफेक्ट रिलेशन नहीं आता। तो मशीनों में आ सकता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो। हमारा ये आ सकता है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या होता है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों की स्पीड थोड़ी सी, एक की फास्ट है एक की स्लो है, लेकिन थोड़ी सी है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 तक आती है, और इसको हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसकी ना एग्जांपल हम ले सकते हैं, इधर ले लें हस्बैंड, हस्बैंड का बिहेवियर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ले लें वाइफ का बिहेवियर। दोनों का अगर पॉजिटिव ना, हाईली पॉजिटिव है, तो जिंदगी जो होती है ना जन्नत बनी होती है। जिस तरह इसका मतलब पता क्या होता है, जिस तरह हस्बैंड कह रहा है वैसे ही वाइफ मान लेती है, जिस तरह वाइफ कह रही है वैसे ही हस्बैंड मान लेता है, तो इसको हम कहते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। जो एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, देखिए इंसानों में ना परफेक्टली नहीं होता ये काम, और तो ये इसको कहते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। लो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है, दूसरे में थोड़ी थोड़ी सी चेंज आ रही है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एक में बहुत ज्यादा चेंज है दूसरे में बहुत कम चेंज है, स्लो चेंज है, तो इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू फिर कम आती है और लाइन जो स्कैटर्ड हो जाती है। देखें लाइन डॉट ये सारे स्कैटर्ड, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं लो पॉजिटिव कोरिलेशन। है पॉजिटिव, एक इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज, लेकिन है लो। ठीक है, और आगे देखें नेगेटिव में क्या होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्लास में स्टूडेंट्स को इस तरह से कहता हूँ, प्रैक्टिकली जो एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी करवा उसमें ये कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ना चल के, एक का मुंह इधर होगा, चल के वो उधर जाएगा, और दूसरा जो स्टूडेंट है ना इधर आएगा, यानी एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और फिर इसी तरह एक डिक्रीज हो जाएगा दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव। यानी एक सेम स्पीड से चेंज आए तो उसको उसमें वैल्यू जो आएगी -1 की आएगी, सो इसको कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसकी एग्जांपल यही है कि आप दीवार पे जितनी जोर से गेंद मारेंगे इट विल बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, वो वापस आपकी तरफ उसी स्पीड से वापस आएगा। सो ये क्या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ये भी मशीनों में हो सकता है, परफेक्ट इंसानों में नहीं हो सकता। हाई नेगेटिव कोरिलेशन इंसानों में हो सकता है, सोशल स्टडीज, बिहेवियरल स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज, उसमें ये रिलेशन वेरिएबल्स में आ सकते हैं हाई नेगेटिव कोरिलेशन के, और बड़े डेंजरस होते हैं कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन बहुत डेंजरस रिलेशनशिप है अगर हस्बैंड वाइफ में हो जाए, तो अगर इधर हस्बैंड है रखा और इधर वाइफ रखा, तो उनका बिहेवियर रखा है, तो हस्बैंड जो कह रहा है वाइफ उसको टोटली नेगेटिव आगे से जवाब उल्टा दे रही है, जो वाइफ कह रही है हस्बैंड टोटली आगे से नेगेटिव जवाब दे रहा है। सो यानी हस्बैंड कह रहा है दिन है, वाइफ कहती है रात है, वाइफ कहती है दिन है तो हस्बैंड कहता है रात है, टोटली नेगेटिव। थोड़ा बहुत देखे ना डिफरेंस तो आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे हाई नेगेटिव कोरिलेशन, और ये बड़ा डेंजरस रिलेशनशिप होता है। बॉस और सबऑर्डिनेट में हो, या हस्बैंड वाइफ में हो, या सोशल साइंस में किसी भी स्टडी में हो, मतलब कि ज़रूरी नहीं होता हर जगह पे ये डेंजरस होता है। बहुत सारी जगहों पे जिस तरह आप जितनी अच्छी तरबियत करेंगे उतना बच्चा छुट्टियां कम करेगा,
तो एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम होती है, तो कुछ चीज़ें कम करने में फ़ायदा भी होता है। अच्छा, इसी तरह लो नेगेटिव कोरिलेशन आप समझ गए होंगे कि एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसमें वैल्यू जो होगी माइनस में आएगी। ठीक है, सो इस तरह से ये कोरिलेशन के केसेस हैं। अब हम ना कोरिलेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। इसको कैसे टेस्ट करेंगे? आपका टाइम बचाने के लिए ना मैंने एक कोरिलेशन का ना वो बना दिया टेबल SPSS पे। हम ये देखना चाह रहे हैं रीड और स्टडी आवर्स में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो CP अभी आप रहने दें, ठीक है ना। दो वेरिएबल हमने बनाए, रीड और दूसरा बनाया GPA ऑफ द स्टूडेंट्स। तो रीड हमने बनाया कि बच्चे जो पढ़ते ज़्यादा हैं उनका GPA कितना आता है, और जो कम पढ़ते हैं उनका GPA कितना आता है। इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इन दोनों वेरिएबल का रिलेशन देखना चाह रहे हैं, रीड का और GPA का। तो इसका हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं, बल्कि बना हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया। हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया था, ये वाला, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीड एंड GPA ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने कहा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब इसको टेस्ट करना है कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने कोरिलेशन लगाया, उसका इंतखाब किया कोरिलेशन का। तो GPA का डाटा ले लिया, रीड का डाटा ले लिया। हमने कहा कि जो जितना पढ़ता है हम चेक करते हैं कि उसका GPA कितना आता है। हमने एक तरफ डाला पहले स्टूडेंट का डाटा। हमने कहा बेटा कितने घंटे पढ़ते हो? उन्होंने कहा सर जी मैडम मैं ना हफ्ते में 38 आवर्स स्टडी करता हूँ। हमने कहा GPA कितना आपका? 2.1 है। ठीक। अब दूसरा बच्चा, कितने बेटा घंटे पढ़ते हो? 54 घंटे पढ़ता हूँ। GPA कितना? 2.9 है। कितने घंटे पढ़ते हो? 43। GPA कितना? 3 है। कितने घंटे? 45 आवर्स। इस तरह GPA इतना, 50 आवर्स GPA इतना, 61 आवर्स GPA 3.7 है। इस तरह हमने डाटा ले लिया बच्चों का, कितना कितना पढ़ते हैं और कितना कितना GPA आता है, ये हमने डाटा ले लिया। अब इस पे कोरिलेशन लगाएंगे। तो काइंडली आप लिख सकते हैं पेपर पे, अप्लाइंग कोरिलेशन टेक्निक। कोरिलेशन लगाने के लिए एनालाइज पे जाएंगे और कोरिलेट पे क्लिक करेंगे और बायवेरिएट पे क्लिक करेंगे। एनालाइज, कोरिलेट और बायवेरिएट। एनालाइज पे गए, कोरिलेट पे गए और बायवेरिएट पे क्लिक किया। आप इसका सिंटेक्स भी लिख सकते हैं। इस पे बायवेरिएट पे क्लिक किया। अब हमने ना ये दो वेरिएबल इसमें डाल दिए, रीड और GPA डाल दिया और इसको ओके कर दिया। अब इसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, पियर्सन कंडोलस्टा या स्पीयरमैन, इनमें डिफरेंस क्या है, बस उसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास कोरिलेशन का टेबल आ गया। कोरिलेशन में ना उसने रीड के साथ देखा तो वैल्यू 1 आई है, यानी एक्स एक्सिस पे भी रीड है और वाई एक्सिस पे भी, जो कि मीनिंगलेस है, उसको छोड़ देंगे 1 वैल्यू को। और इस हम देखेंगे रीड को और GPA को जब देखा वैल्यू कितनी आई है, 0.867 आई है। और इसी तरह जब GPA को एक्स एक्सिस पे रखा है, रीड को वाई एक्सिस पे, तो तब भी वैल्यू उतनी आई है 0.867, यानी इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये एक ही वैल्यू है। और जब GPA को x पे रखा, GPA को y पे रखा, तो वैल्यू 1 आई है। ये 1 मीनिंगलेस है, इसके कोई वर्थ नहीं, क्योंकि हम डिफरेंट वेरिएबल्स को देखते हैं ना कि एक का दूसरे, हम अपना ही अपने साथ तो नहीं ना देखते रिलेशन। तो ये डायगोनल लाइन जो होती है ना 1 1, इसको इग्नोर कर देते हैं हम। अच्छा, और टू टेल सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है P की वैल्यू, वो 0.05 से कम आ रही है, तो वैल्यू हमारे पास 0.867 आ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 99% से ज़्यादा आ रहा है। तो ये हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो गया, यानी रीड और GPA का रिलेशन निकल आया और कॉन्फिडेंस लेवल भी 99% से ज़्यादा। और रिलेशन कौन सा निकला? पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.8 के पास है। ये मैंने आपको ग्राफ में दिखाई थी कि अगर 0.8 के पास इसकी वैल्यू होगी तो इसको हम कहेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी इधर से एक्स एक्सिस पे रीड बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस पे GPA बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0.867 आई है, 8 के पास आई है, तो ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन निकला है हमारा, यानी इन दोनों में पॉजिटिविटी है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब हम ना अपनी उस हाइपोथेसिस पे चले जाते हैं। तो हाइपोथेसिस हमारा क्या था?
हाइपोथेसिस हमारा ये था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीड एंड स्टडी आवर्स, ठीक है ना, ये हमारे पास था। तो एच नोट हमने बनाया था। Excuse me, sir. Can you please shift to the results? सॉरी, मैं रिजल्ट पे दोबारा हूँ। Go back to result. I want to ask you something. ओके मैम। अच्छा, इसमें जो ये आ रहा है 0.87 और ये आ रहा है correlation is significant at the 0.01 level. जी जी जी, उसके साथ ना वो 2 स्टार लगा रहा है और स्टार को नीचे एक्सप्लेन कर रहा है कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है ना 0.01 से भी कम है लेवल 2 टेल पे। इसका मतलब 0.01 का मतलब है कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें यानी पॉइंट, इसका मतलब वो ये ले रहा है कि आपके एरर के चांसेस जो हैं वो लेस देन यानी कि लेस देन 1% है। ये इसको मतलब आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट का मतलब ये है एरर के चांसेस, इधर जो मतलब ले रहा है वो SIG वैल्यू P वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि इस लेवल पे से जो हो जाए 0.1 से। इसका मतलब वो ये ले रहा है कि जो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू है ना वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यानी कि एरर के जो चांसेस हैं वो 0.01 से भी कम है, ये मतलब ले रहा है। आपकी जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, उसका एक इम्पैक्ट है क्योंकि एरर के चांसेस आपके 0.01 से भी कम है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब चलते हैं आगे मैम। नेक्स्ट इसको हमने टेस्ट कर लिया, अब हम चलते हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस कह रहा था कि ये हमने नो वाला बना लिया था। हमने कहा था बच्चों को बेटा जितनी स्टडी करोगे उतना GPA ज़्यादा आएगा। H1 बनाया था, H नोट बनाया था, जितनी स्टडी ज़्यादा करोगे उतना GPA के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स की बेस पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि हमने कहा कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी है, P वैल्यू जो है 0.05 से कम है और जो R वैल्यू है, स्मॉल r इसको कहते हैं, वो 0.867 है, ठीक है, यानी और वो भी क्या है उसमें P वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है जो क्राइटेरिया होता है। इसकी बेस पे हमने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया कि वाकई रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, यानी जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे उतना GPA आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। सो इन दिस वे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ऑडियंस, बाकी जो रिग्रेशन टेक्निक है वो मैं ओरली आपको बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ कि वो टेक्निक हम क्यों लगाते हैं जब हमने कॉजलिटी को चेक करना होता है, कॉजल रिलेशनशिप को चेक करना होता है। जिस तरह ये हमारे पास मॉडल है, ये जो मॉडल है इसमें अगर हम इस तरह से ले लें, हाइपोथेसिस की वर्डिंग भी बदल जाएगी और मॉडल से होगा ये आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये DV है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जितना आप स्टडी ज़्यादा करेंगे ये का ज़्यादा आएगा। ये H1 हमने बनाया और H2 बनाया, जितनी क्लास पार्टिसिपेशन ज़्यादा आपकी होगी उतना GPA आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं रिग्रेशन में, या आप इसको ना यूज़ करें, सिंगल इंडिपेंडेंट ले लें, सिंगल डिपेंडेंट ले लें, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन हमने इधर 2 वेरिएबल यूज़ किए इंडिपेंडेंट। तो हाइपोथेसिस की वर्डिंग क्या होगी, देयर इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीड ऑन GPA। हमने वर्डिंग में देखे इम्पैक्ट का वर्ड यूज़ किया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रीड को बना दिया और ऑन GPA करके इसको डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी जो वर्डिंग हम यूज़ करते हैं, अब इस सूरत में हमें फिर रिग्रेशन लगाना पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि GPA बनने से रीड बढ़ेगा या रीड बनने से GPA बढ़ेगा, यानी दोनों को हमने इंडिपेंडेंस नहीं दी हुई, हमने इंडिपेंडेंस सिर्फ रीड को दी हुई है कि रीड पहले बढ़ेगा, GPA बाद में बढ़ेगा। जबकि अगर हम सिर्फ ये लिख दें देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रीड एंड GPA, तो उसमें ये नहीं बताया कि GPA की वजह से रीडिंग ज़्यादा होती है या रीडिंग की वजह से GPA ज़्यादा होता है, वो उसमें हम दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया होता है, डायरेक्शन कोई नहीं दी होती, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, उसमें फिर आप कोरिलेशन लगा के भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ डायरेक्शन दे दी कि भाईजान पहले ए आएगा फिर ए आएगा, पहले रीड होगा तो GPA आएगा,
ठीक है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बच्चे का जीपीए ज्यादा आता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ज्यादा पढ़ना शुरू कर दे, इसका रिवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। लेकिन हम कोरिलेशन में तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों को हमने इंडिपेंडेंस दी हुई है, आज़ादी दी हुई है। लेकिन जब रिग्रेशन आ जाएगा फिर आज़ादी खत्म होगी, जीपीए को हमने डिपेंडेंट बना दिया कि जीपीए डिपेंड कर रहा है, जब तक इसमें रीड में चेंज नहीं आएगी जीपीए में चेंज नहीं आ सकती। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिग्रेशन टेक्निक। तो ये रिग्रेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वीडियोस भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो वो फिर आप इसको लगा के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली। अब ना एक चीज़ मैं जो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं उसमें कुछ बात ना क्वालिटेटिव एनालिसिस पे भी करना चाह रहा हूँ। मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी मलेशिया में, उसकी ना कुछ स्लाइड्स, जिस तरह टेलर यूनिवर्सिटी, चले टेलर यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। हाँ जी, टेलर यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अब देखिए मैं आपसे ना शेयर करना चाह रहा हूँ एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ना आप पेपर पे लिख लें, सारे लिख लें, उर्दू में स्टेटमेंट लिख लें। मैं आपको इंग्लिश में इधर लिखवा दिया। स्टेटमेंट ये है, बाप ने ज़मीन बेचकर अहमद को आला तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया और आमना की शादी कर दी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाप ने ज़मीन बेचकर अहमद को आला तालीम के लिए अमेरिका भेज दिया और आमना की शादी कर दी। बाप ने देखें ज़मीन बेच दिया, नंबर 1 स्टेप पे। ये मैंने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा था कि आपको नज़र आए, समझ आ जाए जल्दी। और फादर का डिसीजन क्या था, बेटे के लिए फॉर सन, उन्होंने कहा जा पुत्र अमेरिका जाके स्टडी करो। अमेरिका भेज दिया, यूएसए। और फॉर डॉटर, बेटी के लिए उसने क्या डिसीजन किया कि शादी, उसके शादी के खर्चे जो है ना उसने उठा लिए ज़मीन बेचकर। अब ये जो एक स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट से हमारे पास बहुत सारे हिडन मीनिंग इसके आते हैं, जिसको हम सिमेंटिक कोड्स कहते हैं, सॉरी लेटेंट कोड्स कहते हैं, छुपे हुए मीनिंग इसके निकलते हैं। पहली तो बात यह है कि बाप ने ये सारा काम क्यों किया, माँ भी तो कर सकती थी। तो इसका मतलब है कि उस सोसाइटी की एग्जाम्पल है जहाँ पर डिसीजन बाप करता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। फिर दूसरी बात है, उसने क्यों ज़मीन बेची, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। रेंट पे भी दे सकता था, लीज पे नहीं। उसने क्या किया है कि उसने बेच के ज़रूरत पूरी किया। फिर उसने बेटे को अमेरिका क्यों भेजा है, वो चाइना, मलेशिया, दूसरी कंट्रीज में भेज सकता था। इसका मतलब उसकी इंस्पायरेशन ज़्यादा अमेरिका से है, उसका एक इमेज है अमेरिका का कि उधर एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। फिर इसके बाद है कि सन ने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया तो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है ना। तो हिडन मीनिंग इसमें से बहुत सारे निकल रहे हैं स्टेटमेंट में से। फिर देख रहे हैं कि एशिया कल्चर में ना मैरिज का डिसीजन पेरेंट्स करते हैं, लड़की ने खुद शादी अपनी नहीं की। वेस्टर्न कल्चर में वो खुद ही कर लेते हैं बच्चे, बाहर शादी खुद ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन इधर कल्चर डिफरेंट है। तो ये स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ें हिडन नज़र आ रही हैं। फिर आगे देखें, सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द सन एंड डॉटर, बाप ने ये डिसीजन क्यों किया, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास ना इंटरव्यूज़ होते हैं, जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के, क्वेश्चन उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनकी डिटेल हमें आती है, या फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उससे लोगों की डिस्कशन होती है, वो स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं। फिर उन स्टेटमेंट्स पे हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, इस तरह थीम्स निकालते हैं, लेटेंट कोड्स कोडिंग करते हैं डाटा की, थीम्स निकाल के उसके ऊपर फिर डिफरेंट टूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए वो स्टेटमेंट्स में जिस तरह ये एनवीवो सॉफ्टवेयर है, मैं इसका ना एक्सपर्ट हूँ। पाकिस्तान में 4 लोग हैं सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम वन ऑफ देम। सो हम इसकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ने भी कुछ मेरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड की हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से और मेरी वीडियोस देखें तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियो है, मुझसे बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब एनालिसिस करते हैं ना एनवीवो में, तो इस तरह टेक्स्ट जो होता है ना, जो बातें होती है स्टेटमेंट्स, उस पर हम ये टैग क्लाउड्स निकालते हैं, वर्ड क्लाउड्स निकालते हैं, और वर्ड ट्री एनालिसिस करते हैं,
और ट्री मैप एनालिसिस करते हैं, इस तरह के थीमेटिक एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस या ग्राउंडेड थ्योरी उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये काम हम उस पर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें उसके ज़रिए निकल आती हैं। अब जिस तरह मेरा एक दोस्त है, उसने ना ट्रम्प जब आया था ना, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो उसने आते इस्लाम के ऊपर ना तनकीद करनी शुरू कर दी थी, एंटी इस्लाम बातें की थी, इस्लाम मुस्लिम और मुस्लिम पे भी बात की थी, और मतलब मुसलमान पे भी बात की थी, इस्लाम पे भी बात की थी। तो मेरा एक दोस्त है, उसने उसकी ना स्पीचेस लेके ट्रम्प की यूट्यूब से लेके ना उसको ट्रांसक्राइब किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, उस पर ये अप्लाई किया वर्ड ट्री एनालिसिस। जहाँ लिखा ना मैनेजमेंट सेंटर में, तो इधर उसने वर्ड रखा इस्लाम, कि इस्लाम के बारे में ट्रम्प क्या कहता है, उसकी जो स्पीचेस हैं, उसकी जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो ट्रम्प इस्लाम से पहले क्या वर्ड बोलता है, इस्लाम के बाद क्या वर्ड बोलता है। फिर उसने दूसरा वर्ड रखा मुस्लिम, मुस्लिम से पहले क्या बोलता है, मुस्लिम के बाद वो क्या बोलता है। तो उसकी पीएचडी थी मीडिया मैथ्स कॉम में ना, मेरा वो जो दोस्त है डॉक्टर मोहसिन, उसका पेपर भी इम्पैक्ट फैक्टर में छपा था, ठीक है ना। सो उसने फिर ये इस तरह से एनालिसिस किया। तो इस तरह से, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम ये काम कर सकते हैं बहुत सारा, टेक्स्ट पे, स्टेटमेंट्स पे, उसके थीम्स निकालते हैं, कोडिंग करते हैं, ये सारा काम हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में कर सकते हैं। सो ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन। एंड जो लास्ट पे मैंने आपको बात बताई है कि अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप गूगल करें रब नवाज लोधी, और इधर लिख लें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लिख लें, तो आपको यूट्यूब पे आप चले जाएं, उधर आपको काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसको रब नवाज लोधी कर लें, क्वालिटेटिव रिसर्च कर लें, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लें, तो आपको को काफ़ी सारी, ये देखें ये भी वीडियो है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी आपको वीडियोस इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो Yes, please, sir. जी Sir, प्लीज। can you please share your ID, email ID with us? जी जी मैडम, जो मैंने स्लाइड्स आज आपसे शेयर की हैं, PHEC से भी शेयर की हैं, उस पे ना मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है व्हाट्सएप, तो आप इसकी फ़ोटो ले लें, कैप्चर कर लें इसे जी। सो ऑडियंस, थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट, यू कैन अनम्यूट योर Thank you so माइक much, एंड sir. शेयर योर व्यूज़। थैंक यू सो मच। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम। सर रबनवाज साहिब, मैं जी हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर तहमीना यास्मीन बात करती बिलालगंज कॉलेज से। जी जी सर अभी मैम, सॉरी आपकी आवाज़ जो है लॉस्ट हो गई है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी, मैं तहमीना यास्मीन बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। तो जी जी मैम। मैं, जो आपने वो मोहसिन साहब का जिक्र किया कि उन्होंने वो दो स्पीचेस लेके उसको कंपेयर किया और इस्लाम के मुतालिक, तो हिस्ट्री जो हमारा हिस्ट्री का मटेरियल है वो भी इसी तरह के, उसको भी हम कंबाइन करके फिर इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह का कोई है जी जी सॉफ्टवेयर? मैडम, हाँ ना, ये देखिए ना, जी जो जी आपकी जो हिस्ट्री है उस पे यही तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस आपने निकालने हैं, जी कीवर्ड्स जी। लगाने हैं, कीवर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट में लगाने हैं। आपने उस टाइम पे जो वर्ड यूज होता था हिस्ट्री में वो लगाना है, उन स्टेटमेंट्स के लोग इस वर्ड को कैसे यूज करते थे हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं इस पे एनालिसिस, जैसे जैसे बिल्कुल सही। आर्कियोलॉजी भी हिस्ट्री का ही एक पोर्शन है ना, तो जी जी उसमें भी मैम, ये काफी मेरा ख्याल इस लिहाज से जो है वो काम आ सकता है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। जी सर, इसलिए मैं पूछ रही थी कि क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना हिस्ट्री के, आमतौर पर यही कहा जाता है कि जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्यूचर में कुछ करने के लिए नहीं है। तो अगर हम इस मतलब अगर वो आना चाहते हैं ना, अपना कोई आगे से बिजनेस सेट करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर पे आए और यहीं पर आर्कियोलॉजी को और हिस्ट्री को इस तरह से निकाल के, तो वो अपने लिए एक अच्छी जो है प्रॉपर वे में जो है ना अपनी वो कर सकते हैं, अपना जो है फ्यूचर सेट कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं आप। तो आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया भी शेयर किया है, थैंक यू सो मच जी। जी एनीवन बहुत एल्स? शुक्रिया। Sir, today's lecture was very impressive and technical. Thank you. मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम मैं जी रजीना मैम। से बात कर रही हूँ डिपार्टमेंट कॉलेज चुनावली से। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था कि हर चीज को हम
स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरी तरह से तज्जिया नहीं कर सकते हैं ना, राजगन के मतलब कुछ चीजों को तो हम तय कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर हरुण चौधरी साहब ने एक तज्जिया किया कि क्या सबसे अच्छी सास कौन साबित होती है, खाला, फूफी, मामी, इनमें सब बाकायदा उन्होंने सैम्पलिंग की, 500 खबर के इंटरव्यू किए वगैरह हॉस्पिटल में, और उसमें उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकाला जो बिल्कुल जो हमारा मफरूजा था कि वो शायद खाला अच्छी सास साबित होंगी या फूफी अच्छी सास साबित होंगी। तो बाकायदा एक एनालिसिस हुआ जिसमें ये आपकी सारी चीजें सवाल की जो आपने हमें सिखाई है कि मुमानी अच्छी सास साबित होंगी। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि उनको नहीं इस तरह से उनका तज्जिया किया जा सकता कि अगर मैं ससुराल वालों के आने पर बहुत ढेर सारा खाना पकाऊं जबकि भाई आए तो उनको सिर्फ खिचड़ी खिला दूं, तो इससे कहीं ये मतलब नहीं निकल सकता है कि मैं ससुराल वालों से मोहब्बत करती हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही मैम, थैंक यू सो मच। देखिए हर डाटा पे स्टैटिस्टिकल नहीं लगाई जा सकती। अब बड़े बड़े मैथमेटिकल मॉडलिंग, बहुत सारे फजी लॉजिक और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसकी एप्लीकेशन है रिसर्च में। और सेकेंडली ये है कि अगर ये जो आप डाटा की बात कर रही है ना, किसी पैमाने पर परखा जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस बात पे आज जो बात आप कर रही है ना, अगर थ्योरी से एंटायरली रिजल्ट डिफरेंट आ जाए, जिस तरह सारे लोग कहते हैं खाला सबको अच्छी लगती है सारे बच्चों को, लेकिन आपने कहा रिजल्ट जो है वो एंटायरली डिफरेंट है, मामी अच्छी लगने लगी है। तो अब देखें जब रिजल्ट थ्योरी से पास्ट की प्रैक्टिस से डिफरेंट आ जाए, लिटरेचर से डिफरेंट आ जाए, फिर आपने उसको जस्टिफाई करना होता है और उसको डिग आउट करने के लिए, थ्योरी को चैलेंज करने के लिए आप फिर क्या करते हैं, फर्दर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। एक नई थ्योरी, यू विल कम विद द न्यू थ्योरी, आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं और उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च पे आपको जाना पड़ता है। आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, आप फिर चेक करते हैं जो न्यू जनरेशन है क्यों इनमें जो मामी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी है एज़ कम्पेयर टू खाला। सो इस तरह से जब थ्योरी चैलेंज होती है तो नई थ्योरी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू आती है। जब आप आपका पैराडाइम बदल जाता है, आप इंटरप्रेटिविज्म पैराडाइम पे चले जाते हैं पॉजिटिविज्म की बजाय। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है, इस पे आप हर जगह पे स्टैट नहीं लगती क्योंकि पर्सपेक्टिव ही चेंज है। जी ओके ऑडियंस, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो